Okay. Walaikum Salam. I'm Sayyidan. How are you? Okay. Khurram Riaz, how are you? Assalamu alaikum. Walaikum Salam. Walaikum Salam. Okay, guys. I'm still setting up few things. Sayyidon, how is it going for you? Have you traded today? I might be talking in English today because I am live on other channel as well, and as well as on my YouTube channel. So there is all sorts of people watching me right now, and it's best if I talk in English. So I do apologize if you only understand Urdu or comfortable with Urdu. I might speak in Urdu a little bit, but most of the time I will be talking in English. Okay. Walaikum Salam, brother. How are you? Today we will be talking about maybe market overview and few books I have to suggest. Walaikum Salam. Also crypto and some news about property. How are you guys? Tell me how has your Christmas been, winter holidays? What did you do over weekend, and also Christmas long weekend? Actually, I would say Christmas was on Saturday, right? Let me just quickly check. I don't even remember. Yes, Christmas was on Saturday. What did you guys do on Saturday? Just chilled. I was away for a few days from 21st till 24th. And then I was in Wales actually. Yes, I did. Yeah, I loved it. I was with my family most of the time and I loved it. As you might know that the course, I have been working solid 3-4 months and I needed this 4-5 nights. I am still taking a chill bill. I'm still relaxed. I'm not back as yet full, but inshallah in new year I will be in full force, coming live almost every day and working on few things. SPRB stock update, please. SPRB, as explained a few times before, SPRB. Today I will be performing TS, guys. So anybody who is looking, SPRB is one of those stocks I mentioned a few days ago, and I think personally SPRB has a lot to offer yet, because number one reason, it is the float is very low. I think it's under 4 million float. Let me quickly check. SPRB. I do remember talking about SPRB under $2, nearly $2 on during my course, and it was I think around $2.50 when we spoke about this stock, when we were actually selecting stocks, because one of the part during my course is how to pick right stocks. Okay, so during my course on 5th or 6th day, I think it was, we picked up SPRB. It was around $2.50, $2.54, and it went up like $6 from that point onwards,
and then it has now pulled back. Probably I would say if you are long on it, it will recover. It's curling up. It curled up from $3 onwards, $3.15. So in my opinion, it has a lot to offer, honestly. If rally continues, then we can see that, you know, this stock can easily touch $10. Reason being, as I said, it's a very, very low float stock. One push and this stock can fly. I have said it many times. SPRB we are talking about. SPRB, guys. SPRB we are talking about. SPRB. Oh, wow. Okay. Sorry, I'm not taking any request right now. Okay. Text Dipur. Okay. Naveed Bhai. Walaikum Assalam. Arshad Bhai, how are you? When is new course starting? The course is starting on 17th of January, guys. 17th of January. Okay. I would request you guys, when you mention something for me to look at, always mention either it's a token, a cryptocurrency, or a stock. Because I wouldn't know. I have both platforms open. I have Binance open and I have Dash Trader open. And if you're mentioning a stock which I need to look at, then please mention that it's a stock. And if you want me to look at crypto, then please mention it's a token or coin. And then I will look at that appropriately, accordingly, inshallah. I'm just trying to go live on my... let me just quickly do something. Okay, 3, 5, 6, 8. And guys, please keep sharing the live, and also keep tapping the screen if you think it's a content you like watching, and if it's a value for you, please make sure you do share the live also. Let me just SEAC is, I think we have spoken about it. SEAC, let me just quickly check. SEAC, guys, again I'm going to repeat this. SPRB can pop anytime. $10 is a target. 10, 15, 20. Yeah, it's a very low float stock. And if I talk about SPRB for a moment before I look at Phantom or SEAC, just one moment, guys. So float is just over 4 million. On SPRB, float is just over 4 million. One push and this stock can easily hit $10, guys. Okay, but again, this is just my personal opinion. One thing, just little bit volume. Maybe in the new year, it will pop. It will pop to $10, and we have spotted this $2.50, $2.54. And I'm not sure if anybody was watching me live when I was delivering this course. If you were, then okay, I'm not sure. Then you should know that SPRB was discussed during our course many times, a couple of days actually, 4th, 5th day, 6th day, I don't even remember. I need to go back to course videos and check. But we did speak about it, and I personally feel that it has a lot of steam left. It's just volume, and you need to understand one thing: why it is not rallying at the moment. Reason, most traders are on holidays during Christmas. Most traders are on holidays, yeah, and it might pop first week of January or second week of January, but SPRB has lot to offer in terms of returns if somebody wants to swing it. Okay, just to be clear, I don't swing these stocks, low float stocks. I only day trade them. I make money. I sleep tight at night. I secure my capital and sleep tight. Okay, Phantom, let me just quickly check Phantom, guys. Okay, who remembers my Bitcoin analysis, technical analysis? I did them on live here, and I said 40,000 region, and it bounced off, but it's not over yet. It is going to pull back. Bitcoin is going to pull back around, if I be precise, it can very easily pull back to around 48 region, $48,000 region, guys. Okay,
$48,000 region, it can pull back very easily. Maybe it's just making, it has broken the trend line. Phantom, I'm just gonna look at Phantom now. FTM USDT. Once again, these coins are following the same pattern as BTC, okay? And if I just see, the breakout point was around $1.73, yeah, $1.73. It's trading above all moving averages. My moving averages, which is 250, 20, and 9. It's trading above them. That means it's strong, but you can see a mini pullback falling on maybe $2, 100, between 180 to $2, 180 to $2. It can fall and then take off. Yeah, it's making ABCD pattern right now. Phantom, we are talking about Phantom, guys. Okay. Prague is done. I remember this stock, Prague. We made good money from Prague. PROG. It's constantly downtrend, but let me just quickly look something for you. Okay, it had death cross around mid-November. That means it's gonna struggle for now. We can possibly look under $2, guys. Easy $1.20 range. $1.20 range. But before that, you might find support on $1.50. $1.50, guys. Okay, that's Prague. PROG. Okay. On daily chart, it's nearly oversold. What that means is if it drops to around $1.80, $1.60, it might take off little bit, but it will, in my opinion, it will respect the downtrend and then sell off again. Maybe will fall to $1.50, $1.60, then touch $2 and then sell off again. But in my opinion, I will not touch it until and unless I see $1, $1.20. I will not touch this stock. Prague we are talking about. Luna, I'm gonna look at. LUNA, Luna USDT. Okay, Luna is looking very good, but I would wait for it to fall on $75 range, guys. $75 range. If it falls to $75 range, only then I would think about entering it. Otherwise, if you have position, I would say hold tight. It might sell off around $75, and then take off again. But if you don't have position and you was thinking to start a position, if I were you, if I were in your position, I will not start a position at this point. I will not start a position in Luna at this point. Okay, Bitcoin. Whoa, Bitcoin. I have said it many times. When it was 58, 59, it will fall around $40,000. If you watched me live previously, you should know. You should remember this. Many times I mentioned. It came around 42, 43, and then took off. But in my opinion, it's gonna pull back. There is no 70,000 range on Bitcoin. By end of year, guys, as they were saying that Bitcoin to 70,000 end of year. That's maybe long term, as I said, 4 or 5 years. You cannot see Bitcoin under $400,000, guys. Under 400,000. Good for you, Mohammed Adel. Very good for you, and amazing thing you have done. I hope you have kept it and you haven't sold it. If you did, then very good if you bought BTC. What about Ethereum? Ethereum is one of those coins I would buy any day and every day. Okay, never stop buying 2 of them. XRP ETH, guys.
Both of them, just keep buying them, keep buying them. Don't just wait for right moment with these two. And I'm very confident about it. Okay, very confident about it that with ETH and XRP, I wouldn't think twice by just having a regular top up on both of them. Okay, regardless of their price. Yes, it would be ideal if you buy on every pullback. Just keep buying them. Don't put all your savings in one go, but maybe dollar cost average always. Bitcoin will reach UK pounds each. Yes, by 2025, I believe that Bitcoin will not be less than $400,000, guys. No less than $400,000. I'm not sure how much is that in pounds, but let me quickly do the maths. 400,000, 141, probably $300,000. Okay, multiple streams of income. Satoshi is my friend. Satoshi. Okay, that's good. That's good, Muhammad Ali. Muhammad Adil. That's really, really good. Good luck. SEAC analysis. Yes, coming back to SEAC. SEAC. All right. Whoa. Yep. I really hope that you did not buy this at the top. Did they do reverse split or what? What's going on? SEAC. Oh, sorry, I'm looking at completely different stock. Sorry, guys. Apology. Okay, yes. I am on it. So what I would do, I would wait for it to fall on 120 to 150, 120 to 150, and only then I will start a position. Otherwise, I will not start a position. If you are already in it, if you're already in SEAC, then what I would do is I would basically start averaging down around 120 to 150. Around 120 to 150, I will start averaging down. If it's optionable, let me check if it's optionable. If it's optionable, then this is what I would do to get extra money for it. Depending on your price, I'm not sure how much you paid for it, if either you are in it or not. But if you are, then what I would do is, yes, it is optionable, and then maybe I would sell covered call far out money, then collect some premium on that side, and also maybe if you are interested in loading more of SEAC, then I would also sell cash secured puts, so that you collect some money on the way down, and when it gets to your strike price, you will be assigned your desired shares, guys. Okay, that's how I would do. That's what I have done with Wish. I have been collecting maybe $2,000, $3,000 every month non-stop through covered calls and also cash secured puts. Okay, I'm not averaging down at the moment, but if Wish falls to probably $2, under $2, only then I will start buying more of it. I have given last live, I said 2 stocks I kept banging about, 3 actually. Snap, I said. AMD was number 1. Look at what happened to AMD. Last time when I mentioned it here and I said it, that AMD from 130 to today 154, 155. Okay. Snap, I mentioned it so many times. Apple mentioned it so many times. Nvidia mentioned it so many times. Look at what happened to Nvidia today. So you need to understand that it's all about taking actions. Okay, these are my all-time favorite stocks. XPEV, I have sold cash secured puts for $30, guys, and if it ever reaches $30, it will be a gold mine, honestly. XPEV. Lee also is at very good price. Neo, absolutely good price, but I would not put my money in Neo. Reason,
is because their dependency on their production depends on other factories, yeah, other manufacturers, and that is very bad thing. And I said it, starting of 2021, that XPEV will pass NEO because of solely these two things. Number one, XPEV kept spending money on their infrastructure and then production line and all that stuff. They opened two factories of their own, so XPEV is in much more stronger position. Number two reason, XPEV is a mass production. They are targeting the lower middle class and middle class. On the other hand, NEO is targeting the upper and high class. Okay, their car starts from maybe $80,000-$90,000, and XPEV car starts from $25,000. So that's the reason XPEV is much more stronger as a stock and also company than NEO. Everybody's talking about NEO. It's fine if you want to go with NEO, good. But my choice, if I have to choose between new upcoming EV companies, I have said Ford obviously is the old company, and since $11 I have been saying that Ford is going to crawl up very slowly, because Ford has strong backing and they're going to blow up the market very soon. XPEV has edge in China, in Europe, and they have already entered in Sweden and Denmark. Okay, they have already started delivering, and plus good thing about them is they have their own production factory, which puts them in a very good spot compared to NEO and Li Autos. Okay, Li Autos is good stock, but their revenue is struggling at the moment. I'm not sure why. Okay, XPEV, Xpeng, very good car, very, very good car. Okay, RR stock. Let me just quickly check. Guys, can someone confirm that they can hear me on YouTube? Can someone confirm that they can hear me on YouTube? If you are on YouTube, I think only one person watching at the moment, which is fine. Most of them they are traders and they are online during daytime, so I won't be surprised that they are not watching. There's no one watching me on YouTube. Okay, what is the best time to enter in these stocks? There is no best time. What you need to do is, if you want to become rich, you need to start dollar cost averaging, guys. Dollar cost averaging is probably the most powerful strategy, and this is how it works. Let's say you have $10,000 set on a side for one stock. Let's say it's AMD. Okay, so what you need to do is you need to buy on intervals, not $10,000 in one go, but maybe 1,000 every month. Buy AMD at like whenever it pulls back, just throw $1,000 in it. Every time it pulls back, throw $1,000 in it. Yeah, keep doing it. Even if someone just keeps buying these three stocks, I'm gonna give you three stocks only: AMD number one, Nvidia, and XPEV. Just these three stocks. If you just put $1,000 every month between these three, okay, priority wise: number one AMD, number two XPEV, number three Nvidia. Okay, three priority wise. Number one is AMD, two XPEV, and then Nvidia. If you just divide that money priority wise, it really depends on which one you think is going to blow. But for me, AMD is going to be big thing. Yeah, okay. Apple also. I mean, you wouldn't doubt Warren Buffett. He owns about 24% of his portfolio is in Apple, which is surprisingly that he puts so much money in one company. So I believe Warren Buffett. And here is another book by him, not him but his daughter-in-law. Okay, so make sure you order this book, Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements. Very powerful book. I am on chapter 15 chapter 15 I am on. Yeah, I started reading it the day before yesterday. Very good book, very good read. It's going to help you a lot understanding the financial statements and how you can use financial statements to pick
good stocks. In AMD, I'm telling you, I have high conviction in AMD, guys. Guys, keep sharing and keep tapping the screen. Keep sharing and keep tapping the screen, please. QNT. RR. Somebody asked me to look at RR, guys. One moment. I can't seem to find RR, guys. Okay, please make sure you check the ticker symbol. It needs to be QNT. That seems to be QNT. Seems to be a coin. QNT. Yes, QNT, a token. I think QNT is, I did mention it in my, hold on a second, let me quickly search and then I will show you what I mean when it was. No, actually I didn't. I never mentioned QNT. Okay, QNT is okay. Few days ago, it was absolutely at a crucial support, which was $150. $150 is really good. Rolls Royce, but I don't know what's their ticker symbol, and I don't do UK stocks. I only do US stocks, guys. So I wouldn't know Rolls Royce for beginners. How much capital we should have to start? For beginners, if you're complete new beginners, I wouldn't say start with any money, but maybe no more than 1% of your total worth. No more than 1% of your total worth. If your total net worth is $100,000, start only with $1,000. I know it seems crucial, it seems very harsh, but trust me, it will save you a lot of stress, a lot of headache. Yeah, most people in hopes of becoming rich quick, they put all their life savings in stocks and crypto, and they end up losing everything in a couple of months, and it's not good. FCell is very good company, long term. Just keep buying it if you can, not a lot, but like chunks, small chunks. Keep buying it. Okay, QNT is being pushed down by 50 EMA. Okay, and for me, 50 EMA is very, very strong indicator, and I trust it very well. If it doesn't break 50 EMA, which I would wait now, if I want to take a position in QNT, I would wait for it to break 50 EMA and then retest 50 EMA, and only then I would enter. Otherwise, I will not enter QNT if I don't have position. I might let it come back, wait for it to come back, but because it's in uptrend, it's a clear uptrend now. If it respects this uptrend, that means it will break 50 EMA, which would be around $220, and until and unless it retests that level, I will not enter. Otherwise, what I would do is I would enter around 185. 185 is the nearest support level for QNT, guys. QNT. FCell is very good stock, guys. FCell, I have been saying it for, I don't know, most growth stocks have been beaten up, honestly. Let me check quickly one thing. FCell. I just need to check the load. Oh yeah, it's gonna struggle. FCell is gonna struggle for a very, very long time, guys. But good thing is 40% ownership is by institutions and insiders. Nothing much. That's the reason. I don't know. Honestly, FCell short term it will struggle. It will struggle, but. Apple, somebody asked, is Apple call and put worth investing? It's up to you if you want to go far. Let me just quickly this is if I just want to play Apple
Apple calls. I wouldn't do puts, but calls, yes, long term calls. Definitely, maybe 2023 January. This is what I would do. Let me just quickly check. January 2023, and what I would do is I would get probably $200. $200, yes. $200 is crucial. I would get $200 for January 2023, guys, if I were you. Okay, January 2023. It's right now the ask is $14.60, and it could be big, guys. Couple of days ago it was $11, just $10.50, but just before this big pop it was around $4. You have plenty of time to be right, honestly. With Apple, I personally feel that it's only way up. Yes, there would be small pullbacks, but they are irrelevant. Maybe from 180, it might pull back to what, 160 or something like that, maybe. But long term, the direction for Apple is only upwards. If you are looking not for a couple of weeks, but long term, maybe 1 year, over 1 year, guys. What is AALK? It's AALK. ALLK, sorry. ALLK. Yep. Okay, today it was big drop. So I wouldn't enter at the moment. If it breaks $10, maybe yes, but this morning it gave a really good trade at $9, $9.80, but I would stay away for now. I'm not sure if there's a bad news about company. Let me quickly check. Okay. There is no short-term news, but let me check. 5 days ago, phase 3. Okay, there was a study. I think it failed. The results. That's the reason. You see, all these pharmaceutical companies who are either biopharma or biotech companies, they are very risky companies. Out of 100 companies, only maybe 2 or 3 make big, and this is very important. You don't want to bet your money on these companies. They show positive results during phase 1, phase 2, phase 3, but when it comes to top line final data before FDA submission, for some reason things go wrong, and 90%, maybe 95% biopharma and biotech companies have been doing this. I have been noticing this for past 2-3 years now, honestly. Only out of 100 companies, only 2 to 5 companies will make big. Otherwise, most of them will struggle. And these drug development and biotechnology companies, obviously they are working really good in their respective fields, but then again, as an investor, you need to see whether
the stock has value in it or not, what sort of future company has. And this book will teach you how to check future intrinsic value and how to pick the right stock. This book, guys, yeah, very good book. Okay. AXS is, I think, a Metaverse coin. AXS is on my list as well. It's on my list. If I show you on AXS is definitely on my list. AXS. Okay, yes. Yeah, let me show you. So AXS was, I think it was around 30th of October. 30th of October, I did mention it. But I believe that, you know, anything to do with Metaverse is going to go. It has one direction. Long term, one direction. Short term, yes. Short term volatility always there, guys. Yeah. So you be careful when it comes to trading crypto. Make sure you have your risk and reward ratio maintained in a way where it does not hurt your account too much. Mine is simple 1-to-5 risk, sometimes 1-to-4, sometimes 1-to-5 ratio, and I only trade with, because I have 3 different accounts. I have day trading account separate to my swing trading account and my investment account. I have 3 accounts. Managing money is very, very important in this game. BLNK, Blink, I think it is. Blink, it is, I think, BLNK. BLNK. It's a charging company, I believe. Yes, yeah. Very good stock. Very good stock. And right now, a few days ago, it was on support. It's a good entry point. If somebody wants to enter, it's a good entry point, guys. If for me, yes. So I don't know if you are watching this stock for long. Why did you not enter around $26.50, $26.20 range when it was right at support? If you go on YouTube, my YouTube right now, and you would know what I'm talking about. It was right on support, guys. Right on support. So you need to understand these key levels. These key levels, you cannot ignore them. Understand one thing, that, you know, when a stock comes to a key level, then do not ignore that stock. Okay. So if you look at here, it came to this level 26.30, and it has been to this level earlier. Okay, in October, and then earlier in May, mid-May, exact same level, and then in March as well. So 1, 2, 3, 4 times it hit this level, and then bounced off this level. So it's a key level. Understand that it's quite an important level. But then again, if it's a long-term investment, which it should be, BLNK is a long-term investment. Remember one thing, where there would be EVs would require infrastructure, okay, charging stations, and Blink is a big player, and they would play big in that space, I personally believe. So right now, the total number of vehicles, the percentage wise, is only 8% in the world, okay, EV vehicles. And imagine by 2035, the entire world must have every single car electric car. Okay, so imagine when it goes to, let's say, maybe 50, 60, 70 or 100%, infrastructure will be needed. And Blink, I think personally, they have positioned themselves very, very good. Okay. Guys, I'm not sure if you guys are with me or not. If somebody is with me, if you are with me, please tap the screen. Otherwise, I don't want to be just watching the screen and talking to nobody. Please.
Shib Inu, if you Shiba is just I don't know, it's Shib is again this chart is exactly same. If you look at the charts, they're exactly same charts as BTC. All these charts are working like, it's like herd buying and herd selling. Okay, so you should understand the monstrous power of smart money, how they move stock. When they move stock, together. When they move crypto, they move together. Okay, if you look at most of these charts, you will see a lot of similarity. Okay, that means smart money is really smart money, and we are dumb money. Rightly so, they call us dumb money because we do exactly opposite to them. We need to think like them. Z170. Okay, SHIB. Let me tell you something, guys. SHIB right now is being pushed down by EMA 50. Okay, EMA 50 is very strong indicator. Even if it's simple moving average or exponential, it doesn't matter. But 50 period is very strong. Moving average is being pushed down by that. That means I trust this indicator very much, and I would basically wait either it breaks above EMA or comes back to support, which is going to be around 34, 40s and 34. Only then I would take position. I am not in SHIB, but before it fell to 28, where it was 57, if I SHIB, let me go in my group and I will show you what I mean. So SHIB. Okay, guys. Okay. So this was probably, I don't know, maybe in October or somewhere in November start. Okay. And I am not in SHIB. I'm waiting for deeper dip. And then so many people asked me here again, 23rd of November. I said let SHIB come to 30, 32, and 23rd of November, if we look at the chart, 23rd of November, it was around maybe 50, so it was around 47, 48. Okay, 47, 48 it was. Okay, 0, 48. Okay, and precisely it came down around that region, 28, and then took off again. Okay, market. I have a different point of view. This could be simply a bull trap. First week of January is very crucial. I personally feel that there is sell-off on its way, a big sell-off. Big sell-off is on its way. I could be wrong, but the indicators are showing that something big is coming. Okay, first week of January is crucial. Okay, all right, guys, if you are still with me, is it there is no such thing as moon. The only trouble is there is nothing such as moon. Yeah, this is the biggest blunder for people, for newbies. Okay, these are pumpers who use these terms to trap people, and then
They dump their position on you guys, thinking that it's still gonna go to moon. There is nothing like moon. Okay, understand this. Yeah, you can do so. Is it worth waiting for? Okay, there are so many strategies for investments. You don't need to wait. There is no way you can time the market. It's simple as that. So what you need to do is, if you think, or if you have done enough research, and this book is going to give you the manual. Yeah, if you've done enough research that a company is going to be, let's say, $500 in 2025. Okay, let's say you have done the calculation, and there is a way to do calculation. Okay, for that you need to read the book. Okay, there is a way to calculate it. Okay, so if you believe, after doing all the calculation, all the research and all the fundamental analysis, that a company would be worth maybe $500, right? So what you need to do is, if you're getting the same company today, let's say today it should be trading at $150, but for some reason there was a sell-off and company now is trading at maybe $120. So that means in today's value, you're getting that company for $120. Okay, where the price should be $150. And 5 years down the line, the company would be worth $500. Okay, so if you believe, and believe comes, it's not just in here. You got to trust the data in front of you. Okay, and you have to believe the data, and you have to dig down the data you need to create your directional bias. And directional bias is a few steps, not difficult to create, but you need to know what you're doing. And once you have the directional bias, then there's only a fair price. Fair price in terms of, let's say this GoPro. Yeah, if let's say somebody tells you that, this GoPro, that this GoPro is maybe $300, right? And you're getting it for maybe $250, and in your mind that this is $300 worth, so $250 seems fair, right? So you wouldn't mind paying a fair price. Finding that fair price is, of course, that needs some technical knowledge and some mathematics, and you need to go through the financial statements and all that stuff, but it's not difficult. It's very easy. You can maybe go on YouTube as well. There are so many videos on YouTube. You can do so. I am not investment expert. I'm just sharing my experience, what I know, what my mentor has been teaching me, and how I have been doing things when it comes to investments. Okay, there is no other way than dollar cost average. I am thinking of Apple stock. Apple, yes, Apple is very good stock. About a week ago, or maybe more than a week ago, when I went live, it was on, I think, 15th or 16th of December. 15th or 16th of December it was, and it was somewhere between, I don't know, maybe 165 or 170 it was. And Apple is one stock, and you wouldn't believe this, guys. I bought Apple at $130, and I sold it. And that's what I am teaching you. Look, you have to have a plan. If you don't have a plan, then there is a trouble. Okay, I had Apple at $130. It fell to $119, and I sold it, right? But instead of selling it, I should have bought more of it. I had only 200 shares at $130, but I was in a bit of trouble back then, so I had to really close my position. But I believe that I should not have chosen Apple over other stocks. Yes, I saved few, which was XPV, which I ended up taking $14,000 profit. Even though I could have potentially have $25,000, $30,000, $40,000 profit from it, but it's fine. You wouldn't know if you're dealing with swings. You hit your target, you get out, you move on. Okay. Now I have for XPV, I have $30 puts, and Apple, I will start taking a position. I haven't yet, but I might start taking position. If I do, obviously I will update my Telegram group. I don't have any position in Apple. I don't have any position in AMD. I will start a position in both these companies, and I will also start a position in Nvidia. These three companies are my top targets,
As soon as I see a fair price, I will just jump. Okay, I wouldn't think twice, and I will keep buying them. These three companies are my go-to every single month. Whatever cash flow I have from my serviced accommodation business, from my property business, from my day trading business, from my training business, I will divide that into these three companies. I will keep buying these three companies, guys. Okay. And on top, XPV also, I said I have puts sold for $30. I collected, I think it was $7,800 premium for selling those puts. If somebody is interested buying XPV at around $30, or maybe now it would be wise to have it at maybe $36, actually $36. We might never hit $30 puts, but if let's say you want to go for July, which I believe could get you filled. So you would, for $35, you would get $3.75 for each share. $3.75. So if somebody is planning to, let's say, buy 1,000 shares of XPEV, they can collect $3,750. $3,750 if they sell $35 puts. If they sell $35 puts, then it would be they would be collecting $3,750. So almost $4,000 you will be collecting by selling these puts, but they would be cash secured puts. That means you need to have $35,000, or actually 35 minus 3,750. So you need to have $31,000, $250 to be able to sell these puts. So they're cash secured puts. That means this money will be locked in for some time, until or unless it expires worthless or you get assigned. Okay. Walaikum Salam, PES player, how are you doing? Is Interactive Broker good for long term? Yes, Interactive Broker, one of the best, actually the best broker. Not one of the best broker, I would say. Interactive Broker is the best broker. There is no comparison. There is literally no comparison, guys. And guys, listen. This is what I love. Many people say, why do you sell course? This is what I love. And when somebody sends me messages like these from my students, look at this. When somebody sends me message like these, they made $250 when they were in full-time employment. When somebody says to me, my today's total is $614, and then they type this: hey guys, I attended November course and starting trading today, doing really good. I said, that's amazing, Naseeb bhai, all because of you, sir. And this boosts my energy, okay? This boosts my energy that I am doing something good, something which is worth doing, guys. Yes, nothing is free in this world, but if you can transfer a skill which people would use to make some real money in the market, even if it takes like 18 months to two years to be able to really, become expert at it, it's still worth it, guys. It's and I love it. I love what I do, and I am Lavoga luxury hair oil. Yes, I am in the UK. Yes, I am up and down the motorway most of the time. You can meet me in Luton or Birmingham. It does not matter. I am holding a meetup in London, and this week
actually on 30th. So if anybody wants to come join me there, Bethnal Green, they can come. They can meet me there. We meet me there means it doesn't mean that I am some sort of celebrity. Just to have a maybe cup of tea or coffee together, or just have have discussion, get to know each other. That's all. Okay. Uh, okay. What is your thoughts on plus 500? I don't want to use the word here. It's social media. Plus 500 is just P. The word starts with P. Yeah, you understand what does that mean. What about Birmingham, sir? Birmingham, Sayyidon, inshallah, first week of January, inshallah. Time allocation. Time would be around midday, 1, 2 o'clock. PES player in London, Bethnal Green. But I don't know location yet because I don't know the area. I've asked people in my group that, if anybody knows a restaurant where we could sit down and have a chat, but nobody has yet responded. So I'm gonna start looking at it myself tomorrow some point. About 15 people pledged to come, so I'm not sure if anybody would come. If not, then I will just go there, sit, take have coffee, and then come back. It doesn't matter. Right, guys, tap the screen, guys, tap the screen, tap the screen, tap the screen. Okay, I'm gonna go offline from my YouTube channel because I think there's nobody there, so there's no point me staying live there, guys. What's going on? Share the live, guys. Share the live. Lavoga luxury hair oil. Both platforms are just rubbish. Okay, rubbish. If you are, where are you? Luxury hair oil. So how far a PS player? How far is East Ham from Bethnal Green? Oh, you're in Bradford. All right, okay. Bradford very soon. Manchester very soon, inshallah. Oh, 8 stops. Not far, then that's good. Yeah, Bethnal Green, yes, definitely this week. Probably on 30th. More likely on 30th, inshallah. So, there's no story to share, guys. I have suggested this book. I bought this book. I think it delivered on 23rd. I was away. When I came back, I received it in post. I started reading it. I am on chapter 15, and I'm telling you guys, this book is worth every single word. It's practical guide to basically analyze financial statements, your income statement, cash flow, and balance sheet. 3 most important documents in any business. Okay, so if you want to even start your own business, or you just want to research a stock itself, whether it's worth it or not, this book is very good. It's for investing, not for day trading or anything like that. But if you are planning to invest in stocks, this is the book. Make sure it's basically Warren Buffett and the interpretation of financial statements. It's written by his daughter-in-law Mary Buffett and David Clark, guys. Interactive Broker is amazing platform, very, very, very good. But if you want to day trade,
then you would require $25,000 minimum. But if you don't have $25,000, then the best platform is TradeZero, guys. TradeZero is the best platform. Okay. I haven't done any research on Web3 at the moment. I have been busy with other things, but probably Web3, if it's okay. I can't just go on Google and tell you what it is until I get really and get into it. I can tell from headline that it's booming. That means it's booming. So I don't have any projects yet, but yes, it's a good point. Thank you very much. Crypto Boy did mention it, and I think it was few weeks ago when I watched him, and I will definitely look into it for myself and also for you guys if you want. So I don't know anything about it yet, especially the projects. I don't know what projects are running and what are they running on. Looks interesting. Okay, looks interesting, very interesting. I will definitely give it some time to read and dig a bit deeper to really understand what's what. Okay, I think I'm gonna go offline on YouTube. YouTube, who is watching me on YouTube? YouTube is just my screen, nothing else. There's only one person watching on YouTube. There used to be a time when there was 10-15 people watching me on YouTube, but I then stopped going live there because it was literally losing people money. So I did not want anyone to lose money on my account, because I am a momentum trader. I scalp, and people don't understand scalp takes literally 10 seconds, and YouTube stream is maybe 4-5 seconds delayed, and by that time I'm in and out. Like today I was in and out like literally in 10 seconds. In PYR is the stock I traded, and I made about $400. Nothing much. Within 10 seconds, that was my quick in and out trade. It was my first day back, so I just didn't go big on it. Anyways, manipulate in a way where they share the data. Yes, they share the data, but manipulate platforms share data with the hedge funds, and they have always been doing this. This is a dirty game, and you need to understand this. Most hedge funds have level 3 data, which is basically to I don't want to use this word, but to rape retail investors, retail traders. Okay. So hedge funds and brokers always take positions against you. Okay. So understand how smart money moves. If you understand how smart money moves, then you would know the market cycle. And when you know the market cycle, you will have cash spare to go discount shopping. Okay? Property ladder, there is no good time or bad time. Property is property. You will look back, no matter whether you started here and you thought you should wait when property goes here, and you started there. Okay, you thought that you bought it expensive, right? But a few years down the line, you will look back and you will say, thank God I took the decision. Thank God I took the decision. Okay, so understand, property is such asset class that you would love it. Once you get on it,
you would love it. I love property because it will give you so much freedom, and it will generate so much money that you would otherwise not generate from any other asset class. Yes, stocks have power, extreme power, and that's the reason I'm spending most of the time on stocks as well. No problem, Sayyidon. No problem at all. You can attend. It's a lifetime access anyway, so you can attend anytime. We will start on 17th of January. We so far have 4 people enrolled for January. Not big group, but let's see what happens. We still have about 20 days left, 21 days left. Let's see if somebody joins for 17th of January. 4 people already joined, so let's see what happens. Anyways, yes, the focus is for you guys to be independent, okay? And that's the focus. And my focus is to make you guys so independent that making $100-$200 a day or $400 a day won't be an issue. A day means the power how stock move. You can make $200 or $500 within seconds like this, as long as you know what you're doing. How much for your course? My live course right now is $999, but that includes 6 months private community group. Private community group, the value for that is £120, and that is included in the price of £999. And if anybody is wishing to join, you should, the best place always is to look for somebody's reviews. I always say that check somebody's reviews, check their worth, what they do, how they're doing things. I have 61 students leaving review here, and 100% of them are 5-star out of 5-star, okay? Because I spend so much time and so much effort on transferring the skill I have, and very effectively. And it takes a lot of effort. It takes a lot of effort to transfer the skills. I wouldn't read the comments. You should go and check them out yourself. It's up to you. If you, after reading reviews, you can contact me, something like this, 0 to 100, real quick. These comments, they make me really proud of what I'm doing. I came across Naveed Bhai on a TikTok video. Okay, Khalid Mahmood, SH something. The people different from different. Gurinder Singh, Sher Khan. You can just, I wouldn't read actually. Go yourself, read. Contact these people if you want to. You can also maybe, I don't know, reply or something. I'm not too sure how it works, but Zulfikar Bhai, Bhupinder Singh. Most of my students are from Canada, USA, Australia. Some from GB. Sattar Bhai, Mansoor Bhai, oh, this guy. 0 to 100 in 7 days. This is the second one actually. This comment I always read myself to check how I am making difference. Joined the course at 0 understanding of trading. Came out feeling like I have done PhD. Really good. Mansoor Bhai from Australia actually. 7-day course. So yeah, I mean, look, my course is designed for those who really want to become independent. Haven't seen you live in a long time. Munib Bhai, I was off. I was away for a week or so. Assalamu alaikum, Munib Bhai. How are you? No. If someone not able to pay 999, Mudabbir Hussain, I also can do a payment plan. If you are a genuine person and you can't afford it but you want to learn, I can do payment plan with you. So contact me on my WhatsApp 07533496210. You can also go on website, and WhatsApp is on the website. If you go on website trading402.com, the website link, my WhatsApp link is right at the top next to TikTok. Between TikTok and Telegram link there is WhatsApp group. Yes, but one more thing, sorry, I forgot to tell you guys, is the recorded course right now. The recorded course right now is at 50% discount.
and it gives you access to 2 days live course access. That means in January you can attend 2 most important days, and then it gives you 3 months private community group. That means our private community group is very powerful, guys. Very, very powerful. We share some of the most like most powerful trades in there, and it's at $499, which includes this $60 of 3 months membership free, and then 2 days live course, which in itself is £799. Okay, so it's a great value for money. And how it works is simple. You will get an account as soon as you join. You will receive an email, and as soon as you receive the email, you will get a link in that email telling you to create your account on our website. Yeah, you create your account, you come here, you log in, you click this login button, you enter your username and password, which you have already set when you click the link. Okay, and then click login. This will take you to your account. Okay, and once you go to your account, click courses here. When you click the courses, this will show you the courses you have purchased. So in lifetime access, which I just mentioned you, if you buy this $499, you get 7 days Urdu course that has around maybe 50-60 videos in it. 7 days English course, you get options course in it. So let's say if I go in Urdu course, yeah. So in Urdu, you have all these videos, guys. All right, and it has also live session where we took the live trade. So plenty of material there for you to really grasp day trading and all of those skills you need to day trade. Okay, this is basically live course recorded for you guys, for people to watch it later on if they want to. And it's a lifetime membership. It's not as if so Bitcoin, I just mentioned earlier, Bitcoin for me is going to pull back, and it's like I said about 3 weeks ago, 4 weeks ago, I don't know, it was around $56,000, and I clearly mentioned that it's going to come in $40,000 range, and it did come to 42, I think 43, I think it came to, and 42 and a half it came to, and then it bounced off there. But it's the pattern is very important right now. 48 is a very important level, and if it pulls back to $48,000 range, that's where if somebody wants to take a position, they can take a position if they want to. But Bitcoin is not a trade, it's an investment. Make sure you do dollar cost average. It's not a trade. I don't trade crypto at all. I never trade crypto. I always invest. I store my money in crypto. I don't trade crypto. I store my money in crypto, guys. Okay. So make sure that you do your own due diligence, and Bitcoin is extremely volatile. So always do your DD. And some people, they just put all their life savings in one go. That's not the way. That is not the way. Okay, make sure you do dollar cost average. Yes, I accept 2, ETH and XRP. Okay, ETH and XRP. XRP is going to change the entire remittance system. Okay, it's going to completely disrupt the market. The only thing it's holding back is the case, and if they win the case, it's nothing can hold XRP. And what's the worst gonna happen? From 80
My average is now my average is 30, 38, 39 cents. Okay, but what's the worst gonna happen? It's gonna go to zero, no problem at all. I'm still okay. I have probably 2,000 coins, nothing much. I don't buy in one go. I keep buying. Every time something drops, I buy. Every time something drops, I buy. Okay. So my plan is to get to 5,000 coins on XRP, but I am not gonna sell them, even if they go to 37 cents. That's my average, 37, 38. Yeah. Even if they go to that, I still don't care. What I care about is either it's going to make me millionaire from that whatever I hold. Right now I have around, I think 2000, around 2000. Last time I purchased it was 80 cents my order was. Okay, the whole world will become crypto friendly. They can't avoid it. Nobody can avoid it. They might try to contain it, but they will not be able to contain it. Okay, it's simple. They might try. They are trying and they will keep trying it, but they will not be able to contain it. That's the thing. That's the reality. And they can, I mean, people can say whatever they want to, but 5, 6 years down the line, things will be completely different. And especially 2030, the world will be completely different. Just look back 11, 12 years back. Just look 11, 12 years back, maybe pre 2010, how the world was without Facebook or without WhatsApp, without crypto. I don't know what else. Without a camera, mobile camera, without TikTok. How the world was in 2000, in 2008, 2009. And if you just 10 years, literally 10, 12 years, how the world has changed, completely changed. Okay, Amazon was not that big. That big meaning that hardly anybody was buying stuff from Amazon. Uber wasn't there. Uber Deliveroo wasn't there. Okay, so you would not have imagined you would book taxi on Uber in 2008. So the thing is, by 2030, things are gonna change. And right now, people who drive Uber or delivery drivers or takeaway workers or factory workers, they should worry about 2030. I'm telling you guys, I know people hate me for saying it, but delivery drivers, taxi drivers, takeaway workers, factory workers, anybody who replenish stock on shelves and put stock on shelves, cashiers, all these jobs gone. Even GPs, mark my words, record this clip. Even GPs, general practitioners, they will be out of job. Even GPs will be out of job. And that I'm saying it with 100% conviction. By 2030, not long left. By 2030, even GPs will be out of jobs. So start worrying, guys. Start worrying, start thinking straight. You can choose to ignore it. It's up to you. But things are changing rapidly. People are ignoring it. It's fine. It's their choice. But if you worry about your financial future, which you should, even if as a Muslim you should worry, you should have some sort of plan in place. Then if I were you, I would start having multiple stream of incomes. Okay, it's very important. And people who are okay, this is very important question. How GPs will be out of job, bro? Okay, here is one thing I would say. When you go to GP and you tell GP something, you have headache, you have temperature, what does GP do? Tell me. Does anybody know what GP does? How do they diagnose? Basically, what's GP's job? The only job GP has at the moment is diagnose you. Okay? That's the only thing GP does. How he prescribes medicine, the software already does it. Okay? It's not GP's job to prescribe it. They just type in. Okay? They just type in the medicine name. Okay? And the system already pulls up everything. Okay?
I'm going to tell you something. This diagnostic process, the biotech is becoming so advanced that personally, this is my theory. I could be completely wrong. I might not be alive by then, but this is my theory. This is how it's going to happen. All the GP surgeries will be gone, especially from UK, and you will have something like, we used to have phone booths. On roadside, you used to have phone booths, and you used to walk in that booth and you used to dial a number, right? Something like that will appear. Okay, something like that will appear, a box where you go in, you stand, and that machine will scan you from top to bottom. You will put your finger in something, maybe a little hole, and it will take your blood sample, and it will perform some tests, and it will give you your results there and then. And maybe will also send your prescription to the pharmacist. Even pharmacist will be gone. Maybe there would be something, the pharmacy will be behind that machine, a vending pharmacy. I don't know. Things will drastically change, guys. I'm telling you. They're changing, and it's going to change. I personally feel, if you want to search a company called I can't pronounce it. Let me just quickly pull up. Neuralink. Find a company, Neuralink. He is Elon Musk founded it, Neuralink. Yes, it is. It's literally 9 years from today. I mean, if you look at it, yeah. 10 years ago, you would not have thought booking a taxi on your mobile app. Okay, 10, 12 years ago, you would not have thought to order your takeaway on your mobile app. Okay, taxi drivers completely. I have no doubt that taxi drivers will be out of job. There won't be any more taxis left by 2030. These manual taxis, either there would be air taxis, which like a drone-like taxis, which will be autonomous. There won't be any control, back-end control. It would be all autonomous. Yeah, you will book on an app. Drone will just pick. It's a drone would know that you have booked a job. It will be system. It will be all autonomy, Internet of Things, artificial intelligence. It's just big data will take effect, and big data has already started taking effect, guys. Machine learning is big thing. Understand this. Even surgeons. I believe that even surgeries will be performed by robots. Okay, so like Elon Musk said that all jobs which robots can do better than humans, there's no way humans will sustain it for long now. Okay, if a robot can do your job better than you, then robot will replace you. I'm telling you, robot will replace you. And robot could be anything autonomous. Autonomous taxi already working in London and some of the cities in US. Drone taxis, Austria already flying. Austria, a company called eHang. I mentioned it in my last live as well. If people choose to ignore it, it's fine. I mean, it's fine by me. And there would be so many critics, okay? But this beast is already flying in Dubai, in Austria, okay? It's taking passengers from A to Z, intra-city travels, okay? Okay? It would carry 1 or 2 people at any given time, all right? And you would simply book it on your mobile app, Uber-like app, okay? Uber-like app, it will maybe come land on your rooftop or in your garden or somewhere. I don't know how things will work, but things will work like this, guys. Don't ignore it. Do not ignore it, guys. I'm telling you. And this has like beautiful seat in it. It lands, you sit, it takes you from A to B, job done. No taxi drivers needed anymore. No taxi drivers needed anymore, guys. Okay. So taxi drivers, trust me, things will change rapidly, guys. Taxi drivers, delivery drivers, all the factory workers, takeaway workers. Search a robot called Chippy. Yeah, search a robot called
chippy. All right, and you would know that it's already hold on, it's called chippy was I think I don't remember. 1 second, guys. Okay, so anybody who is right now working in a takeaway, frying chips, marinating chicken, putting chicken in that fryer, taking chicken out of fryer, then making those portions, putting chicken in a box and then fries in a box, and then putting the tape on and then putting in a bag, that job will be gone. By 2030, that job will be gone. Okay, take it or leave it, believe it or don't believe it, it does not matter. Okay, it really does not matter. It will be gone. Okay, it will be gone. Sam UK, basically my students, I always tell them to practice on their demo account for at least 6 months, and they take a gradual and slow approach. Some of them started making money, like this guy. He took very first course, Jagpal. There is another guy, Rizwan. They're very first guys, like they took the course in July, June or July, I think. So they already started making money on real account. Some of them whose worth is high net worth, they take trades on real account and they make money. This is our student community group, guys. Only students are allowed in this group. So some people already moved on to real account after 2-3 months of demo trading, and they started making money. Some lose, some make money. Look, it's a transition. It's going to take at least 18 months to master the strategy and also the trading psychology. Trading psychology is a big thing. Many people don't understand that, trading psychology is nothing, but trading psychology single-handedly is everything, guys. Okay, so this is our student community group. So some people make money, some lose money. It really depends on their like, look here, this guy $107. I do ask them to send me their screenshots every day, but sometimes they do. Some people shy, they don't send. This guy $73. But yeah, it's the matter of strategy, understanding what strategy brings to you. This guy, PNL $489, PRPL, Rahil Bhai. Yeah, I mean, it really depends, honestly. Nobody can guarantee the profits, because in the end, this guy minus $110. So I don't just show you the profits, I also show you the losses. $59 profit. Okay, because in the end, it's you who will be pressing the buttons, right? Okay, penny stocks are very dangerous. That's the reason they can give you big money, but they can also lose big money. And so you got to be careful when trading penny stocks. Okay, especially the lead gapper on the day. Like today, the lead gapper at some point was PYR, and AVCT. Both of them did good today, but you really need to know when to take the trade. If you do, then you'll be successful, and it takes time. It's not a switch, it's a transition. But the course will definitely set you ahead, and it will make you avoid the mistakes normally people make, to wipe them out completely. 90% traders lose their entire account within 90 days. Okay, and that is established fact, guys. Okay, day trading is extremely risky, but the strategies you learn from the course, they will set you ahead at least 12 months or 18 months of the game. Okay,
Sam UK, no problem, inshallah, anytime, my brother. If you go through YouTube and start to collect the data, it might take you 2 years, 3 years to collect the data you will receive within 7 days. And that is, I am saying it with full conviction, inshallah. What I give is something really solid and really uh, really deep insight of day trading and overall stock market, how it works and how it moves. um, Guys, tap the screen, please. Tap the screen, guys, and also share if you can. Okay. Yes, private group access is instant, but if you, let's say you join a lifetime membership, right now it's 499. You get 7-day course recorded, and plus you get 3 months free access to private group. So choice is yours. You can also join private group on its own. Go on website trading402.com and click join private group, and you will be allowed in private group. Just message us on on Telegram, and somebody would let you in a private group, guys. Okay. अच्छा जी, अब मैं दूसरी साइड से लाइव से बंद हो गया हूँ, और अब मैं अपना मुंह टेढ़ा नहीं करूँगा, अब मैं उर्दू में बात करूँगा, ठीक है जी। तो जो लोग उर्दू समझते हैं वो हाथ खड़ा करें ज़रा, यस टाइप करें अगर आप सिर्फ उर्दू समझ या उर्दू में आपको मज़ा आता है लाइव को सुनने में, ठीक है जी। मैंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया ऐसे करके, ठीक है। मेरी जो फेवरेट लैंग्वेज है वो उर्दू ही है, लेकिन चूंकि मेरे जो इंग्लिश चैनल पे फॉलोअर्स हैं वो सारे के सारे इंग्लिश बोलते हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि उनको जो है ना वो भी इंटरटेन करूँ। इंग्लिश चैनल पे मैं लाइव गया भी नहीं, काफ़ी अरसे से नहीं गया मैं, तो आज मैंने कहा चलें थोड़ा सा उनको जो है ना वो कर दें अपडेट, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। XRPETH 2 कॉइन बाय करते रहें, बाय करते रहें, बाय करते रहें। 2 ही कॉइन है। माना सेंड वगैरह ये तो करते हैं अगर आपने मेटावर्स में करना है। माना सेंड हो गया। और कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि मैंने जब ये, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी प्रॉफिट में दोनों बेचे, माना भी सेंड भी और ये सारे, क्योंकि मैंने बहुत आई थिंक 5 सेंट पे थे या 10 सेंट पे थे जब मैंने लिए थे, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, और ठीक है जी, ये मेरा जो था ना वो जत्था था जो मैंने होल्ड कर रखा था काफ़ी अरसे से, ठीक है। इसमें से बाकी सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, सिर्फ ETH और XRP जो है ना वो मैंने रहने दिया। बाकी ऑलमोस्ट आई डोंट नो 3000-4000% पे मैंने सारे बेच दिए हैं, ठीक है जी। तो आप देख लें, जैसे जैसे आपकी पुल बैक के ऊपर वेट करें। कुछ तो मैंने मोस्ट रिसेंटली दिए हैं, इनके ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो करें। तो बाकी ये है कि ये मोस्ट रिसेंटली ये है माना सेंड मोस्ट रिसेंटली, ठीक है जी। कहाँ पे गया ये,
तो अगर आप लंबे अरसे के लिए करना चाहते हैं तो फिर XRP एंड ETH दोनों को होल्ड बाय करते रहें, होल्ड करते रहें, बाय करके होल्ड करते रहें, उसके ऊपर ज़्यादा आप परेशानी ना करें, ठीक है जी। और इसके अलावा माना है सैंड हो गया, ENJ हो गया, AXS हो गया, ये जो है ना वो आप बाय करके रखते जाएं, बस इनके ऊपर आप ज़्यादा परेशान ना हो, बस बाय करें, रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं। अच्छा जी, जो कुछ स्टॉक्स हैं रिसेंटली मेरे उसके ऊपर स्कैनर के ऊपर चल रहे हैं। SPRB, अगेन आई सेड SPRB इज वन ऑफ दो स्टॉक्स। मोबी खान, मैं किसी के पैसे रिस्क नहीं कर रहा, किसी के पैसे भी नहीं रिस्क कर रहा, किसी के पैसे भी नहीं, ठीक है जी। आई डोंट रिस्क एनी बडीज मनी। मोबी खान एडे जी नहीं, इट्स नॉट होल गेम ऑफ अजम्पशंस। यस, 90% जो ट्रेडर्स हैं वो सिर्फ बैटिंग करते हैं, अजम्पशंस करते हैं और वही मारे जाते हैं। आप अजम्पशंस ना करें, आप प्रोजेक्ट को देखें और प्रोजेक्ट को देख के इन्वेस्ट करें, ठीक है। इन्वेस्टिंग इज गेम ऑफ नंबर्स, डाटा, ठीक है जी। और जो लोग नंबर्स और डाटे को इग्नोर करते हैं वो हमेशा मार खाते हैं। वो सोली बैटिंग है, नथिंग मोर देन बैटिंग, सिर्फ बैटिंग है, ठीक है। और 90% लोग जो हैं वो बैट करते हैं। और यहाँ पे कुछ भी चीज़ टू दी मून नहीं होती, कभी भी नहीं होती, नेवर एवर। आप मेरी एक भी वीडियो नहीं देखेंगे जहाँ पे मैंने ये कहा हो कि टू दी मून, कभी भी नहीं, नेवर एवर, ठीक है जी। और सॉल जो था ये $3.25 पे था जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम इसको एनालाइज किया और मैंने अपने ग्रुप में बताया, ठीक है जी। XRP 17 सेंट पे था। बहुत सारे ऐसे कोइंस हैं, स्टॉक्स हैं जो बहुत अर्ली हमने पिक किए, तो इट रियली डिपेंड्स, ओके। सो आप जब जब तक आप, प्रॉब्लम ये है 90% लोगों में, प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट स्पेंड टाइम, टाइम गुजारते नहीं हैं एक चीज़ को एनालाइज करने में, ठीक है। वो किसी टिकटॉकर को देखेंगे बाय दिस, तो वो सीधा ऐप ओपन करेंगे और बस वो बाय का बटन दबा देंगे। उनको पता ही नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करने हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करने हैं, अपनी रिसर्च कैसे करनी है, आया कि मैं अपना हार्ड एंड मनी इसमें डालूं भी या ना डालूं, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर मेरी आपको एक भी सिंगल वीडियो नहीं मिलेगी, सिंगल वीडियो नहीं मिलेगी जहां पे मैंने ये कहा हो कि ये वाला स्टॉक खरीद लें या ये वाला जो है कॉइन खरीद लें, एक सिंगल वीडियो भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। क्यों कि कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं, मैं वीडियो आज लगाऊंगा, 4 दिन के बाद जाके वीडियो देखेंगे और पता चले कि उन 4 दिनों में जब मैंने वीडियो पोस्ट की और 4 दिन में स्टॉक जो है 200% ऊपर चला गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं SPRB की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग कोर्स में, जब मैं ये लास्ट दिसंबर का कोर्स कर रहा था, ठीक है, तो SPRB जब मैं अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रहा था तो SPRB मेरे स्कैनर के ऊपर चढ़ा, तो मैंने अपनी लाइव में सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को लाइव बोला कि ये स्टॉक जो है ना ये बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। $2.54 पे था तब SPRB, ठीक है, सिर्फ लाइव में। यस, टिकटॉक पे मुझे लोग देख रहे थे लेकिन वो लाइव देख रहे थे, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं थी, ठीक है। तो SPRB $6 पे गया, ठीक है, $2.50 से, लेकिन SPRB स्टिल हैज़ लॉट ऑफ रूम। अगर वो वापस मुड़ता है $4 की रेंज में, $4 से नीचे, ठीक है, तो SPRB अगेन इज अ बाय फॉर मी। आई एम नॉट सेइंग एनीबडी टू बाय, बट SPRB इज अ बाय फॉर मी। रीजन, बहुत सारे रीजन हैं। एक बता देता हूँ, वेरी लो फ्लोट स्टॉक है और इट कैन शूट अप वेरी क्विकली ऑन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम गाइज, ओके। आमिर भाई आप आना चाहते हैं लाइव मेरे साथ, प्लीज आ जाएं। आमिर भाई लाइव आना चाहते हैं तो आ जाएं प्लीज। अगर आमिर भाई आप अभी साथ हैं तो आ जाएं लाइव, अगर आना चाहते हैं तो।
Mobi, yes, good advice, and that's the reason I only say ETH, XRP, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने, बाकी मैंने सारी अपनी क्रिप्टो सेल की बिफोर इट ड्रॉप्ड, और ETH आपका है, XRP है, BTC है, जब भी पुल बैक करे बाय कर ले, कोई मसला नहीं है. Okay. Jaggies, how are you doing? आमिर इस्माइल भाई, आपने आना है लाइव मेरे साथ. जी मोबी खान. भाईजान, अगर मैं आपको इन कॉइन्स की लिस्ट बताऊं ना, जब मैंने इन कॉइन्स को फिगर आउट किया, ठीक है, कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अर्ली, जैसे सॉल है $3.25 की रेंज में था जब हमने इसको मैंने पिक किया, ठीक है जी. तो बात यह कि हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदा अपने तरीके से इसको करे प्लीज़, ठीक है. No, I don't look at charts all day. I'm in and out. Today I took a trade, literally 10 seconds in and out. I scalp. I don't. I hit my target. I'm out. Simple. Yes, I believe that day trading में 90% traders lose money, and it's a very risky game. And that's the reason I always tell people, don't trust anyone. Do your own maths, because when your money is at risk, no one is going to come for survival. Nobody is going to come to rescue you. No one. Okay, so nobody is going to come to rescue your money. Even no TikToker will come. People will just simply vanish. And I have noticed that some of TikTokers who have been saying, Bitcoin to $70,000 by end of this year. Yes, we still have 3-4 days, 5 days left. Maybe it can hit. But look, you can't set these targets short term. I'm sorry. People who set these insane targets in short term, that's complete insanity and betting. Nothing but betting, okay? Yeah, they have gone. I noticed that I haven't seen any video of those big furus, I call them furus, fake gurus, yeah, who said Bitcoin 70,000, 100,000 by end of this year and blah blah blah. Stupid people. To the moon. Anyways, nothing to the moon here, guys. Nothing to the moon here. Plan and strict plan with strong fundamentals and strong technical analysis. Okay? Crypto is investment. Crypto is not a trade, guys. If you're trading crypto, you are not doing it right. You're not doing it right. Okay? Yes, you can make money, but not big money. Big money is buying, holding, yeah? And keep buying. Dollar cost average is the most powerful thing you can do. ठीक है जी, डॉलर कॉस्ट एवरेज ही एक सोल्यूशन है. अच्छा जी, ये अभी NXTD एक स्टॉक है, SPRB और APT. ठीक है जी, APT, NXTD और SPRB ये मेरी नज़र में रहेंगे अगले 3-4 दिन 5 दिन. ठीक है, जनवरी का फर्स्ट वीक स्पेशली SPRB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, NXTD के लिए भी, और इसके अलावा APT, तीनों स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू मोबी खान, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. तो मेरे भाइयों, आमिर भाई किधर चले गए? आमिर भाई आप साथ हैं हमारे या चले गए? थैंक यू वेरी मच मोबी भाई, थैंक यू. वो आप पेयर आप खुद देख लें. USTD इज बेटर पेयर देन एनी अदर पेयर. सो बाकी आप देख लें. D भी ठीक है, T भी ठीक है, जो सा मर्जी करें आप. ठीक है,
हादी अली, क्या हाल है? ठीक है, सब ठीक है? गाइस शेयर करें लाइव को और टैप करें अगर कर सकते हैं तो। और आज हम अपनी पूरी पोटेंशियल में, मेरे ख्याल में 12 बजे के बाद ही मेरे फॉलोअर्स आते हैं, पता नहीं क्यों, ये रात के चिमगादड़ हैं या पता नहीं क्या है, पता नहीं 12 बजे के बाद सारे आते हैं। 12 बजे के बाद तकरीबन जो है ना वो 50 60 70 80 लोग होते हैं, 100 लोग भी हो जाते हैं कभी कभी, मैंने देखा है, पता नहीं क्यों। और मैं चाहता हूँ कि लोग 9 बजे आएँ, जो भी मुझसे हो सकता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मैं दूं। 10 12 से पहले पहले क्लोज करके आराम से बेड में सो जाएं यार, ये रात को जागने वाला काम सही नहीं है। तो अभी मुझे यकीन है कि जैसे ही 12 बजेंगे देखेंगे आप कैसे लोग आना शुरू होते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। हाँ जी, लेकिन चलें कोई। तो यहाँ पे कितने लोग हैं जो अभी ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं, टिपिकल जॉब्स कर रहे हैं? शर्माना नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। यस टाइप करें अगर आप इन 4 जॉब्स में से एक में है, ठीक है? टेक अवे, फैक्ट्री, ड्राइविंग, कोई भी डिलीवरी ड्राइविंग, टैक्सी है, डिलीवरी ड्राइविंग है, कुछ भी है, ठीक है, और ऑफिस, ठीक है। ये 4 जॉब्स में अगर आप हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकती है, इनमें से अगर 4 जॉब्स में हैं तो प्लीज़ यस टाइप करें आप। टेक अवे, फैक्ट्री, ड्राइविंग किसी किस्म की भी, डिलीवरी ड्राइवर हो सकते हैं, टैक्सी हो सकती है आपकी, ऊबर ईट हो सकती है, कुछ भी, या ऑफिस, ठीक है। ये 4 शोबों में अगर आप हैं तो यस टाइप करें प्लीज़, क्योंकि ये चारों चीज़ें जो है ना, ये चारों की चारों चीज़ें जॉब लेस हो जाएंगे बंदे, ठीक है, जॉब लेस हो जाएंगे। और जो कि बहुत डेंजरस काम होने वाला है अगले 5 से 10 सालों में। कितने सालों में? 5 से 10 सालों में, ठीक है जी। और अगर मैं ये इंटरव्यू सुन रहा था, मैं आपको अभी इंटरव्यू सुनाता हूँ, वो 1 सेकंड दें, ठीक है जी। और गाइस, What to do about mass unemployment? आई एम गोना से, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जब इलोन मस्क जो दुनिया की जो चेंज होने वाला है ना, आज की दुनिया में जो चेंज होने वाला है ना, उसमें सिंगल हैंडेडली एक बंदा है जो सिंगल हैंडेडली दुनिया को चेंज कर रहा है, ठीक है, और वो इलोन मस्क है, ठीक है। अगर आप उसकी बात को इग्नोर करेंगे तो करते रहें, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है, मैं तो नहीं करूँगा भाई। ये सुने इसकी बात। This is going to be a massive social challenge. If there's not a need for your labor, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? And then how do we ensure that the future is going to be the future that we want, that we still like? No, I mean, I do think that there's a potential path here, which is, and we're really getting into science fiction or sort of advanced science stuff, but having some sort of merger with biological intelligence and machine intelligence. To some degree, we are already a cyborg. You think of like the digital tools that you have, your phone, your computer, the applications that you have. Like the fact that, as I was mentioning earlier, you can ask a question and instantly get an answer from Google or from other things. And so you already have a digital tertiary layer. I say tertiary because you can think of the limbic system, kind of the animal brain or the primal brain, and then the cortex, kind of the thinking, planning part of the brain, and then your digital self as a third layer. So you already have that, and if somebody dies, their digital ghost is still around. All of their emails and the pictures that they posted and their social media, that still lives even if they're physical, if they died. So over time, I think we'll probably see
a closer merger of biological intelligence and digital intelligence. And it's mostly about the bandwidth, the speed of the connection between your brain and your the digital extension of yourself. Particularly output, and output, if anything, is getting worse. You know, we used to have like keyboards that we'd use a lot. Now we do most of our input through our thumbs on a phone, and that's just very slow. A computer can communicate at 1 trillion bits per second, but your thumb can maybe do, I don't know, 10 bits per second or 100 if you're being generous. So some high bandwidth interface to the brain, I think, will be. Guys, this sometimes scares me. ये मुझे कभी कभी डरा देती हैं चीज़ें कि जिस तरह चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं ना, जिस स्पीड के साथ चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं, ठीक है. और स्पेशली इलोन मस्क की जो कंपनी है न्यूरालिंक, ठीक है, जो वो कर रही है, अगर चूँकि 90% वो उसमें कामयाब हो चुके हैं, ठीक है, और मुझे डाउट नहीं है, मैं डाउट नहीं करता कि ये 100% कामयाब हो जाएंगे, ठीक है, अगले 4 से 5 सालों में, ठीक है. और जिस दिन ऐसा हो गया गाइस, उस दिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम जानते हैं जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उसका नक्शा बदल जाएगा कंप्लीटली, ठीक है. ये वो तो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कोई नहीं भूल सकता भाई. देखें न्यू वर्ल्ड, ये आप ये समझ लें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है जो हो रहा है ना अभी, या जिस तरीके से हो रहा है, जिस स्पीड के साथ हो रहा है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है. जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कंट्रोल कैसे किया जाएगा लोगों को, आप ये सोचें. और उसका कंट्रोल होगा फाइनेंशियल कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी. ये बात मान लें लोगों, फाइनेंशियल कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल होगा. जब पानी आप खरीदेंगे, जब ऑक्सीजन आप खरीदेंगे, जब इलाज आप खरीदेंगे, ठीक है, जब खाने की हर चीज आप खरीदेंगे, जब एनर्जी आप खरीदेंगे, ठीक है, और अगर आप जॉब नहीं है और आप सोशल सिक्योरिटी, यानी इसके एंड पे उसने ये भी कहा है कि दे माइट बी अ यूनिवर्सल मिनिमम इनकम. यूनिवर्सल मिनिमम इनकम का मुराद ये है कि चूंकि जो ऑर्डिनरी जॉब्स होंगी वो बंदे जॉब लेस हो जाएंगे, ठीक है, उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी. बात आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो बंदा अभी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी. जो बंदा क्या नाम है उसका, डिलीवरी ड्राइवर है, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी. जो बंदा टैक्सी ड्राइवर है उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी. जो बंदा टेक वे में काम कर रहा है उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी. जो बंदा एजडा में काम कर रहा है उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, ठीक है. जो बंदा डॉक्टर जीपी है उसकी जब 6 बिलियन 7 बिलियन लोगों में से, ठीक है, 5 से 6 बिलियन लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि इनकम का जरिया क्या होगा. तो उसका सोल्यूशन जो ये बंदा, देखे ना, ये वो लोग हैं जिनको या तो शैतान ने बहुत कुछ दिया है या इनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ है, अल्लाह ने इनको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक टेस्ट बन जाए, ठीक है. और हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते. जो बंदा इग्नोर करेगा और जो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर रहेगा, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी से मुराद ये नहीं जो आप आज का बेनिफिट सिस्टम है, ये बेनिफिट सिस्टम नहीं रहेगा, ये बेनिफिट सिस्टम खत्म है, समझ लें इसको, ठीक है. नो आई हैव मल्टीपल थिंग्स गाइज, आई हैव अच्छा, पहले मुझे ये पॉइंट अपना कंप्लीट करने दें, ठीक है. टैक्सी ड्राइवर्स, टेक वे वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ऑफिस वर्कर्स, ठीक है, जो भी आप ऐसी जॉब जो रोबोट्स आपसे ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे, ठीक है, ये अंडरस्टैंड कर लें. और टैक्सी ड्राइवर की जॉब रोबोट्स यानी ऑटोनमस टैक्सी बहुत बेहतर करेगी, जैसे मैंने अभी आपको ई हैंग की मिसाल दी है, ठीक है. और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, करते रहें, कोई मसला नहीं है. जो टैक्सी ड्राइवर मुझे गालियाँ निकालें, कोई मसला नहीं है, ठीक है. ये ई हैंग, ठीक है, ये आपको पूरी दुनिया में हर शहर में नजर आएगा, ठीक है, हर शहर में नजर आएगा. ये बहुत स्लोली, ठीक है, जो 2 up to 2 पैसेंजर्स आराम से, और ये बेटर से बेटर होता जाएगा, ठीक है. अभी ये 2 पैसेंजर आराम से फ्रॉम A to Z, यानी एक रोड से दूसरी रोड तक, या आपके घर से आपको अस्पताल तक, ठीक है, आपके घर से टाउन तक, आपके घर से जो आपका लोकल एयरपोर्ट है वहां तक लेके जाएगा आराम से, ऑटोनमसली. आप मोबाइल पे बुक करेंगे,
आपके गार्डन में या आपके फ्रंट डोर के सामने लैंड होगा, आप उसमें बैठेंगे, आपको A to Z ले जाएगा। ठीक है जी, एक चीज़ ये। सो ऑटोनॉमी डिफरेंट शेप्स में आएगी। आपका खाना जिस तरह अभी डिलीवर हो रहा है, अभी वो डिलीवरो है, ठीक है, ये जो जितने भी डिलीवरो और ऊबर ड्राइवर्स हैं, इनकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। खाना आपका ऑटोनॉमी के जरिए डिलीवर होगा। मिल्टन कीन्स में ऑलरेडी हो रहा है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं यूके में जहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, करते रहे, कोई मसला नहीं है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है भाई। मेरे पास अभी 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है, ठीक है, 5 सोर्सेज ऑफ इनकम डिफरेंट, ठीक है, और मैं अभी डिजिटल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। अभी हम एक प्रोडक्ट ऐसी बना रहे हैं जो डिसरप्टिव प्रोडक्ट होगी प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री में इंशाल्लाह। ठीक है जी। हाँ, जो लोग टेक्निकल्स हैं, जैसे मुझे नहीं पता कि इनका इम्प्लीकेशन कैसे होगी, आई डोंट नो, मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका कि ये कैसे चेंज होगा। जैसे इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, मुझे नहीं पता कि ये कैसे चेंज होगा, लेकिन जो घर बनाने वाले ब्रिक लेयर्स, ठीक है, या जो फाउंडेशन बनाने वाले हैं, या जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स की जॉब खत्म हो जाएगी। उसकी रीज़न 3D प्रिंटिंग इज गोइंग टू बी अ बिग मैसिव थिंग। फैब्रिकेटेड होम्स फैक्ट्री में बनेंगे, डिलीवर होंगे, आपकी साइट के ऊपर डिलीवर हो जाएंगे, जॉब डन। ठीक है, लेकिन जो टेक्निकल जॉब्स हैं, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिशियंस, आई डोंट नो उनकी इम्प्लीकेशन कैसे होगी, मुझे पता नहीं, अभी मैंने रिसर्च की नहीं कि उसके लिए क्या हो रहा है। ठीक है, प्लम्बर्स जो हैं, गैस इंजीनियर्स जो हैं, चूँकि गैस नहीं रहेगी, ठीक है, जहाँ तक मेरा बिलीव है, ठीक, गैस नहीं रहेगी, जो यूटिलिटीज़ हैं वो कम्प्लीटली चेंज होंगी, तो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा वो। ठीक है, लेकिन जो मैंने जॉब्स आपको 5-4 गिनवाई हैं, वो तो उनके बारे में मैं 200% श्योर हूँ कि अगले 5 से 10 सालों में ये सफाई हस्ती से मिट जाएंगी। जैसे मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, और ये मिसाल अक्ल वालों के लिए बहुत बड़ी मिसाल होगी। आज से 15 साल पहले, ठीक है, जब आप शादी के ऊपर फोटो लेते थे, ठीक है, एक फोटोग्राफर आता था, फोटो लेता था, ठीक है, तो उस फोटो को डेवलप करने के लिए जॉब्स थी। जब कोडेक की एक शॉप होती थी, या एक्सप्रेस फोटो था, पता नहीं कौन कौन से थे, ठीक है, वो फोटो की एक रील होती थी, वो जाती थी उधर वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से वो उसको बोलते थे, पता नहीं फोटो साफ करवाई या नहीं करवाई, ठीक है, फोटो साफ होते थे, फिर वो प्रिंटिंग होती थी उनकी, फिर उनमें बुक लगती थी। ठीक है, आज मुझे बताएं, वो जॉब जो बंदा करता था वो किधर है आज? क्या वो जॉब एग्जिस्ट करती है आज? ये बताएं ज़रा। ठीक है, नहीं करती। ठीक है, वो जॉब है ही नहीं है। इसी तरह ये जो जॉब्स हैं ना, ये वाइप आउट हो जाएंगी, कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं बिलीव करना, ना करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। जैसे आज से 20 साल पहले टाइप राइटर्स हुआ करते थे, आप ना कोर्ट में जाते थे, कोर्ट में सामने, अभी भी पाकिस्तान में तो अभी भी कुछ इलाकों में हैं, ठीक है जी, तो वो टाइप राइटर्स आपको लेटर टाइप करके देते थे, या आपको बयान हल्फी होती थी, या एफिडेविट वो टाइप करके देते थे, ठीक है, वो करते, ठीक है, वो जॉब आज किधर है? ख़त्म हो गई है। ठीक है, और अगर उस बंदे ने अपने दिमाग को इन्हांस नहीं किया, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो उसका क्या हाल होगा अभी आज के दौर में, सोचें ज़रा। ठीक है, या अगर खुदा न खास्ता उसने अपने बच्चे को ही उस टाइप राइटिंग की जॉब के ऊपर लगा दिया, तो क्या होगा आज उसके साथ। सो टेक अवे वर्कर्स जितने भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के, मेरे भाई हैं, बहनें सारी, मैं दुआ करता हूँ कि आपका मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो, लेकिन अगले 5 से 10 सालों में आई एम टेलिंग यू दिस विल बी गॉन। ठीक है, जो टेक अवे के लिए रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे रोबोट्स जो टेक अवे को कंप्लीटली ऑटोनोमस कर देंगे, कंप्लीट ऑटोनोमस। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है लक इन कॉफ़ी के नाम से, और इसके ऊपर मेरा बिलीव सिर्फ यही था कि जो लक इन कॉफ़ी कंपनी है, ये क्यों गायब नहीं होगी सफाई हस्ती से। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जिस तरह उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया ना, वो आज के लिए नहीं था, वो अगले आने वाले 10-15 सालों के लिए था। ठीक है, और लक इन कॉफ़ी एक ऐसी कंपनी है, LKNCY, जो आने वाले दौर में स्टारबक्स और कोस्टा कॉफ़ी और इन सब को मात देगी इंशाल्लाह सून। ठीक है जी, अभी सिर्फ चाइना में एक्सपेंड करेगी बहुत जल्दी। तो अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं और कितनी जल्दी हो रही हैं, अंडरस्टैंड करें जी प्लीज़। ठीक है, एग्जैक्टली एक तो चीज़ ये है कि कार्स, तो मेरे ख्याल में ये लाइसेंस भी खत्म हो जाएंगे। मैं ये भी बता दूं आपको, जब स्टीयरिंग ही नहीं रहेगा कार में, तो लाइसेंस की क्या ज़रूरत रहेगी। ये भी मैं भी मज़े की बात बताऊँ, जितनी भी ये कार्स है ना, कार्स के लाइसेंस भी ख़त्म हो जाएंगे। ये ड्राइविंग लाइसेंस का
मामले खत्म। अगर हो सकता है, मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगा 2030 2035 में, लेकिन 2035 में कार का स्टीयरिंग जो है ना ये गायब हो जाएगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, वेरी विद फुल कन्विक्शन मैं बता सकता हूँ कि 2035 में कार का जो ये स्टीयरिंग है ना जिससे मनूवर होता है, ठीक है, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जब स्टीयरिंग ही गायब हो जाएगा तो लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो ये जितने भी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स हैं इनकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जो जो टेस्ट पास करने वाले हैं उनकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ये जो ड्राइविंग के जो ऑफिस हैं जहाँ पे आप जाके टेस्ट देते हैं इनकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सो चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं। क्या आप बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे, क्या आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आपके ऊपर है, या आप गुलाम बन। देखें, एक और चीज़ मैं बताऊँ, कुछ लोग कहेंगे जी कि जैसे अल्लाह करेगा वैसे ही होगा, ये होगा वैसे होगा, जैसे रब करेगा ना। ठीक है, आपने चीज़ों को देखना है, उनको पर्सपेक्टिव में डाल के उसके बाद डिसीजन लेना है अपने फ्यूचर के बारे में। ये नहीं है कि आप तवक्कल है जी आप बस बैठे रहें हाथ पर ना, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का नाम तवक्कल नहीं है। तवक्कल अपनी हिम्मत करके, अपनी कोशिश करके फिर अल्लाह पे छोड़ देना, ये तवक्कल है। ठीक है जी, तो याद रखें कि चीज़ें बहुत जल्दी तेज़ हो रही हैं, अगर आप नहीं बदलेंगे तो प्रॉब्लम होगी। पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत तवज्जो दें। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, सीखें डिफरेंट तरीक़ों से। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो आप सीख सकते हैं। ठीक है जी, नो जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको। AMD मैंने बोला आपको, AMD के बगैर दुनिया नहीं चलेगी। ठीक है, AMD स्टॉक ऐसा है दुनिया नहीं चलेगी। AMD बढ़ता ही जाएगा, शॉर्ट टर्म में हो सकता है लो हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रैजेक्टरी इसकी अपवर्ड ही है। ठीक है, 10 सालों के लिए अगर सिर्फ बंदा, ये 4 स्टॉक मैंने पहले भी बोल दिए थे, दोबारा बोलने लगा हूँ। ठीक है जी, AMD, ठीक है, NVIDIA, XPEV, ठीक है, और एप्पल, ये 4 कंपनीज आप सिर्फ बाय करते जाएं, सिर्फ 4 को, और कोई किसी चक्कर में ना पड़े, सिर्फ 4 कंपनीज आप बाय करते जाएं स्लो एंड स्टेडीली। ठीक है, बाय करते जाएं, सारे पैसे एक ही दफ़ा ना डालें। ठीक है, बाय करते जाएं स्लोली स्लोली। ठीक है, AMD, NVIDIA, XPEV, एप्पल, ठीक है, ये 4 कंपनीज आप बाय करते जाएं। और जो भी कंपनी जो डिसरप्टिव आइडिया रखती है मार्केट दुनिया के बारे में, जो दुनिया को चेंज कर देगी, जैसे टेस्ला है। टेस्ला एक कार कंपनी नहीं है। ये जो अभी आप टेस्ला की प्राइस देख रहे हैं $1100 या $1200, मैंने तो $1500 की इसकी 2022 का जो है ना वो टारगेट दिया हुआ था। ठीक है जी, और मेरा टारगेट 2025 का टेस्ला का $7500 का टारगेट है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जिसको यकीन नहीं है वो उसका मसला नहीं है, यकीन करवाने के लिए मैं नहीं यहाँ पे बैठा, लेकिन जो समझेगा उसके लिए बहुत कुछ है। ठीक है जी, उसके लिए बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ। ये मैंने कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं अपने, ये मेरे टारगेट्स हैं, आपके अपने हो सकते हैं। आई डोंट नो कि आपके टारगेट्स क्या होंगे। ठीक है जी, जैसे XPEV बाय 2025 मैंने कहा जी कि $200 का स्टॉक होगा अगर 500 का ना हुआ। 500 तो कोई रोक नहीं सकता इसको। ठीक है जी, लेकिन जस्ट इन केस और कौन कौन से मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। टेस्ला हेयर, टेस्ला बाय 2030 विल बी ओवर 10K, एंड मुझे कोई डाउट नहीं है, इससे कोई भी डाउट नहीं है मेरा इसमें कि टेस्ला 2030 में 10K से ऊपर ही होगा। ठीक है, नीचे नहीं होगा। ठीक है, क्यों कि टेस्ला सिर्फ कार बनाने वाली कंपनी नहीं है, उनका एनर्जी का जो बिजनेस है ना वो टेस्ला का 75% होगा। ठीक है जी, तो अभी तो वो स्टार्ट हुआ है काम। अच्छा, टेस्ला बाय 2025 3K, मैं डाउट नहीं हूँ मुझे कि 3K पे होगा टेस्ला। ठीक है जी, लेकिन अगेन आपने इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है गाइस। अभी मेरे पास कुछ और भी थी, लिस्ट थी पड़ी हुई, लेकिन ये बहुत असल में पुरानी चीज़ें हैं ना, जो पता नहीं साल पुरानी कितनी है। एनीवेज गाइस, द पॉइंट इज, कुछ कंपनीज ऐसी हैं अगर आप उनको सही तरीके से करेंगे। ठीक है, एक तो है 3D प्रिंटिंग कंपनीज। ठीक है जी, उसके अलावा आप चले जाएं जी जनाब वाला 3D प्रिंटिंग के रिलेटेड कोई भी स्टॉक है वो बहुत ऊपर जाएगा अगले 5 से 10 सालों में। 3D प्रिंटिंग इज गोइंग टू बी बिग थिंग। ठीक है, और इसी से मैस प्रोडक्शन होगी। मैस प्रोडक्शन 3D प्रिंटिंग के अलावा हो ही नहीं सकती, और जब मैस प्रोडक्शन 3D प्रिंटिंग के थ्रू होगी तो मैस अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर होगी, ये हो ही नहीं सकता ना हो। ठीक है जी, किम पुटिन राजा, आपका डाउट है कि नियो विल डू बेटर, एक्सपंग विल डू फार बेटर देन नियो। ये बेशक ये वाला क्लिप मेरा रिकॉर्ड कर लें बेशक। ठीक है जी,
Xpeng XPEV will always do better than Neo, always 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 always, ठीक है जी। और मेरा कोई डाउट नहीं है, थोड़ी देर पहले मैंने Xpeng के बारे में और नियो का कंपैरिजन किया है। आप शायद उसको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसका मैंने कंपैरिजन किया, ठीक है जी। जब नियो 60 पे था और Xpeng 42 पे था, तो मैंने क्लियरली बोला कि Xpeng जो है वो नियो को क्रॉस करेगा और करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, देखें Xpeng एक मास मार्केट को टारगेट कर रही है, ठीक है। दूसरा Xpeng की अपनी फैक्ट्रीज हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं, तीसरी के लिए अभी उन्होंने जगह ले ली है और उनको चाइना की बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तीसरा जो उनका प्राइस टैग है ना, वो इतना अट्रैक्टिव है कि वो चाइना की मार्केट को तो बाय स्टॉर्म लेंगे विदाउट अ डाउट, ठीक है। लेकिन यूरोप की मार्केट को वो समझ लें कि अगर टॉप 3 में ना हुए लेकिन टॉप 5 में ज़रूर होंगे, और नियो डेफिनेटली टॉप 5 में नहीं होगा यूरोप में, ये मैं आपको बता दूं, फॉर श्योर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फोर्ड, मैं इस तरह मेरी रैंकिंग है, टेस्ला, फोर्ड, ठीक है जी, उसके अलावा XPEV, ठीक है। ली को शायद मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए ना करूं, लेकिन ली इज अनदर गुड कंपनी, ठीक है। ये मेन प्लेयर होंगे ऑटोनोमस व्हीकल्स में। Xpeng का जो ऑटो पायलट है, एक्स पायलट के नाम से, आप उसके बारे में रिसर्च करें, आपको अंदाजा होगा कि Xpeng किधर जा रहा है। बेसिकली रिसर्च बहुत जरूरी है इसके ऊपर, ठीक है जी। Yeah, Apple, by far, Apple is one of the stock which you cannot stop buying. I mean, अगर आप सिर्फ ये जो 5-6 स्टॉक मैंने आपको दिए हैं, अगर आप सिर्फ इन्हीं को डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहें और कुछ भी ना रबिश करें, तो हर महीने की वेज, अगर इवन इफ आप वेज पे हैं अभी, और अगर आप ये 5 स्टॉक के ऊपर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते रहें, तो अगले 10 सालों के बाद आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करेंगे। यही स्टॉक आपको कमा कमा के देंगे, डिविडेंड्स देंगे। और ये वो स्टॉक मैं बता रहा हूँ जो सून, इनमें से सिर्फ एक स्टॉक है जो अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, XPEV। बाकी सारे स्टॉक्स जो वो प्रॉफिट मेकिंग है और कुछ तो डिविडेंड भी दे रहे हैं, ठीक है जी। तो अंडरस्टैंड करें कि यहाँ से आपको मल्टीपल इनकम्स मिलेंगी, और स्टॉक के अराउंड ऑप्शंस के थ्रू मल्टीपल इनकम्स कैसे जनरेट कर सकते हैं आप, जो है ना वो फार आउट, जो है ना वो आउट ऑफ मनी कवर्ड कॉल्स बेचें, ठीक है जी, कैश सिक्योर्ड पुट्स बेचें, ठीक है, जिनसे आपको प्रीमियम कलेक्ट होगा, ठीक है। हर वीक आप प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको अभी बोलूं कि अगर कोई बंदा AMD खरीदता है, ठीक है, AMD खरीदता हो और वो सिर्फ 30 डेज की, 30 डेज आउट जो है ना वो कॉल बेचता है 170 की, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 170 की गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज ही आप AMD ले ले 154 की, ठीक है, 154 की अभी के अभी ले लें, ठीक है, और साथ ही 170 की कॉल बेचते हैं उसकी $4.70 पे, अभी $4.70 पे, ठीक है, $4.70 पे, तो आपकी एवरेज राइट नाउ स्ट्रेट वे $149 हो जाएगी, ठीक है जी। और इसके साथ अगर आप 120 की पुट बेचते हैं, 120 की सेम डे की, जनवरी 2028 की 120 की पुट बेचते हैं, 120 की पुट बेचते हैं, या बल्कि 125 की पुट बेचते हैं, $1.25 की है, ठीक है। सो $124 वहां से, सिर्फ 100 शेयर्स की बात कर रहा हूँ, $124 वहां से, और $475 जो है वो आपके कवर्ड कॉल से, ये कितने हो गए? ऑलरेडी $600 आपने कलेक्ट कर लिए एक महीने के ऊपर, ठीक है। अब जब ये महीने में वर्थलेस एक्सपायर हो जाए, दोबारा से रिपीट करें इसको, डिपेंडिंग ऑन के स्टॉक कहाँ पे है। अगर स्टॉक 160 पे चला गया है अगले महीने की 28 तारीख तक, ठीक है, आप दोबारा से रीइवैल्यूएट करें इसको, ठीक है। सो आप डिविडेंड से ज़्यादा पैसा ऑप्शंस सेल करके कमा सकते हैं हर महीने, ठीक है जी। और हर महीने अगर आप सिर्फ इसी AMD के स्टॉक के ऊपर $600 हर महीने ऑप्शन सेल करके कमाएं, $600 हर महीने, तो 12 महीने में आप 12 महीने में $7,200 कमा लेंगे, और AMD के डिविडेंड अलग से, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करें, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिनसे आप इस मार्केट से पैसा बना सकते हैं और रेगुलरली बना सकते हैं। आपको स्टॉक को बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फार आउट चले जाएं थोड़े से। जब भी आप कवर्ड कॉल बेचें, आप फार आउट जाएं थोड़े से, ताकि प्रीमियम बेशक थोड़ा कलेक्ट हो, लेकिन आपको पता हो कि आपका शेयर भी आपके पास रहेगा
और प्रीमियम भी आपके पास रहेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है जी। नो, आई डिडंट से दैट। मैंने ये नहीं कहा कि अगले 10 साल में और कोई भी चिप मेकर नहीं होगा, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन AMD को कोई बीट नहीं कर सकेगा। अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, नहीं करना कोई मसला नहीं है। $7,200 ईयर बोला है। ठीक है, ये थ्रू आपकी कवर्ड कॉल्स एंड कैश सिक्योर्ड पुट्स। ठीक है, स्टॉक आपका उधर ही है, स्टॉक आपने कभी बेचना ही नहीं है। स्टॉक को तो आप बार बार डॉलर कॉस्ट एवरेज करते जाएंगे। AMD ऐसा स्टॉक है, अगर आप AMD स्टॉक की ट्राजेक्ट्री देखें ना तो बड़ी ज़बरदस्त ट्राजेक्ट्री है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोग देखिए बिलीव नहीं करते, इट्स फाइन। मुझे किसी को यहाँ पे बिलीव करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ड्यू डिलीजेंस खुद करें, खुद करें। $89 पे था, $89 पे था जब मैंने AMD का नाम लेना शुरू किया। $89 पे। ठीक है जी, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है जी, इधर। ठीक है, तो लोग इग्नोर करेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसकी आप अगर वीकली ट्राजेक्ट्री देखें ना, आपको ये देखें। ठीक है, ये वीकली चार्ट आप इसका, तो आप ये छोटे छोटे बम्प्स को इग्नोर करें, ये छोटे छोटे बम्प्स को इग्नोर करें, हम्प्स को इग्नोर करें। ये पुल बैक्स है, मिनी पुल बैक्स हैं। ठीक है जी, तो इनको इग्नोर करें। लॉन्ग टर्म जो बंदा AMD, NVIDIA, अब NVIDIA को देखें। NVIDIA का क्या हुआ? NVIDIA जो था ये $600 पे था। ठीक है जी, कहां पे था? $600 पे NVIDIA था। ठीक है, कहां पे? $600 पे। और चूंकि 1 to 5 स्प्लिट हुआ, एग्जैक्टली सेम चार्ट आपको नजर आएगा। देखें जी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चार्ट। ठीक है, AMD NVIDIA हैंड इन हैंड। ठीक है, AMD NVIDIA। अच्छा, 1 to 5 स्प्लिट हुआ जब, तो ये 120 पे था। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे स्प्लिट हुआ, यहाँ पे। ठीक है जी, ये यहाँ पे था। ठीक है, 120 पे आया, ये 120 से अब दोबारा 350 पे चला गया। ठीक है, सो जिस बंदे ने तब ये $600 का सिर्फ एक स्टॉक लिया हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्री स्प्लिट, या प्री स्प्लिट मार्च में ले लिया हो इधर, ठीक है, 2020 में। ठीक है, तो देखें कि कहां पे होगा। ये स्टॉक कभी रुकने वाले नहीं है, जो मर्जी कर लें, हम माने या ना माने। NVIDIA, AMD विल नेवर स्टॉप। AMC AMC, वाह मैन। AMC के बारे में मेरी एक वीडियो है जिसके ऊपर बैकफायर हुआ। AMC इज सिंक, क्या कहते हैं उसको, सिंकिंग शिप है। ठीक है जी, AMC इज सिंकिंग शिप। No, you see, that's the problem. They can try to make their own chips, but they can't beat AMD and NVIDIA. There is no way they can beat. It's not going to happen. Trust me. But chips are not going to be used only in cars. That's the trouble you people don't understand. Autonomy is not only about cars, guys. Understand this. Everything will be autonomous. Everything around you will be autonomous. जो आपके घर में हूवर है, जो आपके घर में बटन लगा हुआ है, स्विच बटन ऑलरेडी हो गए। ठीक है जी, कंप्यूटर्स, आपकी जो फैक्ट्री के रोबोट्स होंगे, जो 3D प्रिंटिंग मशीन्स होंगी, आपकी जो सर्जन के लिए जो रिमोट सर्जरी की रोबोट्स हैं, उनके अंदर चिप्स, क्या कहते हैं उसको, ड्रोन्स के अंदर चिप्स विल बी एवरीवेयर। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज्ड लोगों के अंदर भी चिप्स ना आ जाए। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। ठीक है जी, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। No, 3D printing will take over chip making, guys. Understand this, yeah? That's why they're focusing on 3D printing. So chips will be made through 3D printing. Okay? So even वहाँ पे भी jobs नहीं रहेंगी। ठीक है जी, तो हमारी जॉब है सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये आगाह करना।
हाइपर लिंक सर्च कर लें, कंपनी हाइपर लिंक के नाम से, ठीक है, हाइपरसोनिक, न्यूरालिंक, ठीक है जी। ये और बहुत सारी, क्रिस्पर सर्च कर लें, एडिटास सर्च कर लें, ठीक है जी। इन कंपनीज को देखें ये क्या कर रहे हो, कहाँ पे इनकी सक्सेस रेट क्या है, कहाँ पे ये पहुंच चुके हैं ये लोग, ठीक है जी। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम जब भी कोई नई चीज़ हमारे पास आती है ना, AMC stock is I don't know, maybe अगर आप if you're looking for a big squeeze, which apparently they have been promising for past, like, I don't know, maybe 7-8 months, AMC is done. AMC will just bleed slowly, giving idiots hope that there would be some sort of $1,000 squeeze. I hope if somebody is in it, they might get it, but I have a very अगर आप मेरी AMC के बारे में वीडियो तब की देखें जब ये $50 की रेंज में था, और हर रोज यूट्यूबर्स कह रहे थे, हर रोज गया स्क्वीज, 1000 पे गया, 1000 पे गया ना, और मैंने वीडियो बनाई और उस पर मुझे इतनी गालियां पड़ी क्योंकि वहाँ पे कुछ बैग होल्डर्स थे उसके। तो एनीवेज लिसन, अंडरस्टैंड करें कि जो है ना वो स्मार्ट मनी कैसे काम करता है, ठीक है, और स्मार्ट मनी के पीछे कौन है, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ब्रोकर्स और SEC और ऑल दिस बिग गन्स आर नॉट बिहाइंड स्मार्ट मनी, then there is even better reason that they call you dumb money. There is a better reason and there is a right reason that they call you dumb money, because we are dumb, nothing but dumb. स्क्वीज हर रोज आते हैं यार। अब SPRB मैंने बोला है, SPRB की तरफ देखो, अगर आप उस तरह के स्टॉक्स चाहते हो तो हर रोज आपको स्टॉक मिलेगा। डे ट्रेडिंग इज ब्यूटीफुल, दैट्स द रीजन आई लव डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में आपका कैपिटल फ्री है, आप यू आर like you make your money, you get out, you sit tight, that's it, okay, that's what you do. प्रॉपर्टी में सिर्फ जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं वो ये होगा, बाय 2030 एक चीज हो सकती है, वो ये कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो तो कंप्लीटली चेंज होगी, रुकेगी नहीं, चेंज होगी, ठीक है। वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी, ठीक है जी, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन वो भी हो सकता है कि फैब्रिकेटेड होम्स हों जो ऑलरेडी फैक्ट्री में बिल्ट होके वहाँ पे सिर्फ असेंबल किए जाए, मेरा जहाँ तक अभी हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और होगा। बाकी है कि प्रॉपर्टी बिजनेस, रियल इस्टेट, कभी लोग को रहना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी की मार्केट बूम ही करेगी। कैसे चेंज होगी अभी तक मुझे पता नहीं है, चेंज कैसे होगी, ठीक है, इवॉल्व कैसे हो रही है। हम सर्विस एकोमोडेशन में डेवलपमेंट के अंदर भी हैं, ठीक है, तो सर्विस एकोमोडेशन सो फार सो गुड। यस, ये वाला महीना बहुत जो है ना वो लो एंड पे गया, 47% हमारी ऑक्यूपेंसी रही नियरली, ठीक है जी। तो लेकिन पार्ट ऑफ बिजनेस, उसमें थोड़ा सा चलें, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, विच इज़ गुड। सो इतनी टेंशन नहीं है उसमें, लेकिन सर्विस एकोमोडेशन गुड है। यस एग्जैक्टली, सो प्री फैब्रिकेटेड से भी थोड़ा सा हो सकता है एडवांस हो जाए, वो इस तरह एडवांस होंगे कि हो सकता है पूरे के पूरे घर 3D प्रिंटिंग के ऊपर बन के आपको डिलीवर किए जाएं, या हो सकता है आपकी साइट के ऊपर ही 3D प्रिंटिंग की जाए घर की, ठीक है जी, इस तरह का भी हो सकता है जी। बाय टू लेट की तरफ तो हम नहीं जाएं अभी। जो अगले 5 से 10 सालों में जो चीज़ आपके लिए पैसा बना सकती है, जिसके ऊपर बहुत पैसा बन सकता है, और उसके लिए हम जॉइंट वेंचर भी करने वाले हैं, वो है कमर्शियल कन्वर्जन, ठीक है। सबसे अभी जो है ना वो सबसे ज़्यादा पैसा अगर आप बहुत जल्दी बना सकते हैं प्रॉपर्टी में, तो वो है कमर्शियल कन्वर्जन। एक टूटा फूटी ऑफिस वाली बिल्डिंग लें, फैक्ट्री बंद हो पड़ी हुई है वो लें, ठीक है, उसको आप जो है ना वो उसको आप कमर्शियली कन्वर्ट करें थ्रू स्मॉल रेजिडेंशियल यूनिट्स में, 1 बेडरूम 2 बेडरूम फ्लैट्स में, ठीक है जी। वो बहुत ज़्यादा
जो है ना वो इन है और उसमें ज़्यादा पैसा बन सकता है। दैट्स द रीज़न हम उसी के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं, ठीक है जी। सो कमर्शियल कन्वर्जन में क्या हो सकता है कि जब भी को आप बिल्डिंग देखें जो टूटी फूटी है, जहाँ पे आपको अंदाज़ा है कि एक बिल्डिंग आप लेंगे मे बी 5 लाख की, ठीक है, और आपको वहाँ पे पता है कि लेट्स से मे बी 700 स्क्वायर फुट है, 700 स्क्वायर मीटर है जगह, ठीक है जी, या 700 स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। तो 700 स्क्वायर मीटर में आप अगर 2 बेडरूम फ्लैट्स बनाना चाहेंगे तो 52 स्क्वायर मीटर का एक फ्लैट होता है जो मिनिमम होता है, ठीक है। लेकिन हम ऑन एन एवरेज करते हैं 1 बेडरूम फ्लैट जो कि 39.5 स्क्वायर मीटर का एक फ्लैट बनता है जो रजिस्टर्ड होता है। हम 40 स्क्वायर मीटर कर लेते हैं इसको, ठीक है जी, 40 स्क्वायर मीटर, तो उसमें 17 फ्लैट बनेंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज हम 15 कर लेते हैं, ठीक है जी, 15 फ्लैट कर लेते हैं। अगर आपकी वो बिल्डिंग 5 लाख की पड़ी है आपको, ठीक है जी, 5 लाख की पड़ी है, और उसके ऊपर अगर आप 3 लाख या 4 लाख खर्च करके उसके अंदर 15 फ्लैट बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो जो इस तरह के फ्लैट होते हैं हाई एंड फ्लैट, वो रफली बिटवीन 100,000 टू 150,000। बर्मिंगम में तो कुछ फ्लैट्स 2 लाख के भी जा रहे हैं, लेकिन ऑन एवरेज 100,000 का फ्लैट हम कर लेते हैं जो हाई एंड फ्लैट है, ठीक है जी। और 15 फ्लैट हाई एंड के अगर 100,000 का एक फ्लैट है तो 1.5 मिलियन बनता है। कितना जी? 1.5 मिलियन पाउंड, ठीक है, 1.5 मिलियन पाउंड बनता है। और आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 5 लाख की आपने बिल्डिंग ली, 3 से 4 लाख उसके ऊपर लगाया, 8 से 9 लाख का वो आपको टोटल कॉस्ट पड़ी, ठीक है। 1.5 मिलियन की आप शिफ्ट कर दें, ठीक है। जब वो आप 1.5 मिलियन की शिफ्ट करेंगे, 6 से 7 लाख आपकी जेब में आ गया। अब नए सिरे से दोबारा करें या डाइल्यूट करें, नए इन्वेस्टर्स को लेके आएँ और डाइल्यूट करें। हम तो डाइल्यूशन वाले मॉडल के ऊपर जा रहे हैं, हम बेचेंगे नहीं, हम उनको अपार्ट होटल्स में कन्वर्ट करेंगे। यस एग्जैक्टली यही होने वाला है मुनीब भाई। बी हैप्पी वाला चांस नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ये मिथ है कि पैसा नहीं होगा तो आप खुश होंगे, ये मिथ है, सिर्फ मिथ है। अपने आप को दिलासा देना है और अपने लेजीपन को सपोर्ट करना है, दैट्स ऑल आई वुड से, ठीक है जी। जिस तरह का कंट्रोल होगा ना, ठीक है, सबसे पहला कंट्रोल होगा आपका फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। फाइनेंस आपके हाथ से ले लिया जाएगा। जब आपको आपको पानी खरीदना पड़ेगा, ठीक है, आपको बिजली खरीदनी पड़ेगी, गैस खरीदनी पड़ेगी, आपको चिकन खरीदना पड़ेगा, मीट खरीदना पड़ेगा, वेजिटेबल खरीदनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो जब फाइनेंशियल कंट्रोल उनके पास होगा तो फिर आप खुश नहीं रह सकेंगे। सॉरी टू से दिस, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू कि पीपल हु हैव नथिंग विल नॉट बी हैप्पी। इसलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अपने आप को तैयार करें। इट्स ऑलरेडी सेकंड फेज में शामिल हो चुका है। मैं थर्ड फेज में बोलूं तो भी गलत नहीं होगा, थर्ड फेज में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शामिल हो चुका है, ठीक है जी। नहीं देखे ना, लैंडलॉर्ड्स का तो बिजनेस ही गंदा बिजनेस है ना। आप लैंडलॉर्ड्स हूं क्यों? आप बिजनेस बनाएं, इंटरप्रेन्योरियल बने, टेनेंट्स को प्रॉपर्टी ना दें, उसको बिजनेस प्रॉपर्टी बनाएं, ठीक है जी। जैसे Airbnb हो गया, स्मार्ट लिविंग हो गया, आपकी सर्विस एकोमोडेशन हो गई, इस तरह की चीज़ें करें। अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट्स के हवाले ना करें, ये मैं बता दूं सबसे हेडेक वाला जॉब है, ठीक है। टेनेंट्स अपनी प्रॉपर्टी में डालना सबसे बड़ी हेडेक वाली जॉब है, सबसे बड़ी हेडेक वाली जॉब। उसमें लेजिस्लेशन बहुत सारी आ जाती है, और यूके का लॉ स्पेशली इतना गंदा है कि टेनेंट्स को ज़्यादा राइट है, लैंडलॉर्ड के पास कम राइट है, ठीक है। तो अपनी प्रॉपर्टी किसी के हवाले ना करें। अगर आपको टेनेंट से महीने का 800 पाउंड भी आ रहा है ना, तो आप वो प्रॉपर्टी Airbnb पे लगाएं, पूरे महीने में 6 दिन सिर्फ जाए, ठीक है, 200 पाउंड की हर रोज़, ठीक है। वो भी 1200 पाउंड आपको दे जाएगी खर्चे निकाल के, आपको 800 पाउंड फिर भी बच जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी 24 घंटे आपके हाथ में रहेगी, ठीक है जी। 3D प्रिंटिंग तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, यही तो कह रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं। 3D प्रिंटिंग तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई मेरे भाई। यस वो मैं अभी इंटरव्यू दिखा चुका हूं लोगों को इलॉन मस्क का, जिसमें उसने कहा कि यूनिवर्सल जो है ना वो ग्लोबल इनकम होगी, और ऐसा ही होगा। मैस अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन इट्स वे गाइस, बिलीव करें ना करें आपकी मर्जी है। Yes, exactly, but that will bring control.
जब पैसा ही वो देंगे आपको तो दैट विल ब्रिंग कंट्रोल। आपको समझ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो है ही यही कि आपकी फैमिली को कंट्रोल किया जाएगा, आपको फाइनेंशियली कंट्रोल किया जाएगा, आपके रिलीजन को कंट्रोल किया जाएगा। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कौन से बड़े हिस्से हैं? नो फैमिली, नो रिलीजन, ओनली। ठीक है, ये सोचे ना। एग्जैक्टली वो जो हजूर पाक की हदीस है ना कि कामयाब वो इंसान होगा जिसके पास बेड़े होंगी और वो पहाड़ों में बहते पानी से पानी पिएगा जी। ठीक है जी, शायद मैं हदीस का गलत तरीके से बयान करूं, लेकिन बयान यही है कि जो है ना वो 72,000 पाउंड क्यों होगा भाई? जब आप एक स्टॉक को कंपाउंड करोगे तो कंपाउंड इफेक्ट कैसा है, कंपाउंड इफेक्ट किस तरह काम करता है? ठीक है जी, ये भी सोचे ना, आपने स्टॉक बेचना तो नहीं है, स्टॉक तो उधर ही है। ये जो $7,200 आप एक स्टॉक से रेजिजुअल बना रहे हो थ्रू ऑप्शंस, वो आपने स्टॉक बेच के तो नहीं किया ना, वो आपको प्रीमियम मिल रहा है, वो फ्री मनी है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक स्टॉक से बात कर रहा हूं। अगर किसी ने 5 स्टॉक होल्ड करके रखे हुए हैं तो स्टॉक तो उधर ही है ना, स्टॉक तो कहीं नहीं गया। स्टॉक की आपको कंपाउंडिंग भी हो रही है, अगर स्प्लिट्स हो रहे हैं तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, उसमें से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपको डिविडेंड वहां से आ ही रहा है। ठीक है, वो आप कंपाउंड करते रहे। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा कैश फ्लो है ना जो मैंने बताया। ये स्ट्रेटजी शायद आपको समझना है अभी। जी नहीं, मैंने वैक्सीनेशन नहीं ली। ठीक है जी, आई एम नॉट वैक्सीनेटेड। मुनीब भाई, नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, किसी ने नहीं, मेरा तो मोटिवेटर है ही नहीं है कोई भी, मैं खुद ही मोटिवेटर हूँ। तो मुनीब भाई आपका कमेंट किसी ने डिलीट नहीं किया, क्या कमेंट था मुझे बताएं ज़रा, शायद हो सकता है म्यूट ना हो गया हो, आई डोंट नो, क्योंकि कुछ दफ़ा कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो शायद सिस्टम म्यूट कर देता है। मैं नहीं करता, वो सिस्टम म्यूट कर देता है। मेरा मोटिवेटर कोई नहीं है, चाहिए नहीं, मैं लोगों को खुली आज़ादी देता हूँ, कोई मसला नहीं है, बोलें जो मर्जी बोलना है, इशू नहीं है। सो इसीलिए मैं सिर्फ एक काम करने जा रहा हूँ। मेरे नो नहीं मिला मुनीब भाई, दोबारा भेजें ज़रा कमेंट अपना जी। तो मेरा बिलीव ये है कि अगर आप पहाड़ों में कोई फार्म ले लें, फार्म तो है ना, मैं तो इसीलिए तैयारी कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए अभी तक जो है ना अपना घर चेंज नहीं किया, कि मेरा बिलीव है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बने, किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे रनी स्ट्रीम हो, आपका पानी को रोक ना सके। बेसिक चीज़ क्या है आपकी लाइफ किन चीज़ों के ऊपर टिकी? पानी के ऊपर। ठीक है, पानी सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा इस दुनिया में, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों पूरी दुनिया में स्पेशली यूके और यूरोप में पानी के मीटर्स लगाए जा रहे हैं? आपको पता है क्यों ये हो रहा है? हालांकि पानी लाइफ है, ठीक है, ज़िंदगी पानी है। ठीक है, और पानी के ऊपर प्राइस टैग नहीं लग सकता था। इवन जो लेजिस्लेशन है ना, आप अगर डीपली जाके देखें ना तो आपको पानी से कोई डिप्राइव नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में यूनिवर्सल लॉ था ये। ठीक है, लेकिन स्लोली मीटर्स लगा के आपको डिप्राइव किया जाएगा पानी से। आपका मीटर स्मार्ट कर दिया जा रहा है बिजली का। ठीक है जी, गैस तो ख़त्म हो जाएगी, वैसे भी ख़त्म हो जाएगी बाय 2030। ठीक है जी, और क्या चीज़ें, ये कंट्रोल सिर्फ एक चीज़ से नहीं लगाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों से लगाया जाएगा। और सबसे पहला कंट्रोल होगा पैसे का। ठीक है, कि पैसा आपको कमाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्सल जो है ना वो इनकम सिस्टम होगा जहाँ पे वो आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट करेंगे। ठीक है, जो एग्रीमेंट आप साइन करेंगे कि ठीक है जी आपके पास जॉब नहीं है, क्यों नहीं है जॉब? क्योंकि हम जो है ना वो सोचने के काबिल नहीं थे, हम टेक वे में काम कर रहे थे, हमें फुर्सत नहीं मिली सोचने की। हम टैक्सी ड्राइविंग कर रहे थे, हमें फुर्सत नहीं मिली सोचने की। हम ऑफिस में जॉब कर रहे थे, अपने बिल्लू से फुर्सत नहीं मिली हमें सोचने की कि हम सोचते कि होने क्या जा रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, स्पेशली वो लोग जो 3-3 4-4 भाई हैं। ठीक है, यूके में 2-2 3-3 भाई हैं। अगर आपके पास 3 घर हैं तो उन 3 घरों को बेच के फार्म लें, रिमोट एरिया में फार्म लें। ठीक है, 3 घर हैं, अगर उनमें हर घर में लाख इक्विटी है तो 3 लाख आपका हो जाएगा इक्विटी आपके पास। ठीक है, तो रिमोट एरियाज़ में फार्म लें, आज़ादी से जिएँ, अपनी सब्जियां खुद उगाएं, जानवर लें, 2-3 भेड़ें लें,
बकरियां लें, घोड़े लें, जो मर्जी करें, ठीक है। बहुत सारी जगह पड़ी हुई है बेशुमार, ठीक है जी। 2 3 भाई मिल जाएं, आगे पीछे हो जाएं। जी एहसान एहसान सिंह दियोल भाई, आपने AMD स्टॉक सीधा चले जाएं इंटरेक्टिव ब्रोकर के ऊपर, वहाँ पे अकाउंट खोलें और इंटरेक्टिव ब्रोकर के ऊपर अकाउंट खोल के वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं AMD स्टॉक, ठीक है जी। टैक्स कोई नहीं है जी, टैक्स कौन देता है? टैक्स तो टैक्स क्यों देंगे आप? क्या वजह है, क्यों देना चाहते हैं टैक्स आप? सॉरी, मैं यहाँ पे कुछ बातें नहीं बोल सकता, ठीक है जी। आप वो उधर आएँ, प्राइवेट ग्रुप में आएँ, मैसेज करें, टैक्स के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मैसेज करें प्लीज़। एग्जैक्टली स्वीट्स, लोग को पता ही नहीं हो क्या रहा है, कितना जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और यही प्रॉब्लम है, लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप सीधा वेबसाइट के ऊपर चले जाएं trading402.com, और वहाँ पे जो है ना वो व्हाट्सएप का भी लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है वेबसाइट के ऊपर, trading402.com, trading402.com गाइस, ठीक है। और जो लोग टेक वे में काम कर रहे हैं, जो पिज़्ज़े के माहिर हैं, ठीक है, पिज़्ज़े के माहिर हैं, जो चिकन बनाने के माहिर हैं, पेरी पेरी के माहिर हैं, कोई आपको हुनर आता है, शेफ़ आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो डार्क किचन खोलें, अपना किचन खोलें, ठीक है। सीधा जस्ट ईट पे अकाउंट खोलें, 300-400 पाउंड में आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अपना बिजनेस स्टार्ट करें, डार्क किचन आपका मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार में खुल जाएगा, ठीक है जी। जो लोग स्पेशली टेक वे में भी काम कर रहे हैं और जो अच्छे शेफ़ हैं, ठीक है, ना इस तरह 4-4, 5-5, 10-10 पाउंड के लिए खज्जल ख्वार हूँ, ठीक है जी। अपना काम करें, अपना काम खोलें, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट ये तो होगा ना कि जब तक ये ट्रांजिशन होती है अगले 5 से 10 सालों में आपका एक ऐसा बिजनेस होगा जो आपको महीने का 15 से 10-15 हज़ार पाउंड देगा, वो आप फिर डाइवर्ट करें डिफरेंट चीज़ों में, जैसे स्टॉक्स में डाइवर्ट करें, वो आप डिजिटल एसेट्स में डाइवर्ट करें, वो फिर आप डाइवर्ट करें प्रॉपर्टी के अंदर डाइवर्ट करें, ठीक है। डार्क 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 यानी डार्क का मतलब, डार्क को क्या बोलते हैं? डार्क यार, DARK, डार्क किचन। डार्क किचन से मुराद ये है कि वहाँ पे सिर्फ फूड प्रिपेयर होगा, बाकी डिलीवरू और ऊबर ईट्स वाले डिलीवर करेंगे, वहाँ पे कलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे जो है ना वो कस्टमर आके उठा नहीं सकेगा, कस्टमर वहाँ से आके बाय नहीं कर सकेगा, चूँकि डार्क किचन की कॉस्ट बहुत थोड़ी है। आप कोई भी रिमोट यूनिट, छोटी से छोटा शेड भी ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप डार्क किचन बना सकते हैं, ठीक है जी। छोटा सा शेड ले लें, ठीक है, जिसका किराया पूरे साल का 2,000 भी नहीं होगा, 3,000 भी नहीं होगा, पूरे साल का किराया, ठीक है। और सेटअप कॉस्ट मैक्सिमम 5-4-5 हज़ार पाउंड होगी, ठीक है जी। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। किमपुट, यार मुझे तो नाम भी किमपुटिन राजा, मुझे नहीं समझ आ रही आपका नाम मैं कैसे पुकारूं, ठीक है। डार्क किचन खोले, 4-5 हज़ार में डार्क किचन आराम से खुल सकता है यार, आपके गार्डन में खुल सकता है यार, ठीक है, आपके गार्डन में खुल सकता है, ठीक है। तो जो लोग शेफ़, अच्छे शेफ्स हैं, ठीक है, जो किसी के आगे काम कर रहे हैं, टेक वे में काम कर रहे हैं, पिज़्ज़ा शेफ्स हैं, आप अच्छा पेरी पेरी चिकन बना लेते हैं, आपको रेसिपी पता है, आप कोई भी, आप कोई चिकन अच्छा बना लेते हैं, हांडी अच्छी बना लेते हैं, पाकिस्तानी एशियन फूड अच्छा बना लेते हैं, ठीक है, डार्क किचन खोलें। जस्ट ईट के ऊपर लिटरली आप, जस्ट ईट मेरे ख्याल में 300-400 पाउंड लेता है, आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है जी। और मेन्यू अपलोड करें, किसी को हायर कर लें बेशक मेन्यू अपलोड करने के लिए, मेरे ख्याल में जस्ट ईट खुद भी कर देती होगी, ठीक है। मैं अभी चेक करके आपको बता देता हूँ। हाय हाय भाभीओ, भाभीओ, जो लोग शेफ़ हैं वो पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता क्यों किसी के आगे काम कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती है। कितने चार्ज करते हैं जी, को पता है किसी को? मैं भी आपको बता सकता हूँ। मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले मैंने चेक किया था, 375 पाउंड थे या कुछ इस तरह के थे,
वो सेटअप सारा करके दे लगा के जाते हैं मशीन सारी आपकी, ठीक है जी। एनीवेज बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जस्ट ईट तो एक है, ऊबर ईट्स है आपकी, और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। डार्क किचन की तरफ जाएं, दो लोग मिल जाएं। अगर एक बंदा 5-7 हज़ार पाउंड का रिस्क नहीं उठा सकता, 2 बंदे मिल जाएं, 2 बंदे कज़न मिल जाएं, भाई मिल जाएं, ठीक है। क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 डूब जाएगा ना, मरोगे तो नहीं, ठीक है। इतने पैसे तो आप पाकिस्तान में जाते हो मतलब पाकिस्तान जाते हो तो इससे डबल पैसे आप लगाते हो। यहाँ पे हॉलीडे पे जाते हो तो 5-5 हज़ार खपाते हो, कार ले लेते हो अच्छी, फजूल में पैसे ख़राब कर देते हो, ठीक है। तो ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 2 लोग मिल जाओ, 2-3 हज़ार जमा करके 6 हज़ार में डार्क किचन आराम से खुल जाता है। अगर आप किसी टेक वे में काम कर रहे हो, अगर आप पिज़्ज़ा शेफ हो, चिकन अच्छा बना लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, और यहाँ पे मशीनें तो अगले क्रेडिट पे दे जाते हैं, ठीक है। ये मैं बता दूँ आपको मज़े की बात, ठीक है जी, ठीक है। मशीनें क्रेडिट पे दे जाते हैं। आप अपना डार्क किचन अपने गार्डन में सेट कर सकते हो, ठीक है। या यू कैन हायर स्पेसिस बड़े सिटीज़ में, जैसे बर्मिंगम में अगर आप डार्क किचन सर्च करो गूगल में, डार्क किचन, ठीक है, इन बर्मिंगम, तो बर्मिंगम में आपको पता नहीं कितनी जो है ना वो कंपनीज मिलेंगी जो जिनने डार्क किचन बना के रखे हुए ऑलरेडी। आप लिटरली एक दिन में स्टार्ट कर सकते हो, ये लिटरली एक दिन में, ठीक है। डिलीवरी किचन, ये देखो जी, मैंने सिर्फ डार्क किचन गूगल में डाला, ठीक है। लिटरली आप एक दिन में स्टार्ट कर सकते हो किचन, ठीक है जी। आप जाओ, आपको एक स्पेस देंगे वो, ठीक है जी। ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के आपको एक स्पेस देंगे, ठीक है, जिसमें आपका वर्क स्टेशन होगा, ओवन होगा, और आपकी मतलब सिंक, वॉश बेसन, सारा कुछ होगा, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं कि आपने इंस्टॉलमेंट करनी है, पता नहीं क्या क्या करना है, ठीक है। आप टूर बुक करो, जाओ वहाँ पे देखो। इनके पास ये लंदन में है, बर्मिंघम में, लीड्स में, मैनचेस्टर में है, और बहुत सारी कंपनीज हैं यार जो डार्क किचन कर रही हैं, ठीक है। आपको आज के दौर में सिर्फ एक चीज़ रोकती, 2 चीज़ें रोकती हैं छोटे से बिजनेस स्टार्ट करने में। एक डर, खौफ, ठीक है, और दूसरा एक्सक्यूजेज, ठीक है जी। पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा यार। 2 लोग अगर मिल जाओगे, 2500 पाउंड मिला लो, 3 हज़ार पाउंड मिला लो, दोनों 6 हज़ार पाउंड हो जाएगा, आपका डार्क किचन स्टार्ट हो जाएगा। यार बड़ी से बड़ी बात क्या हो जाएगी, वो 6 हज़ार लूज हो जाएगा ना। कभी ये तो नहीं कहोगे ना ट्राई नहीं किया, लेकिन 99% चांसेस हैं कि लूज नहीं होगा अगर आप सही तरीके से करोगे तो, ठीक है। ओके, प्राइस पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। प्राइस अपनी जो है ना वो अपनी जिस चीज़ की जिस तरह की क्वालिटी दे रहे हो उस तरह की प्राइस चार्ज करनी है, ठीक है। प्राइस के ऊपर आपने ये नहीं छोड़ना है जी कि मैं कम प्राइस करूँगा तो बिकेगी, नहीं, ये गलत बात है। कम प्राइस पे चीज़ें नहीं बिकती, चीज़ें बिकती हैं क्वालिटी पे, ठीक है, और मार्केटिंग पे। 2 चीज़ें हैं सिर्फ जिसके ऊपर चीज़ें बिकती हैं। नंबर 1 आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, वर्ड ऑफ माउथ, एक रिव्यू समझ लें कि एक ऑर्डर के बराबर है, एक अच्छा रिव्यू एक ऑर्डर के बराबर है, ठीक है। और दूसरा मार्केटिंग, 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 ठीक है। आप एक बर्गर अगर 7 वाला 2 पाउंड में बेच रहा है, आप 275 में बेचो, क्वालिटी अच्छी दो प्रोडक्ट की। फूड में है क्या, फूड में है ही क्वालिटी। अगर क्वालिटी नहीं दोगे, चीज़ अच्छी नहीं यूज़ करोगे, पिज़्ज़े के ऊपर आप मोज़रेला नहीं यूज़ करोगे। क्यों नहीं यूज़ करते ज़्यादा जो पिज़्ज़े वाले मोज़रेला, क्योंकि एक्सपेंसिव है, ठीक है जी। अच्छी चीज़ नहीं यूज़ करोगे, ठीक है, अच्छा टमाटो सॉस नहीं यूज़ करोगे, अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करोगे, तो आप पिज़्ज़ा 6 पाउंड में भी लगा लो ना एक दिन आपका बिजनेस डाई हो जाएगा, होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। क्वालिटी वाला फूड, पिज़्ज़ा आप बाय 1 गेट 1 ना रखो। पिज़्ज़ा 15 पाउंड का बेचो, लेकिन उस 15 पाउंड को बेचने के लिए ना आप 2-3 पाउंड स्पेंड करो मार्केटिंग के ऊपर, देखना कैसे बिकेगा। मार्केटिंग इज किंग भाईजान। आप मार्केटिंग से मट्टी भी बेच सकते हो, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। तो 2-3 लोग जुड़ जाओ और बिजनेस करो जी। बिल्कुल, काफ़ी XRP क्या काई राजा XRP है, और ETH अभी मैं होल्ड किए हूँ, सेंड माना कर लें, ठीक है जी। राजा फरजान, नहीं मैं राजा फरजान को नहीं जानता यार, कहाँ पे हैं वो? नहीं शायद नहीं, मैं नहीं जानता। लूटन में मैं बहुत कम लोग को जानता हूँ, 2-4 लोग को जानता हूँ।
Yeah, but I wouldn't go for cheap shit. Yeah, I rather sell something good which people are happy to pay money. Okay, यहाँ पे जो है ना वो अच्छे टेक वे के ऊपर लोग खाना देखो, खाना क्या है यार, खाने के बिजनेस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? खाना। ठीक है, कचरा तो लोग घर में भी खा लेते हैं। ठीक है, यस दे वुड ऑलवेज बी अ बायर, बट आप रादर देन यू सर्व 100 कस्टमर्स देन 500 कस्टमर्स, मेरा ये बिलीव है। आप 100 कस्टमर्स को सर्व करो और उनसे 1000 पाउंड बनाओ, रादर देन कि आप 500 कस्टमर को सर्व करके 1000 पाउंड बनाओ। अंडरस्टैंड करें चीज़ों को रन करने की। ठीक है जी, जी बिल्कुल, घर की किचन यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है मेरे ख्याल में कि थोड़ा सा उसमें प्लानिंग का इशू हो, क्योंकि उसमें जो कमर्शियल किचन्स होते हैं उनमें एक चीज़ ये होती है कि कमर्शियल किचन में थोड़ा सा फायर सेफ्टी और इस तरह की चीज़ों का होता है। लेकिन ये आपको जस्ट ईट के साथ देखना पड़ेगा और ऊबर के साथ देखना पड़ेगा क्या वो अकाउंट लॉक करते हैं या नहीं। अगर वो आपके घर से अकाउंट लॉक करते हैं, जस्ट ईट, ऊबर ईट और ये डिलीवर वगैरह, अगर ये आपके घर का अकाउंट अलाउ करते हैं, तो अगर आप अच्छे शेफ हैं तो आप घर से शुरू कर सकते हैं मेरे भाई, घर से शुरू कर सकते हैं। You see, that's the important thing. Once you have set recipe, and if you follow the recipe, then food will always be consistent. That's the thing. Why food gets bad? The only reason it gets bad is, number one, Pakistani takeaways don't have set recipes. Yeah, they don't have set recipes. Yeah, which everyone who makes follows that recipe. क्या होता है पाकिस्तानी टेकअवेज में ना, जिसका दिल करता है ना उठ के पिज्जे की वो ट्रे उठाता है और पिज्ज़ा बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, उसको पता ही नहीं होता कि कितने अनियन डालना है, अगर इतने साइज का पिज्जा तो कितना अनियन डालना है, कितना मैंने टमाटो, जिसका दिल करता है ना वो पिज्जा का उठाया, बस वो वेजिटेबल फेंकना शुरू। वो तो कोई भी फेंक सकता है वेजिटेबल ऊपर, टमाटोज कोई भी लगा सकता है ऊपर, टमाटो सॉस कोई भी। जब सेट रेसिपी होगी ना कि 8 इंच का पिज्जा है, उसके ऊपर इतने अनियन जाएगा, उसके ऊपर इतना टमाटो जाएगा, उसके ऊपर इतनी चीज़ जाएगी, इतनी लेयर्स में चीज़ जाएगी। जब एक सेट रेसिपी होगी तो कोई भी बंदा बनाएगा ना पिज्ज़ा तो वो सेम ही बनेगा। ये बात हमेशा याद रखें कि डोमिनोज में पिज्ज़ा हमेशा सेम क्यों होता है, क्या वजह है, क्या वजह हो सकती है, को पता है आपको क्या वजह है डोमिनोज का पिज्ज़ा हमेशा सेम क्यों होता है? ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है जी, एनीज I'm still waiting for bigger dip. I haven't bought yet. मेरा जो टारगेट था उसके ऊपर मीट नहीं हुआ, लेकिन अभी स्टिल मैं 2 होल्ड किए हुए हैं। XRP वो मैं बाय कर रहा हूँ, उनके ऊपर मैं प्राइस नहीं देख रहा, और ETH ये वैसे भी मेरे लॉन्ग टर्म के, इनकी मैं प्राइस नहीं देख रहा। ठीक है जी, ये लोकल काउंसिल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द हाइजीन एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा जी, अभी लोग को पता ही नहीं है कि ये अब दुनिया कैसे चेंज हो चुकी है। यू डोंट नीड अ टेक अवे, यू डोंट नीड अ शॉप फ्रंट टू एस्टैब्लिश अ फूड बिजनेस गाइस। अंडरस्टैंड करें चीजों को। कि महाराजा कंसिस्टेंसी, अगर आप बैड फूड की कंसिस्टेंसी देंगे तो यू वुड बी नोन फॉर प्रोवाइडिंग बैड फूड। सिंपल, आप कंसिस्टेंसी की बात करें, मैं कह रहा हूं क्वालिटी विद कंसिस्टेंसी। आप ये नहीं कह सकते कि जी आप चीप शिट देते रहें, ठीक है, और जो है ना वो कंसिस्टेंसी नहीं है, उसको डीट पना बोलते हैं। वो डीट बंदा है, वो अपने बिजनेस को कभी ग्रो नहीं करना चाहता। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं कि आपने अगर किचन लूटन में शुरू किया या बर्मिंघम में शुरू किया हो तो एक ही ब्रांच आपकी रहे। ये छोटी सोच नहीं रखनी है। अगर आपका सक्सेस हो गया है बर्मिंघम के एक एरिया के अंदर, आप एक्सपेंशन का सोचें। जब एक सेट फार्मूला कामयाब हो जाए तो उसको हमेशा उसी फार्मूले को उठा के दूसरे शहर में ले जाएं, फिर अगले शहर में ले जाएं, फिर अगले शहर में ले जाएं। ठीक है जी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई रिलीजन नहीं होगा जी, कोई रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर कंप्लीटली तबाह किया जाएगा, फैमिली स्ट्रक्चर कंप्लीटली तबाह किया जाएगा। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी टोटल गवर्नमेंट की होगी। ठीक है जी, यानी फाइनेंस टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि आप कितना पैसा अपनी जेब में डालते हो। सिंपल एज दैट। ठीक है जी, और बच्चे गवर्नमेंट पालेगी, यानी फैमिली जब नहीं होगी तो बच्चे गवर्नमेंट पालेगी और बच्चे गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होंगे। बच्चों के साथ आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सिंपल एज दैट।
XRP 2 years की गेम नहीं है, XRP 9 years की गेम है। ये $1,000, $10,000, $50,000 पे भी जा सकता है XRP अंडरस्टैंड करें कि इसको ये कैसे चेंज करने वाली है रेमिटेंस इंडस्ट्री और जैसे पेमेंट्स मूव होती हैं, ठीक है। ये स्ट्राइप, पेपैल, ये सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। ये सब ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म, या इनको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आना पड़ेगा उसको, अदरवाइज जितने भी मनी की मूवमेंट्स हैं ना, जिस जिस मीडियम से भी हो रही हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। बैंक्स का निज़ाम जो है ये डिसरप्ट होगा सारे का सारा, ठीक है जी। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो बैंक्स के थ्रू होती हैं, टीटी जिसको अभी हम बोलते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल आउटडेटेड निज़ाम है, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। इसी वजह से जो स्मार्ट मनी है ना, अभी XRP को लगाम डाले हुए है, ठीक है। उनको पता है कि अगर हमने इसको जो है ना वो हिलने दिया तो दैट्स इट, वी आर डन, या हमें उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, वो वी आर डन, ठीक है। सो चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। नो, मेरा बिलीव ये है कि अगर आप एक पिज्जा के लिए पिज्जा का डार्क किचन खोलना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये ना सोचो कि साथ वाला बंदा या दूसरा बंदा 5 पाउंड का पिज्जा दे रहा है, 10 पाउंड का दे रहा है। आपने अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, सिंपल एज दैट। अमेज़न की कामयाबी क्यों है, टेस्ला क्यों कामयाब हुआ, क्या वजह है, ठीक है। कस्टमर सेंटर्ड हैं वो लोग, ठीक है जी। वो फोकस्ड हैं, टोटली ऑब्सेस्ड हैं कि कस्टमर क्या चाहता है उनसे, ठीक है। ये सिंपल है। और कंपेटिटिव एज आपको 2 चीज़ों से आएगा। कंपेटिटिव एज कहाँ से आएगा? नंबर 1, आपकी प्राइसिंग कंपेटिटिव हो, और नंबर 2, आपकी क्वालिटी दूसरे लोगों से बेहतर हो, ठीक है। जब ये एज होगा ना, और फिर उसके ऊपर जब आप मार्केटिंग सही तरीके से करेंगे, तो ये होगा चेरी ऑन दी, क्या कहते हैं उसको, मुझे इंग्लिश सही नहीं आती, चेरी ऑन दी केक, ठीक है, आइसिंग ऑन दी केक, ठीक है जी। मे बी यस, आई बिलीव दैट, यस। ये 1 पाउंड की अपनी स्पेस है, पर 5 पाउंड की अपनी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये आपकी चॉइस है। आप 1000 पाउंड का रेवेन्यू अ डे फ्रॉम 500 कस्टमर बनाना चाहते हो या 200 कस्टमर बनाना, इट्स अप टू यू। वो तो बिजनेस मॉडल आपने डिसाइड करना है ना, ठीक है। मेरा बिजनेस मॉडल क्लियर है भाई, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर 1000 पाउंड का रेवेन्यू बनाऊँ टेक वे से, फॉर एग्जांपल, तो मैं 200 कस्टमर को सर्व करके बनाऊँ, ना कि 500 कस्टमर को सर्व करके। मैं 2-2 पाउंड नहीं कलेक्ट करना चाहता, ठीक है जी। मैं 5-5 पाउंड, 10-10 पाउंड कलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है जी। सो बिजनेस मॉडल आपका अपना है। एक अगर मैं बोलूँ कि करी इसको बनाता है, ठीक है, जैसे चिकन करी हो गई, लैम करी होगी, ठीक है। एक जगह पे करी आपको 3 पाउंड में मिल जाता है बॉक्स, ठीक है। दूसरी जगह पे सेम साइज का बॉक्स 10 पाउंड का भी मिलता है, लोग पे करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि बिजनेस मॉडल किसका सही है, ये अंडरस्टैंड, प्रॉफिटेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ये अंडरस्टैंड करें, ठीक है जी। तो वो ये है कि आपने डिपेंड करना है कि आप क्या टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। चीप खाना खाने वाले लोग कम होते जाएंगे, ये मेरी बात मान लीजिएगा, ठीक है जी। मार्क माय वर्ड्स, जो सस्ता खाना खाने वाले ग्रीसी 1 पाउंड का चिकन है, वो कम होते जाएंगे स्लोली, ठीक है। पीपल आर विलिंग टू पे लिटिल बिट मोर बट क्वालिटी फूड rather than less money but shit food. ओके जी। सो डार्क किचन का क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग इंस्पायर्ड हुए होंगे इससे और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ लोग जो है ना वो, जी बिल्कुल, इंश्योरेंस तो मस्ट है ना। लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस नहीं चलेगी, नॉर्मल लैंडलॉर्ड इंश्योरेंस नहीं चलेगी। Airbnb बिजनेस की सेपरेट इंश्योरेंस होती है, ठीक है जी। उसका वो आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। या पीपल आर टर्निंग क्वालिटी फूड की तरफ आ रहे लोग। पैसे का मसला नहीं है, पैसे लोग दे देते हैं भाई, पैसों का इशू नहीं है। आपने अपनी मार्केट डिफाइन करनी है। मीम कॉइन को दफा करो यार, मीम कॉइन के चक्कर में ना पड़ो, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है जी।
लिक्विडिटी नहीं है, मीम कोइन के चक्कर में ना पड़ो, गुड कॉइन्स अच्छे प्रोजेक्ट लो, सॉल लेते रहो, सॉल अगर लेना है लेते रहो, $3 से कूट कूट के बोल रहा हूँ, ठीक है, सॉल ले लो। मैंने अपनी प्रॉफिट उठा ली है, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि मैंने गलत किया अपनी प्रॉफिट उठा के। कोई नहीं मसला, अगर ऐसी बात हुई तो नेक्स्ट जो है ना वो पुल बैक के ऊपर दोबारा उठा लूँगा, कोई मसला नहीं है, नॉन इवेंट हो जाएगा ये भी, ठीक है। लेकिन सॉल जो है ना वो डेफिनेटली एक ऐसा कॉइन था जो हमने बहुत पहले दिया, ठीक है, मेरे ख्याल में 19th जनवरी $3 समथिंग का था, $3 समथिंग का, ठीक है जी। सो पॉइंट ये है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाएं, अच्छे प्रोजेक्ट्स यूज़ करें जिनसे आपका रिस्क कम हो और रिवॉर्ड मैक्सिमम हो, ठीक है। ओवरनाइट मिलियनेयर बनने के चक्कर में ना रहें, ठीक है। डार्क किचन में डेफिनेटली अगर किसी को समझ नहीं आ रही, व्हाट्सएप पे जाए, मुझे मैसेज करे, फुल तरीके से गाइड कर दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन जो लोग अच्छे शेफ़ हैं, जो खाना अच्छा बना सकते हैं, फ़िलहाल अपनी रेसिपीज़ को बनाएं, राइट करें अपनी रेसिपीज़ को, ठीक है। और फिर उन रेसिपीज़ के ऊपर मुझे नहीं पता कि आप आईपी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, मुझे लगता है आप ले सकते हैं, ठीक है जी। और फिर डेलीगेट करें, जब आपका बिजनेस थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाए फिर डेलीगेट करें चीज़ों को, खुद ही नहीं ये कि जी सारी ज़िंदगी खुद ही बस चमचा चलाई जाना, ना ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर अच्छे लोगों को लेके आए सामने, ठीक है, लोग को ट्रेन करें, ठीक है, और फिर मूव हो जाएं अगले प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। यस, इंटरेक्टिव ब्रोकर इज़ द बेस्ट ब्रोकर इन द वर्ल्ड गाइस। और अगर आपको $200 का फ्री चाहिए, स्टॉक्स, $200 के फ्री स्टॉक्स चाहिए, तो फिर आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिंक के लिए आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा पहले, तो वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। लेकिन आपको मेरा लिंक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपकी कमीशन के पैसे, आप डायरेक्टली चले जाओ। ये नहीं आप सोचने बैठ जाना कि मैं इसलिए जो है ना वो सजेस्ट कर रहा हूँ इंटरेक्टिव ब्रोकर के, मेरे पास रेफरल लिंक है, मुझे नहीं वो जो है ना $20-30 चाहिए। आप अपनी रिसर्च करो, मेरा इंटरेक्टिव ब्रोकर के साथ 3 अकाउंट्स हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट है, उसके नीचे मैंने 3 अकाउंट खोले हुए हैं, ठीक है जी। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव ब्रोकर ही यूज़ करता हूँ, और प्लेटफॉर्म जो मैं डैश ट्रेडर यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। जी मैं तो मैस अनएम्प्लॉयमेंट का पहला बंदा हूँ जो मैस अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आईटी का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस में आईटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हैं, आईओटी जिसको हम बोलते हैं, स्मार्ट लिविंग, ठीक है जी, स्मार्ट लिविंग की तरफ जा रहे हैं और मिनिमाइज़ करें। हाँ, अगर वो क्लीनर है बर्मिंघम में अगर कोई क्लीनर है तो मेरे साथ ज़रूर रब्ता करे, ड्राइविंग मस्ट है। अगर कोई क्लीनर है, जो बंदा हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग की जॉब चाहता है, तो मेरे साथ रब्ता करे, बर्मिंघम में है तो डेफिनेटली आई वुड बी इंटरेस्टेड टू हियर फ्रॉम यू, ठीक है जी। क्लीनर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 हो जाए तो कम है, ठीक है। बर्मिंघम में अगर कोई बंदा क्लीनर है जो हाउस कीपिंग और क्लीनिंग की जॉब में इंटरेस्टेड हो तो £10 एन आवर हम देते हैं जी, ठीक है, £10 एन आवर देते हैं हम, अगर कोई बंदा है तो। फॉरेक्स कभी किए नहीं जी, इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। डार्क किचन्स बेसिकली आपने जितनी भी जो फूड की मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे जस्ट ईट हो गया, ऊबर ईट हो गया, आपका हो गया जी डिलीवरो हो गया, ठीक है, हंग्री हाउस हो गया, इनके ऊपर अकाउंट्स बनाने हैं। लेकिन उससे पहले आपने जो है ना डार्क किचन स्पेस ढूंढनी है। वो तो या तो आप डार्क किचन स्पेस किसी से हायर कर लें, यहाँ पे बहुत सारे डार्क किचन्स अवेलेबल हैं। जैसे बर्मिंघम में ये फूड स्टार्स यूके, इनकी लोकेशंस बर्मिंघम में हैं, लंदन में हैं, लीड्स में हैं, मैनचेस्टर में हैं, ठीक है। आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या अपना कोई शेड लेके वहाँ पे सेटअप कर लें, उसकी कॉस्ट ज़ाहिर है ज़्यादा होगी। आप हायर कर सकते हैं डार्क किचन, वो क्विक एंड ईजी होगा आपके लिए, और आप लिटरली विद इन अ वीक
आप यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन जस्ट ईट, डिलीवरू और उसके अलावा ऊबर ईट्स के ऊपर, ठीक है जी। और आपका रेवेन्यू विद इंस्टेंटली आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो खाना अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि ये बताया तो हर बंदा जो है ना वो डार्क किचन के बारे में शुरू हो जाए, नहीं। जो जो लोग खाना अच्छा बना सकते हैं या किसी को जानते हैं जो खाना अच्छा बनाता है, ठीक है, ओके, तो वो उसके साथ पार्टनरशिप कर ले, तो ऐसे भी हो सकता है। फूड स्टार्स यूके, फूड स्टार्स यूके, अच्छा वो सॉरी, किसी ने पूछा कि कैसे ख़रीद सकते हैं शेयर्स। इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के ऊपर चले जाएं जी, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के ऊपर शेयर्स आप ख़रीद सकते हैं। सबसे बेस्ट ब्रोकर है जी दुनिया में, सबसे बेस्ट ब्रोकर दुनिया में इंटरेक्टिव ब्रोकर्स, ठीक है जी। इंटरेक्टिव ब्रोकर्स, इनका अपना सॉफ्टवेयर भी है, फ्री है, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप है, अच्छी ऐप है, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। वो तो दिए हुए ना अभी, माना दिया था 5 सेंट के ऊपर, सेंड दिया था 7 सेंट के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा और पता नहीं कितने कितने। बेट्स का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन वो हैंड्स ऑन नहीं, हैंड्स ऑफ अच्छा है। हैंड्स ऑन करेंगे तो स्ट्रेस होगी बहुत ज़्यादा आपको, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि डिलीवरी का, और ये बड़ा मसला है बेट्स के बिजनेस में। जज़ाकल्लाह शुगा, सुगा, SJJ सुगा। ईगलिस, नाइस टू सी यू नवीद भाई, और क्या हाल चाल है जी। ईगल आइज सब ठीक ठाक, आप सुने दिलजोत बाजी सब ठीक है, खैरियत है। आई थिंक दिलजोत बाजी, अगर मैं भूला नहीं तो, भूल ही ना गया हूँ यार। ओ मी साबी साबी बाजी, सॉरी 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 साबी बाजी, क्या हाल है, ठीक हो, से ठीक है, कैसा जा रहा है सब। कैसा जा रहा है। तो देखो, दुनिया बदल रही है, अगर आप रुके रहोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। बाय वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ अबाउट ईटोरो, कैन यू बाय शेयर्स। यस यू कैन बाय शेयर्स, बट ईटोरो आई डोंट नो मैन। ईटोरो की मार्केट आवर्स क्या है, 1 मिनट मुझे चेक करने। अगर तो फुल मार्केट आवर्स हैं तो ठीक है, ज्वाइन कर लें, अगर नहीं तो फिर रहने दें। ईटोरो के मार्केट आवर्स का मुझे पता नहीं है, अगर फुल मार्केट आवर्स नहीं है तो आई वुडंट यूज़ इट। आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि पूरे आवर्स आपके पास अलाउ हों कि आप कभी भी स्टॉक के इन और आउट हो सके, ठीक है। अदरवाइज जो है ना वो मसला है, ठीक है जी। इंशाल्लाह लाइव अकाउंट डेफिनेटली, इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ट्रेडिंग शुरू की हुई है। रिजवान भाई कर रहे हैं, उसके अलावा जगपाल बाजी कर रहे हैं, दिलजोत बाजी कर रहे हैं, जगराज हसाना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यार। इजाज़ भाई कर रहे हैं मैनचेस्टर से। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 40 से 50 लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग शुरू कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। और ज़्यादातर लोग प्रॉफिट में, ज़ाहिर है प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो इट टेक्स टाइम। मलक या क्या हाल है, ठीक हैं आप। कनाडा के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म इंटरेक्टिव ब्रोकर्स है, नो PDT रूल, डे ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। यूके के लिए इंटरेक्टिव ब्रोकर सिर्फ स्विंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, डे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। डे ट्रेडिंग के लिए TradeZero है, ठीक है जी। जी, तो आप ट्रेडिंग अगर कोई बंदा करना चाहता है तो फिर उसके लिए आपको यूके, यूरोप में
और ये ट्रेड ज़ीरो सबसे बेस्ट है, जो फुल मार्केट आवर्स अलाउ करते हैं और आपको ट्रेडिंग बिल्कुल हलाल है, कोई मसला नहीं है। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेक्टिव ब्रोकर्स जो कि फुल मार्केट आवर्स अलाउ करते हैं और बेस्ट ब्रोकर है। यूएसए के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं फुल टाइम तो फिर आपके लिए सीएम एलीट ग्रुप है, सीएम एलीट ग्रुप, ठीक है। उसके अलावा ट्रेड ज़ीरो बेस्ट है यूके, यूरोप के लिए ट्रेड ज़ीरो बेस्ट है, फुल मार्केट आवर्स हैं आपके, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ओटीसी मार्केट ऑप्शंस अलाउ करते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपका अल्लाह भला करे नैस्डैक और क्रिप्टो करेंसी भी उन्होंने लॉन्च कर दिया अभी, ठीक है जी। इनका सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में वेरी कंपेटिटिव वेरी गुड सॉफ्टवेयर है, ठीक है जी। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी जो है ना वो शॉर्ट लोकेट्स बहुत ज़्यादा इनके पास शेयर्स इतने अवेलेबल हैं शॉर्ट करने के लिए, जो कि न्यूबीज़ को मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि शेयर्स को शॉर्ट करें, ठीक है जी। क्रिप्टो कौन सी अच्छी है? सॉल अच्छी है, XRP अच्छी है, ETH अच्छी है, BTC अच्छा है, बहुत सारे हैं, सैंड है, माना है, ENJ है, AXS है, बहुत सारे मेरे भाई। अगर आप शिप का नाम सुनना चाहते हैं तो वो नहीं है मेरे पास, डॉज का नहीं है, अच्छे प्रोजेक्ट्स का है। बाइनेंस पे कौन से बेहतर हैं? XRP आप बाइनेंस के ऊपर ख़रीद सकते हैं, सॉल ख़रीद सकते हैं, माना, सैंड, इसके अलावा ENJ, XSS ख़रीद सकते हैं आप, सारे ख़रीद सकते हैं बाइनेंस पे तकरीबन सारी। हाँ, CRO नहीं ख़रीद सकते, वो आपको crypto.com पे जाना पड़ेगा या आपको कॉइन पे जाना पड़ेगा, ठीक है जी, कॉइन बेस के ऊपर, सॉरी कॉइन टिकट से मैं बता रहा हूँ। यूनिजन क्या है जी? मैंने कभी नहीं सुना इसका। यूनिजन क्या है? इधर देखते हैं, अभी आता भी है ये नहीं। यूनिजन टिकर सिंबल बताएं, उसका टिकर क्या है प्लीज, टिकर बताएं उसका, या पेयर पेयर बता दें। बाइनेंस यूके में चल रहा है जी, बिल्कुल चल रहा है। शिवा किंगडम नहीं जी, जब तक वो जो है ना वो कॉइन बर्न नहीं करते इनफ, तब तक $1 पे कभी नहीं जा सकता। नेवर एवर एवर, नॉट विद दिस करंट सप्लाई, कभी भी नहीं, नेवर। 1 सेंट पे नहीं जा सकता तो $1 तो 1 पाउंड तो बहुत दूर की बात है। टिकर बताएं क्या है, मुझे सर्च नहीं हो रहा है। यूनिजन, आई होप कि ये नया कोई मीम कॉइन नहीं आ गया कोई और। अच्छा, 1 मिनट ठहरे जरा। अच्छा, इसका टिकर सिंबल है ZCX और बाइनेंस के ऊपर नहीं है, तो मैं इसको कॉइन बेस के ऊपर देखता हूँ। अच्छा, कॉइन बेस के ऊपर भी ट्रेडेबल नहीं है जी, ठीक है जी। आई एम नॉट श्योर कि क्या हो रहा है, लेकिन ये है कि कॉइन बेस के ऊपर भी ट्रेडेबल नहीं है। और इसके अलावा नहीं जी, ऐसी चीज़ों के साथ मैं नहीं करता। शायद और कोई प्लेटफॉर्म है अगर तो उसके ऊपर देख लें। कैट गर्ल फ्लंकी, कैट गर्ल फ्लंकी कुछ भी ये नहीं है यार, ये सब बकवास है, सब स्कैम्स हैं, 90% स्कैम्स हैं, ठीक है जी, 90% स्कैम्स हैं, ज़ीरो हो गए आपके पैसे, ठीक है जी। अच्छा, राजा वैक 10,000 पाउंड है अगर आपके पास, तो क्रिप्टो में आप अगर क्रिप्टो में ना सिर्फ लगाएं, उसके 3 हिस्से करें, ठीक है। मुझे पता है थोड़ी अमाउंट है, आपको लगता है थोड़ी अमाउंट है, ठीक है, बल्कि 2 हिस्से कर लें, ठीक है। 5,000 स्टॉक्स में,
5,000 क्रिप्टो में, ठीक है। और क्रिप्टो में भी जो 5,000 है फिर उसके आगे 5 हिस्से करें, ठीक है, 1,000 के, बल्कि 10 हिस्से कर लें 500 के, ठीक है। या मे भी 3 हिस्से बड़े कर लें 1,000 के, और बाकी जो 2,000 पीछे रह जाए उसके 500 के हिस्से कर लें, ठीक है। और रैंकिंग इस तरह करनी है BTC, ETH, SOL, XRP, ठीक है जी। उसके बाद सॉल, ठीक है। इनके ये 5 कॉइन आपको बता रहा हूँ, सैंड, माना, ठीक है, और ENJAXS, ठीक है जी, इनमें, और BNB, ठीक है जी, BNB इनमें, ठीक है। और स्टॉक्स में AMD, NVIDIA, XPEV, ठीक है, ये लेते रहें लेते रहें लेते रहें, एक ही दफ़ा सारा ना लें, ठीक है। डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, ठीक है जी। मेरे कॉइन बेस के ऊपर अकाउंट है, उसके बाद बाइनेंस के ऊपर अकाउंट है, कॉइन बेस के ऊपर मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, और बाइनेंस के ऊपर मैं स्विंग और शॉर्ट टर्म के लिए करता हूँ, ठीक है जी। मेटा ट्रेड के बारे में कुछ नहीं सुना कभी भी जी। मनशा चौधरी साहब, सॉरी, मनशा चौधरी साहब जी, बिल्कुल। कोर्स 17 को स्टार्ट हो रहा है, 17 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। और अब भी अगर आप कोर्स इनरोल करेंगे तो 20% ऑफ है कोर्स के ऊपर। अगर आप अब भी इनरोल करेंगे 20% ऑफ है। वेबसाइट के ऊपर जाके आप सीधा इनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज पे क्लिक करना है और फिर 7 डेज कोर्स लाइव के ऊपर क्लिक करना है, 7 डे कोर्स लाइव के ऊपर। और उधर ही पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, वाउचर भी उधर ही है, ठीक है। और ये अर्ली बर्ड वाउचर यूज़ करेंगे, अर्ली बर्ड 20 वाउचर यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट 20% मिलेगा। इसके साथ आपकी 6 मंथ्स की प्राइवेट ग्रुप मेंबरशिप फ्री आती है जी। आपको प्राइवेट ग्रुप का मेंबर बनाया जाएगा 6 महीने के लिए, जिसकी वैल्यू बनती है ऑलमोस्ट 120 पाउंड। और उसके अलावा आपको स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप में फॉर लाइफ रखा जाएगा, ठीक है जी। स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप में फॉर लाइफ रखा जाएगा, क्योंकि उसमें टोटल लर्निंग और डिस्कशंस होती हैं। और हम नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट ईयर से, यानी जो 2022 है, इसमें हम वीक में एक दफ़ा लाइव ट्रेडिंग किया करेंगे। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग किया करेंगे। 90 स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में, ठीक है जी, 90 स्टूडेंट्स। किसी ने लाइव कोर्स लिया है, किसी ने रिकॉर्डेड लिया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज इनने लिए। 90 स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो आप अभी अगर इनरोल करेंगे तो सीधा वेबसाइट के ऊपर जाके आप इनरोल कर सकते हैं, करना चाहें तो। जी, कॉइन्स का बता रहा था। मेरा कॉइन बेस के ऊपर भी अकाउंट है, बाइनेंस के ऊपर भी है। उसकी वजह बता दिया मैंने कि क्या है। और कॉइन्स भी मैंने बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कौन कौन से कॉइन्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। सर जी, हाउ अबाउट CRO, वेरी गुड कॉइन, वेरी गुड कॉइन। डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहें उसको, ठीक है जी। डॉलर कॉस्ट एवरेज करें सर। एयरबीएनबी तकरीबन आपको 300 पाउंड की इंश्योरेंस सालाना कॉस्ट होगी जी, ठीक है जी। रिजवान फॉर ऑल 300 पाउंड सालाना कॉस्ट होगी आपको, 300 से 400 पाउंड। वाई वुड यू मूव फंड्स आउट ऑफ क्रिप्टो? उस पर टैक्स पड़ेगा आपको। टैक्स देना है तो फिर सीधा विड्रॉ करें, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि इक्विटी लोन लें, इक्विटी लोन लें अगेंस्ट अपनी एसेट्स के, और वो पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें सीधा। सॉरी, इधर कुछ चीज़ें नहीं बता सकता इधर यार ये इधर मैं अभी 30,000 की PNA। भाई मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर, सीधा व्हाट्सएप मेरा वेबसाइट के ऊपर है, जाके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, फिर आपको गाइड करूंगा कि कहाँ पे आप ये पैसे लगा सकते हैं। 30,000 सॉरी 30,000 पाउंड है, ठीक है। ऐसे नहीं इधर बता सकता ऑन टॉप ऑफ माई। ऐसी कोई मशवरा दे दूँ जो आप उलट कर दें तो फिर मुझे बदुआएँ देते रहेंगे सारी ज़िंदगी।
नो कॉमेंट _007 TradeZero हैज़ वेरी बैड रिव्यूज़। होते होंगे पहले, ज़ाहिर प्रॉब्लम हुई है बहुत ज़्यादा, प्लेटफॉर्म अभी न्यू है लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म। व्हाट अबाउट डे ट्रेडिंग इज़ अमेजिंग सर। मलिक या भाई, डे ट्रेडिंग इज़ माई स्ट्रेंथ एंड डे ट्रेडिंग आपको फ्रीडम देती है, फाइनेंशियल, लोकेशन एंड टाइम फ्रीडम। आप दुनिया में कहीं से भी डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास ब्रोकर आपका फुल मार्केट आवर्स अलाउ करता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम तो है ही है। ठीक है जी। मच डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स, देर इज़ अबाउट आई थिंक हाफ ऑफ डिफरेंस राइट नाउ। अगर आप लाइव कोर्स खरीदेंगे तो डिस्काउंट के साथ आपको 999 पाउंड में मिलेगा, और जो रिकॉर्डेड में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि रिकॉर्डेड जो है ना वो प्रीवियस जो सेशंस हुए हैं ना उनकी रिकॉर्डिंग्स है, दैट्स ऑल, और कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। और रिकॉर्डिंग्स में मैं आपको दिखा देता हूँ इधर, रिकॉर्डेड कोर्स में और लाइव में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं जो लाइव सेशंस हो चुके हैं उनकी। ठीक है, और ये लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स हैं यहाँ पड़ी हुई। ठीक है, ये आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी, लाइव की भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। लाइव ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा किया और सिर्फ एक ही दफ़ा आपको क्लास में अलाउ किया जाएगा, नहीं, आप 10 दफ़ा आ सकते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, यानी एक कोर्स आपने दिसंबर में लिया, अब दिसंबर वाले लोग जनवरी में भी शामिल होंगे, वो हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, लाइफ टाइम एक्सेस है, जितनी दफ़ा मर्जी शामिल हूँ लाइव कोर्स में, कोई मसला नहीं। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स अभी आपको 499 में मिलेगा। ये 31 तारीख को इसकी ऑफ़र ख़त्म हो रही है, 31 तारीख को। ठीक है जी, 31 दिसंबर रात 12 बजे जो है ना ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। रिकॉर्डेड कोर्स के साथ आपको 3 महीने की प्राइवेट ग्रुप की मेंबरशिप फ्री मिलेगी, जिसकी वैल्यू तकरीबन 60 पाउंड बनती है, और जनवरी में आपको 2 दिन लाइव सेशन में एक्सेस दी जाएगी। ठीक है, जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट डे हैं। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ लर्निंग कोई डिफरेंस नहीं है, यानी वही चीज़ मैं लाइव में पढ़ाऊँगा जो रिकॉर्डिंग्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, यानी रिकॉर्डिंग्स में सितंबर का सेशन जितना भी लाइव गया है वो सारा रिकॉर्डिंग्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, अक्टूबर का सारा पढ़ा हुआ है, नवंबर का सारा पढ़ा हुआ है, दिसंबर का सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो लाइव और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कंटेंट में कोई फ़र्क नहीं। वही चीज़ आप लाइव में सीखोगे, वही चीज़ आप रिकॉर्डेड में सीखोगे। सिर्फ लाइव में ये है कि आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइव कोर्स में आप मुझे रोक सकते हो, मुझसे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन मेरा बिलीव ये है कि रिकॉर्डिंग्स में हर वो सवाल पूछा जा चुका है जो आपके जहन में होगा, तो उसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि वैल्यू फॉर मनी अगर आपने ढूंढनी और सेम नॉलेज देखना है तो रिकॉर्डेड इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। 499, 2 लाइव सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हैं इसमें, 2 दिन की जनवरी में, और प्लस 3 महीने की आपकी प्राइवेट ग्रुप की मेंबरशिप भी है, और स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप की लाइफ टाइम मेंबरशिप है। ठीक है जी। सिंपल माइंडेड, क्या आप अफोर्ड नहीं कर सकते? आप क्या करते हैं ये बताएं मुझे। सिंपल माइंडेड, आप ये बताएं आप करते क्या हैं, आपकी डे जॉब क्या है, पहले ये बताएं। एल्गोरेंड बहुत ज़बरदस्त कॉइन है जी, ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ। ठीक है जी, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ओए होए, अब जो कॉइन आज मेंशन करेंगे ना वो मैं 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड करके ये इन्वेस्ट किए थे पैसे साल के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं 2000-3000% मैंने गेन उठाया अपना। सॉरी, अच्छा, माई बैड, एल्गो मेरी लिस्ट में शामिल नहीं है जी। ठीक है जी, एल्गो मेरी लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन
मुझे याद है कि मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी पूरी, और अच्छा कॉइन है, आप इसको ख़रीदें। और इसकी अभी हम इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल में दैट विल नॉट बी एन इशू। ठीक है, ये 6.4 बिलियन सप्लाई है। अगर उसकी बर्निंग होती है, मुझे भी पता नहीं है रिसेंटली कि इसके कॉइन्स बर्न हुए हैं या नहीं हुए। जी अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? ठीक हो? से ठीक है। इंटरेक्टिव ब्रोकर पे आपको दुनिया का हर स्टॉक मिलेगा सिवाय 2 कंट्रीज के स्टॉक के, इंडिया और पाकिस्तान के। इंटरेक्टिव ब्रोकर एक वाहिद ब्रोकर है जिसमें दुनिया की हर मार्केट आपको मिलेगी, दुनिया की हर मार्केट आपको, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, दुनिया की कोई भी मार्केट उठा लोगे ना, वो आपको इंटरेक्टिव ब्रोकर के ऊपर मिलेगी। ठीक है जी। करेंसी आपको इंटरेक्टिव ब्रोकर के ऊपर मिलेगी, क्रिप्टो करेंसी आपको इंटरेक्टिव ब्रोकर के ऊपर मिलेगी, यानी आपके पास फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है। ओटीसी मार्केट आपको, पिंक शीट आपको मिलेगी उधर। ठीक है जी। सॉरी गाइस, एल्गो मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कॉइन है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, अपनी तरतीब से उसको करे। मैं अब भी ये नहीं कह रहा कि खरीदें, क्योंकि मेरी मोस्ट रिसेंट उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। तो अगर मेरी कोई रिसर्च ना हो किसी चीज़ के ऊपर, तो मैं कभी भी किसी को वैसे भी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि आपके पैसे हैं, अगर डूब गए तो आप मुझे फ़ोन करेंगे, मैं तो गायब हो जाऊंगा भाई, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे 007 जो है ना, जेम्स बॉन्ड 007 गायब हो जाता है। ठीक है, पहले टू दी मून 1 वे फ्लाइट। ठीक है, पूरे 6 महीने 1 वे फ्लाइट। ठीक है, टू दी मून, और फिर जब ज़मीन पे गिरती हैं चीज़ें तो 007 गायब हो जाता है। तो इसलिए मेहरबानी करें, टू दी मून कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टिंग करें, कोशिश करें स्लो एंड स्टेडी अप्रोच अपनाएं, डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, ओवरनाइट अमीर बनने की कोशिश ना करें। ठीक है जी। यार रिकॉर्डेड में कोई सेशन, रिकॉर्डेड में तो पता नहीं 200 वीडियो पड़ी हुई है। रिकॉर्डेड में आपको ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, रिकॉर्डेड में इतना मटेरियल है ना कि आपको कोई और कोर्स दुनिया में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिप्टो के रिलेटेड, स्टॉक्स के रिलेटेड, ऑप्शंस के रिलेटेड कोई दुनिया में और कोर्स लेने की, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये इतना मटेरियल पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये नवंबर का है, ये दिसंबर का है, अभी हम सितंबर का अपलोड करने लगे हैं, अक्टूबर का अपलोड करने लगे हैं। ठीक है, ये सारे सेशंस हम अपलोड करने लगे हैं। ठीक है जी। जैसे ये दिसंबर में कोर्स मैंने डिलीवर किया, ठीक है, दिसंबर का इंट्रो, फिर डे 1 पार्ट 1, डे 1 पार्ट 2, डे 2 पार्ट 1। ठीक है, तो ये 7 दिन दिसंबर के पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। ठीक है जी। फिर इसके बाद नवंबर की पूरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। सितंबर, अक्टूबर और अगस्त की रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज अवेलेबल होंगी। ठीक है जी। तो मतलब लिमिट नहीं है आपकी लर्निंग की, आप थक जाओगे लेकिन आपके डेटा आना आपको बंद नहीं होगा, इतना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है जी। कैसर आजम, यार अभी बोल अंडर $4, ये तो आपने टास्क दे दिया ना। अगर जो जब सेंड और माना आए थे अंडर $4, अंडर $2, बल्कि $1 पे थे, बल्कि 5 सेंट पे थे, जब मैंने इनको बोला तो तब ले लेते तो और से मामला होता। ठीक है जी। बारह एनीवेज, अभी मैं देख रहा हूँ अंडर $1, बल्कि अंडर $1 वाले कॉइन भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, फिर तो आपको ना डिलीवरी जाओ अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी। जी, फ़ोन कौन सा इस्तेमाल करते हैं सिंपल माइंडेड, ये बताएं, फ़ोन कौन सा आपके पास अभी? शिबा इनू का कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। ही 28 पे था जब मैंने बोला था कि ले लें, तो अगर उस वक्त ले लिया होता तो अभी तो प्रॉफिट में होते। लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म की जो है ना, लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखें अगर किसी ने इस रेंज में बाई किया हुआ है। ठीक है, तो सैमसंग A70, ठीक है, सही है। मेरे साथ रब्ता करें, सिंपल माइंडेड भाई, मेरे साथ रब्ता करें प्लीज़। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, वेबसाइट के ऊपर जाएं और वेबसाइट के बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर में ना जो है ना, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना तो ये बिल्कुल इधर आपको मिलेगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है,
ठीक है जी, और ये टिकटॉक का लिंक, ठीक है जी। यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाएंगे, सीधा मुझे व्हाट्सएप करें, और टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है जी। टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करें मेरे भाई। कोई नहीं मसला, आपका मसला हल कर देंगे हम, टेंशन नहीं करनी है, ठीक है जी। तो बाकी ये है कि टाइम 1 होने को है, और ये अपना ख्याल रखिएगा सारे लोग, और इंशाअल्लाह। कैसे, थैंक यू वेरी मच फॉर फ्लावर्स ना भेजा करो यार, फजूल में पैसे ना स्पेंड करो इतने, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना भेजो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का। लेकिन वैसे टैप कर दें स्क्रीन को, कोई नहीं, फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बस बादाम खाता हूँ और छुआरे खाता हूँ, छुआरों का नाम सुना होने, छुआरों में 100 गुणों की ताकत देते हैं छुआरे आपको, ठीक है। 3 छुआरे खा लें रोज़, ठीक है, 3 छुआरे, ठीक है, और 4 से 5 बादाम खा लें बस, अल्लाह खैर, सावगी बादाम के साथ मिला लें, जिसको हम किशमिश बोलते हैं, ठीक है जी। ज़बरदस्त। यूनिवर्स होती क्या यार, मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे वो इनविटेशन आती रहती है कि गेम खेलनी है, नहीं खेलनी, मैं कहता हूँ यार मुझे इससे कोई इतना नहीं, दिलचस्पी नहीं है। छुआरे, ठीक है, सुबह दूध गर्म कर लें, छुआरे, उसके बाद बादाम, उसके बाद जो जिसको सावगी हम बोलते हैं, ठीक है जी, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ओए नहीं आप वोट ट्रांसफ़र कर दें मुझे मेरे अकाउंट में, फिक्र ना करें वैसे। मेरा अकाउंट जो है ना, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करें, वो मुझे ट्रांसफ़र कर दें, इतना बड़ा गिफ्ट जो है, ठीक है। नहीं, मैं बहुत मशकूर हूँ, वो नहीं, पिछली दफ़ा भी लोगों ने डायमंड भेजे थे और ये इस तरह की चीज़ें, और मुझे पता है कि उनको कॉस्ट करती हैं। कभी कभी मैं भी अपने फेवरेट बंदे के ऊपर फेंक देता हूँ पैसे, मसला नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि यार देखो, इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है ना, वो मैं आपको बताऊँ, टिकटॉक को होता है, ठीक है। यस, मेरी लाइव बूस्ट होगी, ठीक है, जब भी कोई बंदा मुझे कोई गिफ्ट भेजता है तो लाइव बूस्ट होती है, लेकिन मुझे इस तरह बूस्ट करना भी नहीं है, मुझे वो जो ऑर्गेनिकली बूस्ट हो तो ठीक है, सही है। ये नहीं कि जी आपके पैसे खर्च हों और आप मुझे चीज़ें, वैसे टैप करें स्क्रीन को, वैसे भी टैप करेंगे स्क्रीन को तो ये लाइव जो है ना आगे जाती रहती है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह जो है टिकटॉक को टॉप अप ना किया करें, जो है ना वो इस पे पैसे ना खर्चें। यही पैसे अगर आप 10 पाउंड भी जो टिकटॉक के ऊपर टॉप अप करते हैं, अगर आप सिर्फ हर रोज़ या हर हफ्ते बाद 10 पाउंड भी एक अच्छे स्टॉक में डालते रहें ना, आप एक अच्छे स्टॉक में डालते रहें, 10 पाउंड सिर्फ, इसको कंपाउंड करते रहें, कंपाउंड करते रहें, कंपाउंड करते रहें, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको 2 3 4 सालों में क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब मैं अगर छोटी सी बात बोलूँ कि $22 का था XP, $21.73 का, ठीक है, XPEV, तो मैं पीटता रहा लोगों को कि XPEV है, जो मेरे ग्रुप में थे लोग स्पेशली, ठीक है जी। मतलब तो लोगों ने नहीं लिया, ठीक है जी। अब पॉइंट ये है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कुछ चीज़ें, और ये चीज़ें बड़ी प्रिसाइज हैं, इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये देखें, ये है जी 11th ऑफ मई का मैसेज, 11th ऑफ मई का मैसेज, ठीक है, 11th ऑफ मई दिस ईयर, ये मैसेज है जी आपका, अल्लाह भला करे, ठीक है। ऑल्सो XPEV पॉसिबली कैन हिट $23 बिफोर रिवर्सल, ठीक है जी, $23, ली माइट हिट $15 बिफोर इट टेक्स ऑफ अगेन। अब मैं आपको 11th ऑफ मई जो है ना, 11th ऑफ मई, लिटरली 11th ऑफ मई का दिखाता हूँ, ठीक है जी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 11th ऑफ मई को था क्या, ठीक है जी, XPEV, ठीक है। जो डॉलर कॉस्ट एवरेज है वो इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं उसको, ठीक है। अब मैं आपको 11th ऑफ मई का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे जाते हैं हम,
ठीक है, ये 10 मई है जी, ठीक है, ये क्या है 10 मई, और ये है 11th ऑफ मई, क्या जी 11th ऑफ मई। मैंने उस मैसेज में कहा कि 23 को टच करके रिवर्सल होगा, क्या होगा जी 23 को टच करके रिवर्सल होगा इसका, ठीक है। ये 2273 पे गया और अब देखें $60 के करीब गया ये, ठीक है, $60 के करीब, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे प्रॉफिट ले ली थी, यहाँ पे गई पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है जी 40 के इर्द गिर्द। यस, कभी कभी हमें पता नहीं होता, लेकिन पॉइंट ये है कि ली की बात करते हैं, मैंने कहा $15 पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा जी $15 पे मैंने कहा जाएगा। अब देखते हैं ली का क्या हुआ 11th ऑफ मई को, ये है जी 11th ऑफ मई आपका, यही है जी 11th ऑफ मई, ठीक है। अब ये कितने पे गया 1598 पे, 1598 के बाद ये नियरली $40 पे गया, कहाँ पे गया जी $40 नियरली, ठीक है, ये नियरली $36 समथिंग, ये यहाँ पे, ठीक है, उस स्पाइक में, और यहाँ पे ये गया इस स्पाइक में 3745, ठीक है जी। पॉइंट ये है कि हम समझते हैं ये $5-10 $15 $20 $50 कुछ भी नहीं है। अगर आप इनको कंपाउंड करते रहें, 1-2 साल के लिए कंपाउंड करते रहें, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आप कितना पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पैसा वेस्ट ना करें, स्पेशली वो चीज़ें जो जिनके मायने नहीं है। एक फ़ोन हो गया, मैं आपको अपना फ़ोन दिखाऊँ ना, आप यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे कि चूँकि काम कर रहा है मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फ़ोन है मेरा, टूटा हुआ स्क्रीन, सॉरी मेरी और मेरी मिसेज़ की तस्वीर है, ऊपर से देखें बिल्कुल स्क्रीन इसकी क्रश हुई है, कंप्लीट क्रश हुई है। लेकिन यहाँ पे लोग करते क्या हैं, हर साल फ़ोन अपग्रेड लेना जी, फ़ोन अपग्रेड मस्ट है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है फ़ोन अपग्रेड। उनको ये पता भी नहीं कि जिस फ़ोन के वो £50 हर मंथ दे रहे हैं ना, वही £50 अगर वो इस तरह के स्टॉक में डालते रहें, हर महीने £50 इस तरह के स्टॉक में XPV में डालते रहें, AMD पे डालना शुरू कर देते उस वक्त, 1 साल पहले जब मैंने इसको बोला, ठीक है जी, जनवरी फरवरी में, ठीक है, जब ये $89 पे था, $88 पे, ठीक है, ठीक है। तो जी मैं कश्मीरी हूँ, तो देखिए फजूल चीज़ों के ऊपर पैसा स्पेंड करना बंद करें। अगर लोग ज़्यादातर मार क्यों खाते हैं, उनकी कमाई होती है 2000 और ख़र्चा कर देते हैं वो 2100-2200। खर्चे का असूल सिंपल सा है, ठीक है। जब आप वो ना हमारी उर्दू में कहावत भी है कि चादर दे के पाँव फैलाएं, ठीक है जी। तो वो चादर अगर आपकी 10 मीटर की है ना, ठीक है, 10 फुट की है ना, तो आपके पाँव 5 फुट पे होने चाहिए, ये 4 फुट पे होने चाहिए, बस आपके पाँव इतने ही फैलाने चाहिए आपको, इससे आगे नहीं। इससे आगे जाएंगे तो समझें कि आप बस अपना आप ख़त्म कर रहे हैं, आप कभी उस स्पाइरल से नहीं निकलेंगे। जॉब काम काम घर काम घर काम घर काम घर, मंडे से संडे रूटीन रहेगी, और एक भी दिन बीच में से मिस हो गया तो आप ख़त्म, खलास, आपके लाले पड़ जाएंगे, आप बिल कैसे जाएंगे, मोर्गेज कैसे जाएगी, ठीक है। ये ज़िंदगी नहीं है मेरे भाई, ये ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी इससे बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, और वो लोग अपने आप के ऊपर जुल्म करते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, इट्स इम्पॉसिबल टू टाइम द मार्केट, और हमें टाइम करना भी नहीं है मार्केट को, ठीक है। हमें स्ट्रेटजी बनानी है वो जो हम जो है ना वो फ्लो में जाए, ठीक है। और स्ट्रेटजी क्या है, जैसे ही आप एक स्टॉक खरीदें, जिस मर्जी प्राइस पे खरीदें, ठीक है, वो डॉलर कॉस्ट एवरेज की नीयत से खरीदें, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आप खरीदें उसकी फार आउट, वो जो आपको पॉसिबिलिटी ना हो कि हिट करे कभी भी, ठीक है। हिट हो भी चाहिए तो एक तो आप प्रॉफिट में होंगे, दूसरा ये है कि अगर ना हिट हुई तो प्रीमियम आप कलेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे आप स्टॉक खरीदें, चूंकि डॉलर कॉस्ट एवरेज की नीयत से आपने खरीदा हुआ है, तो अब आपने करना क्या है, अब आपने उसकी कैश सिक्योर्ड पुट बेचनी है, ठीक है। जो रिमेनिंग जो नेक्स्ट
आपकी जो बजट की जो बजटिंग आपने की, फॉर एग्जांपल 10,000 का आपने बजट बनाया हो, ठीक है, $2500 का आज आपने AMD ले लिया, ठीक है जी। अगर उसमें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके 10 शेयर्स आए, ठीक है, अब ज़रा उसकी कवर्ड कॉल तो नहीं बेच सकते, क्योंकि कवर्ड कॉल बेचने के लिए, कोई भी ऑप्शन बेचने के लिए आपके पास मिनिमम 100 शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल से हम कहते हैं 100 शेयर्स आपने AMD की ले लिए, ठीक है। अब आप 170 की अगर आप कॉल बेचेंगे ना, जुलाई की, सॉरी जुलाई की भी नहीं यार, जुलाई की कहाँ पे, मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आप 100 शेयर AMD के आज 154 पे ले लें, ठीक है, 154 पे ले लें, और जनवरी की 28 तारीख की आप कवर्ड कॉल उसकी बेचते हैं 170 की, ठीक है, कितने की, 170 की कवर्ड कॉल बेचते हैं, तो उस 100 शेयर के आप स्टेट में $475 जो है ना वो प्रीमियम कलेक्ट करेंगे कवर्ड कॉल से स्ट्रेट वे। सो दैट मीन्स आपकी 154 कॉस्ट नहीं होगी, आपकी कॉस्ट होगी $149 स्ट्रेट वे, ठीक है जी। दूसरा आपने क्या करना है, कैश सिक्योर पुट बेच देना है अगले 100 शेयर्स के लिए, चूंकि ज़ाहिर आपने एक ही दफ़ा तो इन्वेस्ट नहीं करना, आपने चंक्स में इन्वेस्ट करना है, चूंकि डॉलर कॉस्ट एवरेज है, तो वो आपने बेचनी है मे बी 130 की या 125 की। अगर 125 की कैश सिक्योर पुट बेचेंगे तो वो 124 की है, $1.24 की, दैट मीन्स वो $124 आपको स्ट्रेट वे डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर आप 130 की बेचेंगे तो वो $187 आपको डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी आपको प्रीमियम मिलेगा उसका, ठीक है। सो 475 प्लस 185 कितने हो गए, 475 प्लस 185 कितने होते हैं जी, 475 प्लस 185, ठीक है, ये आपके $660 स्ट्रेट वे इन हो जाएंगे आपके स्ट्रेट वे। यानी आपने स्टॉक लिया 154 पे, इससे आप माइनस कर लें $6.60, तो स्टॉक बेशक आपने 154 पे लिया, लेकिन आपकी प्राइस जो एवरेज ब्रेक इवन आपका है ना वो $147.40 है, ठीक है। सो स्ट्रेटजी जब आप यूज़ करेंगे ना तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे इस मार्केट में, ठीक है जी। तो ये स्ट्रेटजीज हम सिखाते भी हैं, और यहाँ पे तो मैं फ्री दे रहा हूँ, ये जेम्स दे रहा हूँ आपको, जेम्स ऐसे फ्री करके दे रहा हूँ, ठीक है। लो, यूज़ करो, अंडरस्टैंड करो और पैसा बनाओ इस मार्केट से, ठीक है जी। रिटेल इन्वेस्टर्स, ये MB3 ऑफिशियल्स, yeah, there are so many things you can do, use options to your benefit. 76 आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, वहाँ पे मैसेज करें, स्ट्रेटजी आपको समझनी है मेरे ख्याल में, ये इसका मतलब है कि आपकी जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है वो सही नहीं कर रही, आपकी एंट्री गलत है, ठीक है जी। आप एंट्री गलत ले रही हैं अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रही हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस लोग सोचते हैं कि मदद नहीं करते, बहुत मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर रब्ता करें, उधर टेलीग्राम ग्रुप पे आएँ या वेबसाइट पे चले जाएं, व्हाट्सएप का मेरा उधर लिंक मौजूद है वेबसाइट के ऊपर trading402.com, ठीक है जी। तो वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि स्टॉक जाएगा, ये तो हो नहीं सकता कि आपके अगेंस्ट ना जाए, ये हो ही नहीं, ये रेयरली है। लेकिन क्या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्या जब आपने, जैसे मैंने AMD का बोला आपको, ठीक है, AMD आपने अगर आज इसी प्राइस पे भी ले लेना, इसी प्राइस पे भी ले लें, तो आप स्ट्रेट वे सेफ हो सकती हैं $147.40 तक, आराम से सेफ हो सकती हैं। कोई मसला नहीं हो सकता कि $147.40 तक आप ब्रेक इवन है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है जी। बोन स्टार एवर, अब मैं इसका जवाब क्या दूं, मुझे कुछ नहीं समझ, मुझे क्या जवाब दूं इसका मैं। ये तो इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ाना जो है ना वो, मासूमाना नहीं, बेवकूफ़ाना सवाल है, बेवकूफ़ाना सवाल है।
वो जो यूनिवर्सिटी में टीचर्स होते हैं, ठीक है, या ये जो गाड़ियों के ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, इनको सबको मार देना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के टीचर्स को मार देना चाहिए, स्कूल के टीचर्स को मार देना चाहिए, लेक्चरर्स को मार देना चाहिए, ठीक है जी, इनको सबको मार देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। वो तो मतलब पागलों वाली बातें करते हो यार आप। AMD, हाँ ये हो सकता है कि कोई आप जिंक्स ना हो। ये हो सकता है कि आप जिंक्स ना हो, ठीक है जी। मैं फ्री में तो सिखाता ही नहीं हूँ, मेरा कोर्स है £1250 का कोर्स है मेरा। मैं फ्री में कहाँ पे सिखाता हूँ? मैं तो नहीं फ्री में सिखाता। आप पागल हैं क्या? फ्री में तो लोगों को मैं चपेट भी ना मारूं हैं। मैं अपना टाइम अगर स्पेंड करूंगा आपको चपेट मारने के लिए, आप अगर मेरे सामने आए, आप मुझे ये कहें कि मुझे चपेट मारें, तो मैं आपको फ्री में चपेट भी ना मारूंगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें आप। 1250 का कोर्स है मेरा। ये तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूं कि क्या है। बोन स्टार, अभी अब स्टार नहीं बने मेरा बेटा, स्टार बन जाए तो आइएगा फिर, ठीक है। तो हाँ जी, बात यह है कि पहले लाइव को थोड़ी 2-4 मिनट के लिए सुन लिया करें कि बात क्या हो रही है, बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ से बात चल रही थी, क्या हो रही थी, ठीक है जी। तो ऐसे खां में आते ही शुरू हो जाते हैं खां, ठीक है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ बोन स्टार पिछले 3 घंटे से, ठीक है, 4 घंटे से यही तो कह रहा हूँ। AMD, एप्पल, एनवीडिया, ठीक है जी, स्नैप, XPV, और मैं क्या, मैं को और यहाँ पे पकोड़े बेच रहा था क्या? आप आए अभी मुंह उठा के चले आए और कमेंट करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। आप अगर 2 घंटे पहले आते हैं तो ये स्टॉक 2 घंटे पहले, उससे पिछली लाइव में भी, ठीक है जी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। AMD जब 130 पे था तब बता चुका हूँ, ठीक है जी। 130 पे था AMD, पिछली जो लाइव है 17 को थी या 16 को थी मेरे ख्याल में, ठीक है। उसमें AMD का जिक्र कर चुका हूँ, एनवीडिया का जिक्र कर चुका हूँ, एप्पल का जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है जी। और एप्पल तो $119 से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। जी, RUNFCA UK अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट? नहीं जी, मैं FCA रेगुलेटेड नहीं हूँ। मैं किसी को पर्सनल एडवाइस नहीं देता, किसी को भी पर्सनल एडवाइस नहीं देता जी, मैं किसी को भी पर्सनल एडवाइस नहीं देता, कभी भी नहीं। क्योंकि जो है ना, वो सिर्फ यहाँ पे स्टॉक की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, और बिजनेसेस, डार्क किचन्स की बात हो रही थी हमारी, और हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही थी, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे इम्पेक्ट करेगा हमारी दुनिया को, ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, 3D प्रिंटिंग की बात हो रही थी, हमारी जीन एडिटिंग की बात हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। आप थोड़े लेट आए हैं, मेरे ख्याल में अभी आपको फैक्ट्री से छुट्टी मिली होगी तो आप आएँ, कोई मसला नहीं, आप थोड़ी देर रुके, मैं भी आधे घंटे के लिए इधर हूँ, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आप पागल तो नहीं हो? अभी कह रहे थे कुछ भी फ्री नहीं मिलता, और अभी कह रहे हो 1200 को। $1200 नहीं है मेरे भाई, £1250 है, पाउंड, तकरीबन डॉलर बनते हैं 1700, ठीक है जी, ओके। $1700 बनते हैं। आपकी कैलकुलेशन गलत है, थोड़ी सी आंखें खोलें, या तो फैक्ट्री से अभी आप अंधेरे से निकल के आए बाहर और आपको होश नहीं आ रही है। ये £1250 है मेरे भाई, £1250 है, ठीक है। और डॉलर्स में ये बनता है, अभी बता देता हूँ मैं, ये $1762 बनते हैं, ठीक है जी। तो होश के नाखुन लें मेरे भाई। ओके। हादी, कोई मसला नहीं, आज मैंने जैकेट वो वैसे भी थोड़ी सी थिन पहनी हुई है वैसे भी। ठीक है, इशू नहीं है। विंडो 10 नहीं, इनको को और नया सॉफ्टवेयर उससे भी अपडेटेड चाहिए इंशाल्लाह। विंडो -1 बर्मिंघम, ये किसी ने मुझे अब मेरे नाम से पुकारा है, ये कौन है बंदा यार? मैं इसको देखना चाहता हूँ।
किसी ने मेरे नाम से मुझे पुकारा है। ये कौन है? किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा है, बैश वन बर्मिंगम। तो मसला नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। और थोड़ी देर अगर आप रुकेंगे, वो गए किधरे, बोन स्टार गए किधरे, मेरे ख्याल में अभी वो उनकी पैदाइश का वक्त आ गया है। जी, ये पता है कौन देता है $1250 में? आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, और ये स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप है, ये प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है जी? ये प्राइवेट ग्रुप है, इसमें कोई भी बंदा दाखिल नहीं हो सकता मेरी इजाज़त के बगैर, ठीक है। इसमें 90 लोग हैं, 90 स्टूडेंट्स हैं, 90 स्टूडेंट्स जिन्होंने कोर्स खरीदा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे देखें, ये देखें, जाएं ट्रस्ट पायलट के ऊपर, जाएं ट्रस्ट पायलट के ऊपर, टाइप करें ट्रेडिंग 402, ठीक है, ट्रेडिंग 402 टाइप करें और ये रिव्यूज़ जाके पढ़ें, ठीक है, ये रिव्यूज़ जाके पढ़ें, ठीक है। आपकी आंखें खुल जाएंगी वैसे भी, ठीक है जी। ओके ओके। अब बाइज्जत तरीके से बात करें ताकि बाइज्जत तरीके से काम हो सारा, ठीक है जी। और बाइज्जत तरीके से रहेंगे। बस अब शुरू हो गया रोना, अब रोना शुरू हो गया। गरीबों से पैसे ना लिया करें, पहले कोई चीज़ फ्री नहीं है, अब गरीबों से पैसे ना लिया करें। ये क्या यार आप लोग का माइंड सेट। गरीबों से मैं नहीं पैसे लेता, जो गरीब है ना, जेन्युइनली गरीब है, उससे मैं पैसे नहीं लेता, ठीक है। जो मुझे ये डेमोन्स्ट्रेट कर दे कि गरीब है वो, उससे मैं पैसे नहीं लेता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, ठीक है, तो उन्होंने अपनी बात बताई, मुझे साफ दिल से बताई, मैंने कबूल की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, किसी की भी आइडेंटिटी भी नहीं, और अपना जो मैं काम करता हूँ चैरिटी वर्क उसकी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्प की है, और बहुत इत्मीनान से सोता हूँ रात को जब सोता हूँ, ठीक है जी। आप गरीब हो तो फिर आप आओ ना, मैं आपको कभी आओ ना, कभी आओ बर्मिंघम, बर्मिंघम आओ कभी, फिर आपको जो है ना वो आपका इलाज करते हैं, कोई नहीं मसला, फ्री में इलाज करेंगे आपका, मसला नहीं है कोई भी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके बिशारत भाई, आप, मैंने पहचान लिया आपको, थैंक यू वेरी मच बिशारत भाई। आपको अल शिफा में इलाज करवाएंगे, फ्री में इलाज करवाएंगे, सारा खर्चा मेरा, फिक्र नहीं करनी, ठीक है। टेलीग्राम में आओ ना जी, खुद आओ, मैं कैसे ज्वाइन करूं? मैंने हाथ पकड़ के थोड़ा लेके आना है आपको मेरा बेटा। ये देखो, यहां पे जाओ आप, यहां पे वेबसाइट पे जाओ trading402.com, और ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो सीधा मेरे टेलीग्राम में आप लैंड हो जाओगे, ठीक है। जब टेलीग्राम में लैंड होगे तो मैसेज करना कि बॉर्न स्टार गरीब, ठीक है, तो मुझे समझ आ जाएगी कि मैं, मेरा भाई आ गया है, ठीक है। तो फिर मैं आपको अपनी आगोश में ले लूँगा, ठीक है, अपने अम्ब्रेला के नीचे ले लूँगा, टेंशन नहीं करनी है, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, अल्लाह सबका भला करे। वो बोला तो है आ जाए, वो आ ही नहीं रहा बेचारा। फर्स्ट दिखाओ इमेज लूँगा, फर्स्ट दिखाओ इमेज लूँगा, क्या लूँगा इमेज? किस चीज़ का इमेज लेंगे? अच्छा ना, एक और मजे की बात बताऊं मैं आप लोग को, जिस दिन से मैंने ये उर्दू वाला चैनल स्टार्ट किया है ना, तो गरीबों की तादाद जो है ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बढ़ ही गई है जी।
अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। वेबसाइट वेबसाइट है trading402.com, trading402.com मेरे भाई, ये trading402.com, ठीक है, trading402.com। सीधा वेबसाइट पे चले जाए मेरे भाई, आपको उधर नजर आ जाएगी। और हाँ, जिस दिन से मैंने ये शुरू किया ना, वो ये उर्दू वाला चैनल, तो काफी जो है ना वो ये कोई नहीं मसला, हम भी इंटरटेन करेंगे। कैनेडियन डॉलर में तो कैनेडियन डॉलर का रेट क्या चल रहा है अभी, मैं जरा देखूँ तो सही। कैनेडियन डॉलर में ज्यादा बने, मेरे ख्याल में 2000 बनेंगे, लेकिन अभी ऑफर चल रही है ना, 999 का है ना, 999 GBP, ठीक है, टू कैनेडियन USD कैड, ठीक है जी। कैड में अगर जाएगा तो हाँ जी, 999 पे जाएंगे तो $1717 बनते हैं कैनेडियन, ठीक है। अगर आप जो है ना ऑफर पे लेंगे, चूंकि अर्ली बर्ड 20 या 31 नाइट को ख़त्म हो जाएगा, मिड नाइट को, ठीक है। तो इसमें आपको 6 महीने की मेंबरशिप मिलेगी फ्री प्राइवेट ग्रुप की, और उसके अलावा आपको स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप तो लाइफ है, फॉर लाइफ आपको एक्सेस मिलेगी उसकी, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स की लाइफ एक्सेस है आपको, फुल रिकॉर्डिंग्स की लाइफ एक्सेस है, ठीक है जी। तो बाकी ये है कि रिव्यूज़ जाके पढ़ें मेरा भरा, ये आपका बोन स्टार एवर चेक करें, आप आएँ भाई हैं, कोई नहीं मसला यार, मजाक कर रहा था, कोई दिल पे ना लेना बात, ये ना हो कि आप रात को सोए ही ना दिल पे लेके बात, ठीक है जी। चलो कोई नहीं खैर, ये रहने दो यार, इसको लगे रहने दो, लगे रहने दो। एप्पल की एक्सपायरी, एप्पल तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, AMD उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस में बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप जाओगे ना, इवन इफ, चूंकि एप्पल ब्रेकआउट करने जा रहा है 180, ठीक है, 180 अगर ब्रेकआउट कर जाता है, 184 सॉरी, 184 ब्रेकआउट करता है, तो यू कैन इजीली सी दिस टू बी $200। और अगर आप $200 की जो इवन जनवरी की 28 की खरीदोगे, जनवरी $200 जनवरी 28, तो $1.20 की है, ठीक है जी, $1.20 की। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो IV स्ट्रॉन्ग है वो है AMD की, ठीक है। AMD आपको 170 की 28 जनवरी की, सरप्राइजिंगली प्राइस इतनी हाई है अभी, 170 जो है ना वो बिड अभी चल रही है उसकी, आस्क चल रही है 470 सॉरी, $4.70 आस्क चल रही है AMD की, 170 की गाइस, ठीक है। तो एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल AMD राइट नाउ कैन प्रिंट यू मनी राइट लेफ्ट बॉटम मैन। आप पुट करो, सेल करो, कॉल सेल करो, डेबिट स्प्रेड करो, क्रेडिट स्प्रेड करो, जो मर्जी करो, यू विल मेक मनी ऑन दिस वन, ठीक है जी। सो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये करेंगे तो उसमें बेसिकली है क्या कि अगर इवन इफ अगर आप 154 पे AMD ले लेते हो अभी इसी प्राइस पे ऊपर, वैसे तो मैंने 130 के ऊपर लास्ट लाइव के ऊपर बोला था, क्लियरली बोला था, जो बंदे लाइव में थे लास्ट टाइम, 130 AMD 130 था, ठीक है। तो लेकिन चलें, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं कहता हूं कि आप 154 के ऊपर ही ले लेते हो अभी इसको, ठीक है। स्ट्रेट वे आप 170 की कवर्ड कॉल इसकी बेचो, ठीक है जी। 170 कवर्ड कॉल बेचोगे तो $4.75 आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 154 से -475, ठीक है, वो 149.25 हो जाएगा। अब आप जो है ना इसकी 100 एक जो है ना वो कैश सिक्योर्ड पुट भी बेच दो, ठीक है, जो आपको मिलेगी अगर आप 130 की बेचते हो, अगर सेम प्राइस सेम डेट की 28 की, ठीक है, जो कि वेरी रेयर है कि 28 जनवरी तक ये वहां पे जाए, ठीक है। 170 पे तो जा सकता है लेकिन 130 पे नहीं आ सकता इतनी देर में, हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अभी चार्ट नजर आ रहा है नहीं जा सकता, ठीक है जी। तो अगर आप 130 की कैश सिक्योर्ड पुट बेचते हो तो वो आपको अभी कलेक्ट आप करोगे, कितने करोगे जी कलेक्ट आप करोगे 187। सो इसका मतलब ये है कि आप अब
इसमें से 187 और माइनस कर दो, तो इसका मतलब है अब आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 147.38 है, ना कि 154 है। स्टॉक आपने 154 लिया, लेकिन चूंकि आपने $660 कलेक्ट कर लिए हैं प्रीमियम से, ठीक है जी, तो अब आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो गई है, ठीक है जी। सो AMD इज एब्सोल्युटली प्रिंटिंग मनी राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। आप स्प्रेड क्रिएट करो, क्रेडिट बनाओ, स्ट्रैंगल बनाओ, स्ट्रैडल करो, कुछ भी करो, ये आपको पैसे देगा, ठीक है जी। सो इसीलिए मैं AMD के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ। हर लाइव में बोला है, बहुत अरसे से $89 से मैं इसको जो है ना पुश कर रहा हूँ। बाकी फ्यूचर ये है कि AMD एनवीडिया को क्रॉस ना करे, लेकिन एनवीडिया के पीछे पीछे रहेगा, ये मैं आपको बता दूं। ये मेरा कन्विक्शन है, 100% कन्विक्शन है, ठीक है जी। या पुट ऑप्शन 187 जो मेरे पास लाइव डेटा आ रहा है, जब मार्केट क्लोज हुई है तो 180 जो 130 की पुट है, ठीक है जी, 130.28, ठीक है जी, वो है जी 130 की, वो है 187 की आस्क थी जब मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है। सो अगर आप 125 की जाते हो तो वो 124 है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेते हो मेरे भाई। जी आप स्ट्रेटजी है ना, स्ट्रेटजी बनाएंगे तो पैसा बनाएंगे, स्ट्रेटजी नहीं होगी, प्लान इन प्लेस नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बाय सेल का बटन प्रेस करते रहेंगे तो नहीं पैसे बनते, ठीक है जी, ये सिंपल सी बात है। आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और AMD का स्टॉक ऐसा है जो आप होल्ड करके रखें, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज करें ऑप्शन के ऊपर, वो इतनी फार आउट हो कि वो चांसेस उसके कम हो, उसका जो डेल्टा है वो मेक श्योर करें कि 30 से कम हो। अगर मैं इसका डेल्टा चेक करूं, 1 मिनट ठहरे, मैं चेक करके बताता हूं आपको, अब भी पता चल जाएगा। अब 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि डेल्टा यानी ग्रीक्स कैसे इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। 90% लोगों को नहीं पता, और फिर वो ऑप्शन ट्रेड करने निकल पड़ते हैं, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है। मैं आपको भी बताता हूं कि इसका डेल्टा कितना, और मैं बिलीव करता हूं कि अभी डेल्टा इसका हाई होगा। उसकी वजह सिंपल सी इतनी है कि अच्छा जी, AMD आपका जी मैं करने लगा हूँ 100 शेयर्स के ऊपर, मैं सिंपल ये काम करने लगा हूँ, ठीक है। 100 शेयर्स के ऊपर मैं 170 की बेच रहा हूँ कॉल, ठीक है। और उसके बाद मैं पुट बेच रहा हूँ, ठीक है जी, पुट बेच रहा हूँ मैं 130 की, ठीक है। तो ये देखें, अभी मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी, ये देखें आप, ये देखें, ठीक है। 100 शेयर्स हैं, अगर आप आज ही ये ले लेते, ठीक है, 154.39 पे, जैसे कि हमने तो 147 पे इसको आज पिक किया, ठीक है। तो जो आपको नेट क्रेडिट मिलेगा ये काम करने से, सिर्फ ये 2 काम करने से आपको जो नेट क्रेडिट मिलेगा ना, वो मिलेगा $641, ठीक है, नेट क्रेडिट, ठीक है जी। इवन इफ अगर आप इसी प्राइस के ऊपर खरीद लेते हैं, ठीक है, ये आपको स्ट्रेट वे मिलेगा। यानी कल की बात तो कल है, मैं अभी की बात करूं जो अभी डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और अगर एक्सपायरी पे 170 पे प्राइस जाती है एक्सपायरी के ऊपर, ठीक है, तो आपको जो नेट प्रॉफिट मिलेगी वो $2200 मिलेगी, ठीक है, $2200। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आप स्टॉक 154 पे लेके 170 पे बेचें तो तकरीबन $16 प्रॉफिट है, यही बात है। $16 प्रॉफिट एक 100 शेयर पे, वो $1600 प्रॉफिट बनती है। ये $2200 प्रॉफिट कैसे होगी 170 पे जब प्राइस जाए, तो ये कभी सोचा आपने, ठीक है। सो एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, इसके साथ आप स्प्रेड भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, एक और मैं काम करूं बड़ा ही ज़बरदस्त, जो ये मुझे क्रेडिट मिल रहा है ना, मैं इसके अगेंस्ट एक ये वाला काम करूं, मैं कॉल बाय करूं नियर इन द मनी, ठीक है जी।
जस्ट नियर, ठीक है जी, नॉट इन द मनी, जस्ट आउट ऑफ मनी, ठीक है। ये 160 की मैं कॉल बाय करूं और मैं साथ ही एक कॉल जन और सेल भी करूं सेम स्ट्राइक प्राइस की, ठीक है जी। अब मेरा क्रेडिट तो कम हो गया है तकरीबन $300, लेकिन इधर देखें, अब अगर 170 पे प्राइस जाती है ना, ठीक है, तो मैं $2886 प्रॉफिट बनाऊंगा, ना कि $1600, ठीक है। वैसे अगर मेरे पास सिर्फ 100 शेयर हूं और 170 पे प्राइस जाए और $16 ऊपर जाएगी प्राइस, ठीक है, 154 से $70 पे, ठीक है, 170 पे, तो $16 गेन करेगी, ठीक है। तो मेरा उस हिसाब से $1600 प्रॉफिट बनेगी। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रेटजी यूज करूं, ठीक है, तो मेरी जेब में पैसे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है, $333 प्लस इसको क्रिएट करने में मेरा खर्चा कोई नहीं हो रहा, जीरो खर्चा हो रहा है मेरा इसको करने में, ठीक है। और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी सीधी जो है ना वो $1400-1300 इंक्रीज हो गई है स्ट्रेट पे, ठीक है जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। ये तो सिर्फ ये मैं आपको ना झलक दे रहा हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं जो कोर्स में फीस चार्ज करता हूं ना, मैं एक एक पेनी जो है ना हलाल करके खाता हूँ। रात को बड़े मज़े से सोता हूँ मैं, बड़े मज़े से कोर्स डिलीवर करके ना मैं बड़े मज़े से सोता हूँ रात को, ठीक है जी। सो ये जो रिव्यूज़ है ना, ये ऐसे नहीं आगे 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, इसमें मैं बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ लोगों को। लोग कहते हैं यार कि ये तो लाइफ चेंजिंग कोर्स है ना, ऐसे तो नहीं है ना, राइट लेफ्ट नहीं मारता मैं उन लोग को वो चीज़ें बताता हूँ जो उनको सीखने में 5-10 साल लग जाएंगे अगर वो अपने तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो बाकी देखें, किसी ने मानना है किसी ने नहीं मानना, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम, ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं है। जिसने मानना है मानेगा, नहीं मानना नहीं मानेगा, ठीक है जी। अगर मैं ये काम ना करूं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो प्रॉफिट, इस मार्केट से प्रॉफिट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। MB3 official, but ये strategy different है। I'm not just buying coal, it's a mix and match of strategy, ठीक है। ये सिर्फ coal buy नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो जी 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 यासीन भाई, क्यों नहीं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। साफा 786। सो देखें, इतनी वेरिएशंस हैं कि जिससे आप पैसा बना सकते हैं और बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट ऐसी है कि मतलब ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी सिंगल डे ट्रेड होते हैं, और आप उसमें से $500,000 भी ना कमा पाएँ तो आई डोंट नो ऑनेस्टली कि क्या हो सकता है, क्यों ना कमा पाएँ, ठीक है जी। यानी हर रोज़ पता नहीं कितने जो है ना वो डॉलर का वॉल्यूम ट्रेड होता है। डॉलर ट्रेड में आपको दिखाता हूँ कितना होता है डेली का रफली। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर उधर मूव होते हैं जी ये। और इसमें से जब मैं देखता हूँ कभी कभी लोगों को कि 12-12 घंटे काम करके 150 पाउंड बनाते हैं लोग, तो मुझे तरस आता है उनकी हालत पे, तरस आता है, ठीक है। क्योंकि आज के दौर में इतने पैसे बनाना, आई डोंट नो, 12 घंटे इज इंसैनिटी, 10 घंटे भी 7 घंटे भी इंसैनिटी है, ठीक है जी। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जब इधर उधर हो रहे हैं हर रोज़, ठीक है, और आप उसमें से $200-300 भी 2 मिनट में ना कमा सकें, नॉट अ गुड वे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो जिसने वो सीधा वेबसाइट पे जा सकते हैं, स्ट्रेंजर 6961, सीधा वेबसाइट पे चले जाएं,
trading402.com, trading402.com। और जो नेक्स्ट कोर्स है वो 17 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, 17 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। और ये वाला कोड यूज़ करेंगे तो आपको कोर्स जो है वो 999 पाउंड में मिलेगा अगर ये वाला कोड यूज़ करेंगे, अर्ली बर्ड 20। और 6 महीने की आपको मेंबरशिप भी मिलेगी अगर आप 31 तारीख से पहले पहले ज्वाइन करेंगे। 6 महीने की प्राइवेट ग्रुप की मेंबरशिप है जो 120 पाउंड नॉर्मली तो वो कॉस्ट करती है 240 पाउंड 6 महीने की, ठीक है। लेकिन अभी उसके ऊपर भी डिस्काउंट है, सो अभी के लिए आपको वो 120 पाउंड की वैल्यू उसमें मिलेगी, ठीक है। और प्लस ये है कि ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, आप एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा अटेंड कर सकते हैं क्लासेस, जब जब क्लासेस हों आप अटेंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। सो ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है, आपको रिकॉर्डिंग्स की एक्सेस होगी यहाँ पे पोर्टल के ऊपर, आप रिकॉर्डिंग्स की एक्सेस होगी। जैसे दिसंबर की रिकॉर्डिंग्स है ये सारी, ठीक है जी, दिसंबर की रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। ये सारी दिसंबर के कोर्स की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, ये नवंबर के कोर्स की पड़ी हुई हैं। अभी हम अक्टूबर सितंबर अगस्त की भी अपलोड कर रहे हैं। ज़रा डाटा बहुत ज़्यादा है, ये ओवर 400 वीडियो है, को कम अज़ कम 300 घंटे की वीडियोज़ हैं, 300 आवर्स की वीडियोज़ हैं, जो इतना क्वालिटी मटेरियल है। तो उसको अब चेंज करने में और उसको अपडेट करने में, कस्टमाइज़ करने में टाइम लग रहा है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बीच में म्यूट हैं तो उनको रिमूव करने में, ठीक है। साफ़ा यस डेफिनेटली, जब आप रेडी हों तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कीजिए, कोई मसला नहीं है। फॉलो जिन्होंने नहीं किया अभी तक, फॉलो तो कर दो ना, फॉलो का बटन दबा दो ताकि फॉलो का बटन दबा दो तब आप कनेक्शन में रहो। और फिर बेल का आइकन भी ज़रूर दबाना है, फॉलो का आइकन दबाना है और फिर बेल का आइकन भी दबाना है, ठीक है जी, बेल का आइकन भी दबाना है, ठीक है। फॉलो और बेल का आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको ये लाइव की जो है ना वो मिलती रहे फ्यूचर में, जो भी हैं वो। अभी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ले रहा जी, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ले रहा। तो कोर्स के जो ये वाउचर्स हैं ये तो अभी 4 दिन रह गए हैं ख़त्म होने में, 1 2 3 और 4 दिन ये वाउचर एक्सपायर हो जाएंगे। 31 तारीख को 31 को मिडनाइट को ये वाउचर एक्सपायर हो जाएंगे। ये अर्ली बर्ड्स के लिए हैं, ठीक है। और ये ऑफ़र 6 मंथ्स की जो प्राइवेट मेंबरशिप है ये ख़त्म हो जाएगी और ये 20% डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा 31 को। जिसने ज्वाइन करना है कर ले। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाएंगे तो 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रिव्यूज़ हैं ट्रस्ट पायलट के ऊपर। ट्रेडिंग 402 टाइप करें, जाके रिव्यूज़ पढ़ें, देखें लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने कोर्स लिया वो क्या फ़ील करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे लोग अपने गेन्स शेयर करते हैं और अपने लॉसेस शेयर करते हैं और अपनी एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम अब जनवरी के बाद हर वीक में एक दफ़ा ये लोग मेरे साथ ट्रेड करेंगे लाइव, ये लोग मेरे साथ लाइव ट्रेड किया करेंगे जाके इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरह की मेंटरशिप, ऑनगोइंग मेंटरशिप चलती रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये नहीं कि जी आपको ये कोर्स का मटेरियल दे के छोड़ दिया और आपके हवाले कर दिया ना, असल फोकस ये है कि आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाया जाए, ठीक है जी। तो जब भी मैं ट्रेड किया करूँगा ये लोग मेरे साथ ट्रेड करेंगे वीक में कम अज़ कम एक दफ़ा, ठीक है जी। बाकी ये कि जिसने अभी अच्छा 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 ओके। सो गाइज लिसन, हैंडसम वे टू बाय इन स्टॉक शेयर्स। AMD आप बोल दिया ना, वो आप ज़्यादातर ब्रोकर्स के पास अवेलेबल होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रेड ज़ीरो के ऊपर ख़रीद लें या उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, इंटरेक्टिव ब्रोकर के ऊपर, ठीक है। ट्रेड ज़ीरो या इंटरेक्टिव ब्रोकर के ऊपर ख़रीद लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके इंटरेक्टिव ब्रोकर के ऊपर ज़्यादा सेफ है क्योंकि वो रेगुलेटेड ब्रोकर हैं, ठीक है जी, ठीक है। ये वो आप मेरे ख्याल में ना 80s में भी घूम रहे हैं मेरे ख्याल में मेरे भाई। क्या नाम है उसका, वो नदीम मीरानी आप मेरे ख्याल में प्री 2000 वाला सॉफ्टवेयर अभी आपका वो अपडेट होने वाला है, कोई नहीं मसला, स्टे हेयर प्लीज़। या प्री 2000 वाले काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास जिनकी विंडोज़ की जो सॉफ्टवेयर की अपडेट होने वाली है
अभी असल में बंदे ज़्यादा हैं ना जो जिनके सॉफ्टवेयर 2000 से पूरा पहले पहले के पुराने सॉफ्टवेयर उनके इंस्टॉल हुए हुए हैं। टाइम तो लगेगा उनको अपडेट करने में, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं अपडेट करूँ, लेकिन ज़रा एक बंदा एक जान है अकेली, थोड़े थोड़े करके मैं सॉफ्टवेयर जैसे जैसे वो मेरे सामने आते जाते हैं उनके सॉफ्टवेयर में अपडेट करता जाता हूँ। लेकिन कोई नहीं, आप फिक्र ना करें नदीम मिरानी, आप इधर ही रहें, इंशाल्लाह आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, इंशाल्लाह 2022 की लेटेस्ट वर्जन आपका अपडेट होगा, इधर ही रहें प्लीज़। या तो ये है कि बाकी स्ट्रेटजी काफ़ी लोग को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लोर करें। कोजेंट थैंक यू वेरी मच। 2 डेज कोर्स दानिश भाई, आप अभी 2 डेज कोर्स वाला हमने ख़त्म कर दिया बिल्कुल। उसके अगेंस्ट आप ये कर सकते हैं कि ये ले सकते हैं लाइफ टाइम रिकॉर्डेड वर्जन, जो है ज़्यादा बेहतर है 2 डेज के कोर्स के, क्योंकि 2 डेज लाइव आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, जो ये वाला है ना, इसमें आपको 2 डेज लाइव एक्सेस मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये होगा कि एक तो आपको ये लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी, ठीक है, फुल रिकॉर्डिंग्स की, यानी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स पिछली अगली सारी आपको फुल रिकॉर्डिंग्स की एक्सेस फॉर लाइफ मिलेगी। ये लाइफ टाइम एक्सेस है, ठीक है। एक ये, दूसरा आपको 3 महीने की प्राइवेट ग्रुप की मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है जी, 3 महीने की, ठीक है। और तीसरा, आप 2 दिन का कोर्स अटेंड कर सकते हैं लाइव इसके अंदर, ठीक है। और ये ज़्यादा बेहतर है इससे कि 2 डेज का मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये अब 2 डेज नहीं था, बेसिकली ये 4 डेज हमने बनाया था, क्योंकि 2 डेज में ज़्यादा उसमें कोई इफेक्टिव नहीं था। और इसमें अगर आप रिकॉर्डेड खरीदेंगे तो इसमें आपको ऑप्शंस की भी पूरी वीडियोस मिलेगी सारी, यानी ये फुल कोर्स है। इसमें आपको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ ये रिकॉर्डिंग्स ही देख लेंगे ना सारी की सारी, तो मैं 100% श्योर हूँ, यानी मैं 99% श्योर नहीं हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खुद से स्टॉक ढूंढोगे, आप खुद से सारा काम करोगे, ठीक है। आप खुद से ही सब कुछ करोगे, ट्रेड लोगे, किसी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है जी। ओ दानिश भाई, अच्छा ठीक है जी, आप ऑलरेडी 1 ईयर मेंबर है, आपकी 3 महीने की एक्स्ट्रा कर देंगे, आपको 15 महीने की मेंबरशिप देंगे, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। 3 महीने आपकी फ्री एक्सटेंशन होगी। जी जी, पाकिस्तान मैंने भी उन्हीं से ही सीखा है कि कैसे अपडेट करना है सॉफ्टवेयर इनका, ठीक है। मैं पाकिस्तान आर्मी में था। अच्छा, जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो करें, और कोशिश करें कि कोशिश करें कि अभी तो लाइव शेयर करने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि 2 होने वाले हैं और मैं सोना भी है। और हाँ जी, लंदन में हमारा मीटअप हो रहा है, लंदन में इंशाल्लाह 30th को मीटअप हो रहा है बैथनल ग्रीन में। अगर कोई बंदा आना चाहे तो ज़रूर आए। पहले तो आप ज्वाइन करें ना टेलीग्राम ग्रुप, उसके ऊपर मैं अपडेट कर रहा हूँ कि जो लंदन में हमारा जो है ना वो मीटअप हो रहा है, छोटा सा मीटअप, वेरी क्लोज निट है, प्रॉपर्टी के मेनली प्रॉपर्टी के ऊपर होगा, क्योंकि हम जो है ना वो जॉइंट वेंचर बनाने लगे हैं प्रॉपर्टी का। सॉरी गाइस, इट्स अच्छा जी, प्रॉपर्टी का एक जॉइंट वेंचर बनाने लगे हैं जहाँ पे हम कमर्शियल कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। कमर्शियल कन्वर्जन्स, हाँ, बड़ी गेम करने लगे हैं, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट जो स्पेशली जिसके लिए मुझे फंडिंग की ज़रूरत है, 1.2 मिलियन का प्रोजेक्ट है वो, और मैं बैंक के पास जाना नहीं चाहता, मैं इंटरेस्ट के ऊपर कर्जा लेना नहीं चाहता। उसके ऊपर हमारी उसकी लैब्स प्लानिंग परमिशन थी, हमने प्लानिंग परमिशन दोबारा से एप्लीकेशन डाली हुई है। इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में प्लानिंग परमिशन हो के आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसमें 7 फ्लैट्स हैं और 2 रिटेल यूनिट्स हैं। मेन हाई स्ट्रीट लोकेशन है, सटन कोल फील्ड के बॉर्डर के ऊपर है। वेरी मतलब अभी वहाँ पे फ्लैट जो है ना वो 150-160 का भी आराम से जाएगा, लेकिन हम हाई एंड पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो टोटल प्रोजेक्ट जो है ना 1.2-1.4 मिलियन तक जा सकता है इंशाल्लाह, जो टोटल जीडीपी है उसकी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच शेख खान भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल,
स्ट्रेंजर एक होता है गुड डैड, एक होता है बैड डैड। आपने रिच डैड पुअर डैड नहीं पढ़ी हुई। और गुड डैड ये है कि आप अगर आप लोन लेके उसको इन्वेस्ट करें, ठीक है, और स्पेशली प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है, चूँकि सबसे सेफ और सबसे हाई ग्रोथ जो पोटेंशियल है वो प्रॉपर्टी के अंदर है, ठीक है। तो जब आप लोन लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा गुड डेट। अगर आप लोन लेके कार लेंगे तो वो हो जाएगा बैड डेट। अगर लोन लेके आप अपने घर की एक्सटेंशन कर देंगे वो हो जाएगा बैड डेट। अगर लोन लेके शादी करेंगे तो वो हो जाएगा आपका बैड डेट। अगर आप लोन लेके पाकिस्तान चले जाएंगे वहां पे पैसा उड़ाएंगे वो हो जाएगा बैड डेट, ठीक है। गुड डेट क्या है कि आपने एक तरफ से डेट क्रिएट किया और दूसरी तरफ से उसी डेट से आपने एसेट प्रोड्यूस कर दिया। अब वो एसेट जो है वो इनकम प्रोड्यूस करेगा, कैश फ्लोइंग एसेट बनेगा। तो कैश फ्लोइंग एसेट जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ये नदीम मिरानी भाई, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। कमर्शियल कन्वर्जन का ये है कि आप एक टूटी फूटी बिल्डिंग लेते हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग है और उसको आप फिर रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स में। जैसे आपने कोई पुरानी बंद हुई ऑफिस बिल्डिंग ली, ठीक है, उसको आपने अगर फ़र्ज़ करें, यहाँ पे पहले मैं मिसाल दे चुका हूँ, अगर उसमें लेट्स से 700 स्क्वायर मीटर की जगह थी, ठीक है, तो उसमें आप 15 फ्लैट बना सकते हैं। तो अगर वो बिल्डिंग आपने ली लेट्स से 5 लाख की, तो उसमें 15 फ्लैट बनाएंगे तो वो 15 फ्लैट जो है ना अब होंगे मे बी 15 लाख के या 20 लाख के, डिपेंडिंग ऑन के वैल्यूएशन वहाँ पे उस एरिया में क्या है फ्लैट की। नॉर्मली जो इस तरह के हाई एंड फ्लैट बनते हैं उनकी नॉर्मल वैल्यूएशन 100,000 से लेके 180,000 पाउंड तक होती है। बर्मिंघम सिटी सेंटर में तो 2 लाख का भी फ्लैट जा रहा है अभी, ठीक है, लेकिन वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। 100,000 इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव फिगर और आप इजीली जो है ना वो पैसा डबल कर सकते हैं कमर्शियल कन्वर्जन में। जी बिल्कुल, कमर्शियल कन्वर्जन में आपको प्लानिंग परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट अवे से बिल्डिंग कंट्रोल इन्वॉल्व करोगे और आप आराम से जो है ना वो पैसा डबल ट्रिपल कर सकते हो। और प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपका पैसा बहुत जल्दी डबल करेगी। मैं जो भी हूँ आज, हालांकि मैंने तकरीबन $1,50,000 नुकसान बर्दाश्त किया स्टॉक्स में इनिशियली और रिसेंटली भी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो सकता था कि मैं बर्दाश्त करके भी खुश हूँ कि मेरे पास जो कैश फ्लो प्रॉपर्टी का है वो बहुत ज़बरदस्त कैश फ्लो है, ठीक है। और डेवलपमेंट, हम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है मेरे पास डेवलपमेंट की, और सर्विस एकोमोडेशन। यस, विश में मैं अप डाउन नहीं हूँ क्योंकि मैं भी उस पर प्रीमियम कलेक्ट करता आ रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। पहले मैंने तकरीबन $17,500 पुट्स पे बनाए हैं और अभी रिसेंटली मैंने तकरीबन $6,000 जो है ना उसकी जो है ना वो कैश सिक्योर पुट्स और उसके अलावा कवर्ड कॉल्स के ऊपर बना चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी उसकी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है मैंने विश में डॉलर कॉस्ट एवरेज स्टार्ट करूँगा, प्लस मैं उसके ऊपर प्रीमियम कलेक्ट करूँगा मंथली बेसिस के ऊपर। इट्स राइट नेक्स्ट टू सटन कोल फील्ड बॉर्डर के ऊपर हाई स्ट्रीट है, उधर है, ठीक है। अगर किसी ने प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा बेहतर जानना है तो मैं मीटअप रख रहा हूँ इधर लंदन में भी और बर्मिंघम में भी। उसी प्रोजेक्ट के ऊपर हमें टोटल जो अमाउंट चाहिए उसके लिए रेज़ हमने जो करनी है वो तकरीबन 6 लाख करनी है, ठीक है जी। 600,000 हमें टोटल जो है ना वो रेज़ करने हैं उसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। तो ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन 250,000 कैश मौजूद है, तो रिमेनिंग कैश हमें तकरीबन 350 चाहिए। या बर्मिंघम सटन कोल फील्ड के पास, बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं, अब मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज इसलिए की है कि चूँकि विश से मैंने तकरीबन $24,000 पुट्स और ऑप्शन से बनाया है, ठीक है। अब जो मैं नई स्ट्रेटजी ट्राई कर रहा हूँ, अभी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बोला लोगों को,
वो मैं अगले 2-3 महीने के लिए ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे विश बेचने की ज़रूरत तो है नहीं है, ये नहीं कि मेरे को डेस्परेट के मुझे बेचना है वो, ठीक है। तो मैं जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, उसी के अराउंड मैं कैश फ्लो जनरेट कर रहा हूँ थ्रू ऑप्शंस। तो अगर ये अगले 3 महीने के लिए सक्सेसफुल होता है तो आई वुड ऑलमोस्ट जनरेट अनदर $9,000 to $10,000 बाय स्पेंडिंग नॉट इवन अ सिंगल डॉलर, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी मैं अगले पूरे 1 साल तक चलाता रहूँगा, तो मेरे लॉसेस वैसे भी रिकवर हो जाएंगे, तो मुझे ज़रूरत नहीं होगी विश को बेचने की। एक दूसरा मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकता हूँ, मज़ीद बाय कर सकता हूँ 20-25 हज़ार शेयर्स तक, ठीक है जी। और अगर एक डॉलर पे आ गया तो फिर तो मैं अब नई स्ट्रेटजी के मुताबिक हो सकता है मैं 30,000 शेयर ले लूँ, अगर $1 पे आ गया तो। यस एग्जैक्टली, विश की अभी जो वो चेंज करे होगी, ये नहीं हो सकता कि विश डाई आउट हो, ये हो नहीं सकता। विश विल नेवर डाई, इट्स नॉट गोना हैपन। यस, स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, कंपनी विल कम आउट क्लीन इंशाल्लाह वेरी सून, मे बी सेकेंड हाफ ऑफ 2022 विल बी ब्राइट फॉर विश। स्ट्रेटजी चेंज तो डेफिनेटली चाहिए। एक तो उनको चीप शिट निकालना होगा, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स से निकलना होगा, ठीक है। और दूसरा जो है ना अपनी जो है ना यूज़र रिटेंशन जो है ना वो, और जो बायर्स की रिटेंशन है वो सिंपली ये कि उसका अगर सिर्फ एक चीज़ फिक्स कर दें तो बायर रिटेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स हैं वो जो सेलर्स हैं उनको बैन करें, और दूसरा वो ये करें कि डिलीवरी के टाइमिंग्स जो है ना वो फास्ट करें। 2 चीज़ें फिक्स कर दें, कस्टमर रिटेंशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। पाकिस्तान का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्वेस्टमेंट का, नदीम मिरानी भाई, कोई एक्सपीरियंस नहीं है पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट का, सो इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। न्यू स्टॉक से बेहतर है जी मकसूद भाई, न्यू स्टॉक से बेहतर है आप XPV लें, 1000 गुना बेहतर स्टॉक है जी, ठीक है। माई इक्विटी पोजिशन इज $8.75 नाउ, ठीक है जी। सो अभी मैं जो विश के ऊपर जो मेरी इक्विटी पोजीशन है उसके ऊपर डाउन में तकरीबन $59,000। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह, कोई नहीं, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बर्मिंघम में जनवरी के पहले वीक में मीट कीट है जी इंशाल्लाह, पहले वीक में बर्मिंघम में। यार कोई मसला नहीं, अब मेरे पास स्ट्रेटजी डिफरेंट आ गया, अब मैं स्ट्रेटजी डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। मैं हर मंथ 3 से 6 हज़ार कलेक्ट कर रहा हूँ प्रीमियम, ठीक है। सो मुझे उससे परेशानी नहीं है बिल्कुल। अब स्टॉक जहाँ मर्जी जाए, इवन $1 पे चला जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। यही मैं अभी आपको समझा रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं यहाँ पे समझा रहा था, मैं कभी भी लोगों को वो चीज़ नहीं देता जो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। जो मैं ये समझा रहा था आपको ये चीज़, ठीक है, तो जो ये बंदा फॉलो करेगा वो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेगा, ठीक है। अगर आप प्रीमियम कलेक्ट करते रहो हर वीक, हर महीने, तो आप बहुत जो है ना वो कर सकते हो इसमें, ठीक है, ठीक है जी। यस, बट जो मैं प्रीमियम कलेक्ट कर रहा हूँ वो प्रीमियम में यूज़ कर सकता हूँ टू एवरेज डाउन दी स्टॉक। सो रियली, सो मेरी इक्विटी तो डाउन नहीं होगी ना, जो मेरी एक्चुअल अकाउंट के अंदर इक्विटी है वो डाउन नहीं होगी, मेरा स्टॉक डाउन होगा। तो स्टॉक का कोई परवाह नहीं है मुझे किसी किस्म की भी, ठीक है। वो मैं कभी भी एवरेज डाउन कर सकता हूँ अगर मेरी इक्विटी अकाउंट के अंदर मेंटेन रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टॉक के ऊपर मैंने लूज़ किया $10,000, तो वो $10,000 अगर मैंने ऑप्शन से कलेक्ट कर लिया ओवर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो टेक्निकली आई हैवंट लॉस्ट एनीथिंग, इवन दो स्टॉक इज शोइंग डाउन, पर आई हैवंट लॉस्ट एनीथिंग। सो मैं वो जो $10,000 गेन किया है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ टू बाय मोर विश और अदर स्टॉक्स, ठीक है, पुट इन गुड ट्रेड्स, या सेलिंग कॉल्स एंड सेलिंग पुट्स। जी बिल्कुल डिफरेंट है मकसूद भाई। इसका कोई सेट, कोई एक ट्रेडर $20,000 से ज़ीरो भी बना सकता है
और -20,000 भी बना सकता है और 20,000 भी बना सकता है, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर, हर बंदे के ऊपर। बट ऑन अ डिसेंट लेवल आई थिंक डेली गेन्स जो हैं वो 1 to 2% इज़ वेरी गुड गेन, ठीक है जी। 1 to 2% वेरी गुड गेन अगर आप उसको कंपाउंड करें, ठीक है जी। अच्छा जी, जो कोर्स की टाइमिंग है वो है शाम के 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। हर रोज़ शाम 7 बजे से लेके 11 बजे तक कोर्स चलेगा BST, यानी यूके के टाइम के मुताबिक रात के 7 से लेके 11 बजे तक, ठीक है जी, शाम के, ताकि सब लोग उस वक्त फ्री होते हैं तो आसानी होती है सब लोग। 7 से लेके 11 बजे तक रात को चलेगा। सम टाइम 11:30 पौने 12 बज जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 7 से 11 तक ही क्लास चलेगी, ठीक है जी। जी एग्जैक्टली, नेवर मैरी अ स्टॉक, लेकिन कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जो मिलियन बना सकती हैं, और मुझे बिलीव है, अभी भी मेरा बिलीव थोड़ा है कि अब मुझे हो गया है कि विश मुझ मेरे मिलियन बनाएगा, और ना भी बनाएगा कोई मसला नहीं है, मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ उससे। कैसर कैसर आजम भाई प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहीं पे ही सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहीं पे ही सारा कुछ बताऊंगा, बर्मिंघम में कब मीटअप है और कहाँ पे है और टाइम क्या है उसका, ठीक है जी। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग भाई, वेयर डू मोस्ट पीपल कम टू योर कोर्सेज फ्रॉम? अच्छा जी, टिकटॉक से आते हैं, यूट्यूब से आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ है। जैसे बहुत सारे लोगों ने, पहले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जून में कोर्स लिया, उनके थ्रू तकरीबन 10 से 15 लोग आए हैं, ठीक है। जुलाई में जिन्होंने कोर्स लिया, उनके थ्रू 3 से 4 5 लोग आए हैं। तो जब भी कोई बंदा कोर्स लेता है ना, तो उसका एक्सपीरियंस एक बनता है, वो फिर अपने दोस्त अपने भाई को बोलता है, यार ये बंदा है, ये ट्रेनर अच्छा ट्रेनर है और बहुत मेहनत करता है अपने लोगों के ऊपर। और फिर वो कुछ लोग तो रिव्यू भी छोड़ते हैं जाके, कुछ नहीं छोड़ते। रिव्यू की रेशो वैसे भी जो है ना वो 10-20% है। जो लोग कोर्स लेते हैं वो 20%। और रिव्यू अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार हैं। उसकी रीज़न यही है कि जो मैं मोती देता हूँ लोगों को, उनको समझ आते हैं, और जिस तरह मैं देता हूँ उस तरह समझ आते हैं, उनको लगता है कि उनका ब्राइट फ्यूचर है, और होता है। 90% लोग का ब्राइट फ्यूचर होता है जो लोग कोर्स लेके, ठीक है। इट डजंट नीड टू बी एक्रेडिटेड कोर्स। ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग कोर्सेज कोई भी जो है ना वो एक्रेडिटेड नहीं होते। जैसे आप फ़र्ज़ करें आप ड्राइविंग सीखने जाते हैं, वो तो ठीक है, सही है, वो एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है, लेकिन अगर आप किसी से गाड़ी सीखना, गाड़ी ठीक करना सीखोगे गैरेज में, तो वो तो एक्रेडिटेड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। एक्रेडिटेशन नहीं है मेरे पास। खुरम.sa, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। कंप्यूटर के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर मैं वो सजेस्ट करता हूँ, जैसे TradeZero है, तो मिनिमम i5 चल जाएगा, बट उसके साथ आपको रैम मिनिमम 8 GB चाहिए और ग्राफिक कार्ड 2 GB चाहिए मिनिमम, ठीक है जी। जी आई मीन स्टॉक के लिए आपको जो स्टॉक ट्रेडिंग कोर्सेज हैं, इस लाइक गाइडेंस, ठीक है। तो इसमें असेसमेंट नहीं है, इसमें मेंटोरशिप है। जैसे हमारे पास ग्रुप में लोग ऐड होते हैं, ठीक है जी। ये हमारा स्टूडेंट ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप है, ठीक है। इसमें लोग ऐड हो जाते हैं। अब ये नहीं कि एक दफ़ा कोर्स ले लिया आपने तो बस गए आप, ख़त्म ना। आप मेरे साथ हैं, मेरी टीम के साथ हैं, हम साथ साथ चलेंगे। जब तक आप एक रास्ते पे नहीं चल जाते, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते, आप इधर ही हैं, मेरे पास ही हैं, मैं आपको हाथ लेके चलाता हूँ लोग को, ठीक है, इंशाल्लाह। पीसी जी, पीसी, ऑलवेज पीसी। मैक थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन पीसी। नदीम मिरानी, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एल्गोरिदम्स जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को, या जस्ट अ लैपटॉप? लैपटॉप इज़ फाइन, लैपटॉप है
और उसके साथ एक एडिशनल मॉनिटर अटैच किया हुआ है, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं। SSD का मसला नहीं है, SSD करेंगे तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट होगी, एक्सेस जल्दी होगा। जी हम साथ साथ हैं। बॉलीवुड i7 इज़ बेटर, ज़बरदस्त हो गया। आप तो यार यासीन भाई आप तो बड़े अमीर लोग, अमीर बंदे की बात ही कुछ हो रहा है। सीधा i7 और 16 GB रैम और 1 TB SSD, आप क्या बात है यार। कैथी वुड की जो रिसर्च है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च है, आई ऑलवेज स्टैंड विद हर। उसकी जो पिक्स हैं वो आई 100% बिलीव के उसका, और मेरा माइंड उसके माइंड के साथ मिलता है। जो डिसरप्टिव आइडियाज़ की, जो बिग आइडियाज़ की रिपोर्ट उसने इशू की है, वो अमेजिंग रिपोर्ट है। आप अगर वो पढ़ें तो UN का जो 2035 का एजेंडा आप पढ़ें तो बहुत इन लाइन है। और जो लोग इसके ऊपर आंखें बंद कर लेंगे उल्लू की तरह, वो बस उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, मैं कुछ नहीं कह सकता आगे। इसके ऊपर पहले बहुत बहस हो चुकी है। UN का जो है ना वो 2035 एजेंडा पढ़ें आप, ठीक है, आपको पता चलेगा क्या है, ठीक है जी। UN एजेंडा 2035 टाइप करें गूगल में, आ जाएगा सामने, ठीक है जी। तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कैसे चेंज होने जा रही है, ये जी, ठीक है जी। तो जो लोग इसके ऊपर नहीं आएंगे वो अब ये पढ़े चीज़ों को, लेकिन ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे ना, ये बहुत लंबी रिपोर्ट है, ठीक है, ये आप मतलब बहुत लंबी रिपोर्ट है ये, ठीक है, लेकिन जो बंदा डाइजेस्ट कर ले इसको, लेकिन इसके लिए दिमाग कीमे वाला नहीं होना चाहिए या बिरयानी वाला, ठीक है, इसमें दिमाग चाहिए खुला, ओपन रखना है आपने। जब इस रिपोर्ट को पढ़ें आप तो आपने इस नज़रिए से पढ़ना है। जीनोमिक्स, जी बिल्कुल, आर्क जी इज़ अबाउट जीनोमिक्स, जीन एडिटिंग इज़ बिग थिंग, इट डजंट मैटर। ये शॉर्ट टर्म में कोई मसला नहीं है, शॉर्ट टर्म में कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आप जीनोमिक्स हो गया, बिग आइडियाज़ को कोई भी देख लें, मैं नहीं बिलीव करता कि ये 1-2 साल की बात है जब लोग जो है ना वो आइडेंटिफाई करने लग पड़ेंगे कि एक्चुअल पोटेंशियल कहाँ पे है, ठीक है। ग्रोथ स्टॉक्स हमेशा स्ट्रगल करते रहे और करेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको क्लियरली बोलूँ कि इट्स गोइंग टू बिग थिंग। बिग आइडियाज़ जो आर्क इन्वेस्ट की रिपोर्ट है वो भी पढ़ें, ये रिपोर्ट भी पढ़ें, डाउनलोडेबल वर्जन भी इसमें मौजूद है, ठीक है, ये भी पढ़ें। आप देखेंगे जो है ना वो होना क्या है, होने क्या जा रहा है, ठीक है। आप सोए हुए हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी हैं वो सोए हुए हैं, उनको बस iPhone 13 चाहिए, बस लेटेस्ट iPhone जब आए ना तो उनको बस वो चाहिए, ठीक है। उनको नहीं पता कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ठीक है, ज़्यादातर की बात करूँ, ठीक है। हाँ जी, मेरे ख्याल में नदीम मिरानी भाई आपके साथ कोई मेरे ख्याल में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जिसकी वजह से आप डर गए। वो कहते हैं ना कि वो हमारी ना कश्मीर में एक कहावत है, आग का जला जो है ना वो अग्गी ना जले टनाने के लिए चलना है, नो आग का जला ना जो जुगनू की रोशनी होती है ना उससे भी डरता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपके साथ कोई कांड ऐसा हो गया है जो आप उसको भूल नहीं पा रहे। मार्केट आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है, डिसीजन आपके कंट्रोल में है, ठीक है जी। रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हाँ जी लाला सही पोड़िया, सब पे ना डरिया, 80 किलोमीटर ना ही है गल है, हकीकत भाई है। who would who would trust Nigerians? I don't understand. Why would you even trust anyone? I don't get it. Why would people trust with their hard-earned money to people? I don't get it. Why? आपका पैसा है, आप उसके मुहाफिज हो,
आप उसका तरीका करो। क्यों अपने पैसे किसी के हवाले करो? जब भी आपको कोई बंदा ये कहे ना कि मुझे पैसे दो मैं आपको डबल कर दूंगा, तो समझ लो कि काम गड़बड़ है। ठीक है जी, काम कभी भी अपने पैसे किसी के हवाले ना करो, कभी भी नहीं, नेवर एवर। कोई कितना भी सच्चा, कभी भी नहीं, नेवर। ठीक है जी, स्पेशली ऑनलाइन। जब तक आप स्पेशली उस बंदे के साथ मिलो ना पर्सनली या कुछ हो, फिर भी ना करो, फिर भी ना करो। अपना खुद सीखो, अपने पैसे की हिफाजत खुद करो, अपने तरीके से करो। ठीक है, ये वो टाइम है, स्कैम्स हो रहे हैं, लोग इजी पैसा बनाने के चक्कर में लोग को स्कैम करते हैं। ठीक है जी, तो स्कैम होने से बचें। लोगों किसी के ऊपर भी ट्रस्ट, स्पेशली फ़ोन के ऊपर जब बंदा कहे कि मैं आपको ट्रेडिंग जो है ना वो करके दूंगा और आपको पैसे बनवा के दूंगा, नेवर एवर, कभी भी नहीं। 1 पाउंड भी नहीं ट्रांसफ़र करें आप। ठीक है, अपना खुद से करें, सीखें, कहाँ अपना तरीके से करें। अपने पैसे की हिफाजत आप खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सबसे बेहतरीन आप कर सकते हैं और कोई नहीं। अब ये यूज़र 1231 आपने गोरे के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, 500 उसको दे दिया है, लेकिन अपने बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना जो आपके ऊपर जान लगा देगा अपनी। ठीक है, ये बात है, फ़र्क है सिर्फ। हम अपने पाकिस्तानियों के ऊपर पैसा नहीं खर्चते, जो लोग आप हमारे, हम कोशिश करें लोग की ज़िंदगी बदलने में, लेकिन ये कोई नहीं, अल्लाह ताला आपकी रिकवरी करे। 500 पाउंड क्या, 5000 5 लाख पाउंड आपके नसीब में होंगे इंशाल्लाह। बस मेहनत जारी रखें अभी। ठीक है जी, तो बाकी यह है कि यार आज तो इंतहा होगी यार। मैं 10 बजे आया था लाइव, 11 12 1 और 2 हो आज तक बहुत लेट हो गया यार, बहुत लेट हो गया। अच्छा यार, अगर आप लोगों में से किसी ने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें, मेरा इंग्लिश वाला चैनल भी फॉलो करें। और एक और काम करें, यूट्यूब के ऊपर, लेट्स सी, यूट्यूब के ऊपर जाके कोई बंदा मुझे सब्सक्राइब दे सकता है? जाएं ज़रा यूट्यूब के ऊपर प्लीज़, यूट्यूब के ऊपर जाएं, ट्रेडिंग 402 टाइप करें, ट्रेडिंग 402 टाइप करें। ठीक है, और ये गंदी वीडियो नहीं मैं देखता, ये वो कैंपिंग की वीडियो देखता हूँ मैं, ये ज़्यादा मैं कैंपिंग की वीडियोस देखता हूँ। ये ना सोचना कि मेरी हिस्ट्री को ख़राब है। अच्छा जी, ये ट्रेडिंग 402 टाइप करें और प्लीज़ यहाँ पे फॉलो करें। ठीक है, सब्सक्राइब, बल्कि इधर तो सब्सक्राइब होता है ना, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। वो जैसा वो कहता है ना, वो पाकिस्तानी है क्या, वो टिकटॉकर है, यूट्यूबर है। ठीक है जी, यहाँ पे काफ़ी मैंने वीडियोस लगाई हुई हैं, जो कुछ लाइव सेशंस भी किए हुए हैं, लेकिन अब मैं लाइव इतना जा नहीं सकता असल में। एक तो होता है कि ये लाइव सेशन की ट्रेडिंग की हुई है लाइव भी काफ़ी। ठीक है, ये पुराने वक्तों की बात जब हम लाइव जाके ट्रेड किया करते थे। ठीक है जी, तो बाकी ये है कि आप जाके प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें उस चैनल को। यार मैं सोच रहा हूँ कि जो यूट्यूब के ऊपर उर्दू का एक चैनल बनाऊँ, जो इसमें ये पैसे के लिहाज से कैसे जनरेट करना है इनकम, रिलायबल इनकम, प्रॉपर्टी के थ्रू, और स्टॉक्स मार्केट, ऑप्शंस हो गई, क्रिप्टो हो गई। कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या करूँ उसके ऊपर। TradeZero $59 चार्ज करता है आपको मंथली। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है, ज़ाहिर है उसके पैसे होते हैं, लगते हैं। डेटा सब्सक्रिप्शन भी उसी में आती है, सारा कुछ उसी में ही है। ठीक है, यानी कि डेटा सब्सक्रिप्शन उसमें है, आपकी स्कैनर्स उसमें हैं, उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर, बहुत आला किस्म का सॉफ्टवेयर है। उसके अगेंस्ट पुठवारी चैनल जी बिल्कुल। तो इसके $59 ज़ीरो प्रो के चार्ज करते हैं। उनका फ्री वर्जन भी है, लेकिन फ्री वर्जन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मे बी स्टार्ट में फ्री वर्जन यूज़ कर लें, पर लॉन्ग टर्म के लिए फ्री वर्जन। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत पावरफुल है जी। मैंने वाइस से इस महीने ऑलमोस्ट $800 वाइस की मार्केटिंग से कमाया है। उसके अलावा मेरा अमेज़ॉन की एफिलिएट तकरीबन इतनी भी पिक नहीं हुई, लेकिन ठीक है, $400-500 महीने का आ जाता है, बगैर कुछ किया आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद मैं अभी नया एफिलिएट प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ, होस्ट गेटर का। होस्ट गेटर बहुत मेरी फेवरेट वो है, वेबसाइट है होस्टिंग के लिए। ठीक है,
तो इनका मैं शुरू करने वाला हूँ। इनकी पे आउट बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप कर सकते हैं। अमेज़ोन का सबसे रिलायबल है, फिर उसके बाद होस्ट गेटर है, वाइज है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है। मेरा कंटेंट इनके अराउंड है तो मैं इसीलिए इन्हीं के ऊपर जाता हूँ। तो इनकी जो एफिलिएट है वो ठीक ठाक पैसे पे करते हैं ये एफिलिएट के लिए, ठीक है। लेकिन मैं इसका डिस्काउंट पास ऑन करूँगा। तो अगर आप समझे 21 से ज़्यादा साइन अप्स होंगे तो $125 पर साइन अप मिलेगा, ठीक है। यानी 21 साइन अप अगर आपके लिंक से होंगे, 21 साइन अप सिर्फ महीने के, ठीक है। 21 साइन अप होंगे अगर महीने के आपके लिंक से, तो 125 पर लिंक $2625 बनते हैं। तो सिर्फ आप यही लिंक अगर अपना एफिलिएट लिंक जो है ना वो आपके ट्रैफिक सोर्स को दें तो बहुत है। इनको मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, अभी मैं इसके अराउंड कंटेंट बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी इसको लॉन्च कर दूँगा। मेरे ख्याल में मेरे कंटेंट के हिसाब से तकरीबन 30 से 40 साइन अप्स आएंगे, तो वो तकरीबन $3,000 से $4,000 एडिशनल इनकम होगी। तो मैं हर वक्त देखता रहता हूँ कि जो फ्री मनी है वो कैसे लिया जाए, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि वो पास ऑन भी करूँ। जैसे ये मैंने किया था ट्रेडिंग व्यू का, और अभी भी मैं दे रहा हूँ, कैशबैक दे रहा हूँ मैं अभी भी। ट्रेडिंग व्यू का कोई भी बंदा ज्वाइन करेगा उसका मैं कैशबैक दूंगा आपको, ठीक है जी। ट्रेडिंग व्यू भी अच्छा पे आउट करते हैं। इनका ऑलरेडी मेरा एफिलिएट प्रोग्राम चल रहा है, और इनका तकरीबन मेरा मंथली अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट $400 $500 आ ही जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इनका जो है ना वो मैं कैशबैक दे रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ से कैशबैक होगा, और दुनिया में कोई बंदा कैशबैक नहीं देगा। अगर मेरे लिंक से आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो जो भी अमाउंट आप पे करेंगे उसका जो है ना वो 10% आपको एज अ कैशबैक मिलेगा, ठीक है जी। मेरे लिंक से कोई बंदा ज्वाइन करेगा उसको एक तो डिस्काउंट मिलेगा वहाँ से, प्लस जो है ना मैं 10% एज अ कैशबैक दूंगा उसको, ठीक है जी। और ये सिर्फ ट्रेडिंग 402 के लिंक के थ्रू ही है, और किसी लिंक का आपको नहीं, कोई भी बंदा नहीं कैशबैक दे रहा इसके ऊपर, कोई भी बंदा नहीं, और ठीक है जी। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं लोग के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। जो लोग मेरे लिंक के थ्रू, जैसे वाइस से अगर आप टॉपअप करेंगे अपना अकाउंट, तो आपको फ्री जो है ना वो ट्रांसफ़र मिलेगा, पहला ट्रांसफ़र फ्री मिलेगा, ठीक है। तो इसमें विन विन सिचुएशन है, ठीक है। जब आप पहला ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको फ्री ट्रांसफ़र मिलेगा, मुझे जो है ना वो उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है जी। और वाइस मेरी अभी तक सबसे सक्सेसफुल जा रहा है, मेरा जो एफिलिएट प्रोग्राम है सबसे। और उसके बाद मेरे ख्याल में होस्ट गेटर मेरा उससे भी अच्छा होगा। अभी देखते हैं कि होस्ट गेटर स्टार्ट करेंगे अगले महीने से या उससे अगले महीने से, क्योंकि मैं अपनी जो डिजिटल एजेंसी है उसको मैं रीएक्टिवेट कर रहा हूँ। डिजिटल एजेंसी मेरी जो 6 साल पहले मैंने बंद कर दी थी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी। अच्छा जी, उम्मीद है कि ये लाइव कुछ लोगों के जहन को चेंज करने में मददगार साबित हुई होगी, ठीक है। इतने पैसे यार पीछे पाकिस्तान इतने गरीब नमाड़े जानने लग गया पीछे, ठीक है। रिश्तेदार भी, दोस्त यार भी, ऐसे जड़े माड़े क्लास फेलो सन, इंतहाई बुरी हालत, ठीक है। तो मैं ये सोचना है कि अगर वो उस जगह अल्लाह अगर उन्होंने उस जगह रखा जिला अस बचपन टाटां पर कट्ठियां पढ़ने रहे हैं, ठीक है। तो मैं इत्थै आई हाँ, ठीक है, वो उत्थै न, मैं इत्थै हाँ, ठीक है। तो इस ना जाहिर है अल्लाह ताला कुछ न कुछ राज रखा पिछे। गल समझो कि मिगी इत्थै कियां भेजा ने, ये बहुत ज़रूरी गल है कि अगर अल्लाह ताला मिगी ये ताकत दी है कि मैं दिहाड़ी ने $1000 बनाई सकां, और मैं सुत्ते आराम नाल $100 पर इतफाक करना पे लगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो $900 में एक्स्ट्रा बनाई सकना है वो मैं उन्होंने गरीबों वास्ते बनाई सकना सा, ठीक है। या 900 ना ही सही, पर 1000 में अगर पूरा बनाई किन्ना है तो उसने जो 500 भी उन्होंने गरीबों की दई छुड़ना, तो तुम सोचो कितना उन्होंने पलाओ सी, ठीक है। तो ये पैसे ने बड़े बड़े खाते खुले हुए इंशाल्लाह मिलसो तो फिर पता लग सी तुसें कि किस तरह इत्थै तोड़ी पहुंचे हैं। तो ये खाली मेहनत नाल नहीं होना, कुछ
दुआवां पिछे साइयां ना होवन, साइयां दियां दुआवां होन तो फिर होना सारा कुछ, ठीक है। ते दिहाड़ी राती असां इस्सै चक्करे रहने कि दुआवां खट्टां ऐसी ऐसी जगहों जित्थूं बस इंशाअल्लाह, ठीक है। बाकी गल्लां ज़ाहिर है बोस्ट ना करना होना में कदें भी। तुसां जनाब तुसां अच्छो मिलो, तुसां 500 क्या तुसां 5000 की लो, कोई मसला नहीं माड़ा भरा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं, ठीक है जी। तो बाकी है कि दुआओं में याद रखो, तो मेहनत जारी रखो, सही डायरेक्शन है, ठीक है माड़ा भरा, कोई मसला नहीं। तो वैसे मैं लंडन ने मी जगह ना भी ना याद नहीं रहा यरा, बैथनल ग्रीन हाँ जी, बैथनल ग्रीन, आहो बैथनल ग्रीन है। 3 तारीख अच्छो मुलाकात करो ना, 3 तारीख मुलाकात करो, उत्थै कुतै बेहने आ, नाले कोई रेस्टोरेंट दसो उत्थै जित्थै बेही सकां। मी तो पता भी नहीं बैथनल ग्रीन केड़ा इलाका है, कुत्थै कुसै किस तरह उत्थै अरेंज उसी जगह। 15 तो 20 बंदे हूँ थोड़ी अरेंज आने ने, 20 बंदे तकरीबन होए ने जेह्ड़े प्लैज कीता कि जेह्ड़े सन। तो ना भी आए कोई नहीं मसला, बिरयानी दी प्लेट खाई तो असां मुड़ी सां गड़ा काफ़ी पीसां बिरयानी प्लेट खाई मुड़ी जिसां, कोई टेंशन नहीं है। असां ने गड़ा असां मलंग आदमी है भाई, टेंशन कोई नहीं है। It's AFR Capital Limited. MB3 official, it's called AFR Capital Limited. ठीक है। वो तो कोई नहीं इंशाल्लाह, जिंदगी दी तो फिर कुछ अच्छा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। सॉरी गाइस असां हुण इस पहाड़ी बोलने पे लगे, पठवारी जबान कोई पता नहीं केड़ा बंदा पठवारी जबान समझ ना आया, यस कमेंट करे जेड़ा बंदा पठवारी जबान समझ ना आया। इंशाल्लाह मेरा भाई कोई मसला नहीं, ज़रूर चक्कर लासा। तो यह है कि कोशिश करो जी, बिल्कुल बड़ी मिठी ज़बान है, गालियाँ भी बड़ियाँ सख्त पैनियां लेकिन मिठी भी है, गालियाँ भी मिठियां। अच्छा मैं हूँ मिगी पता लगना कि मैं थकी गया। ब्रैडफोर्ड लीड्स इंशाल्लाह जड़ा ना वो लीड्स नहीं होला, मैनचेस्टर उसी जनवरी ने दूसरे हफ्ते विच इंशाल्लाह, 17 तारीख तो पहले पहले जनवरी ने दूसरे हफ्ते विच इंशाल्लाह, ठीक है जी। मैनचेस्टर उसी प्लान करसा मैनचेस्टर इंशाल्लाह, तो उत्थे जड़ा बंदा आशना चासी HAB खालिद टेलफर्ड माड़ा भरा, टेलफर्ड द बर्मिंगम है ना, बर्मिंगम अच्छो ने जनवरी ने पहले हफ्ते बर्मिंगम होसी ना, बर्मिंगम जनवरी ने पहले हफ्ते बर्मिंगम होसी इंशाल्लाह, ठीक है जी। जनवरी ने दूए हफ्ते मैनचेस्टर होसी, ठीक है जी। मैनचेस्टर होसी, मैनचेस्टर तो बर्मिंगम अपने जो पुराने बंदे पाकिस्तानों आए न वो बर्मिंगम की जड़ा ना, बर्मिंगम आने, बर्मिंगम बर्मिंगम जी बिल्कुल, दैट्स मी, इट्स मोहम्मद नवीद इज माय नेम। GAFR capital was set up June, I think it was June, yes, last year June. कनाडा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, कनाडा का हमारा हाइकिंग एंड कैंपिंग का प्रोग्राम है, कनाडा इंशाल्लाह विद फैमिली आएंगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं रिदा ज़रा आप आएँ, मुझे मेरे टेलीग्राम पे रब्ता करें, और इंस्टॉलमेंट्स का कोई इशू नहीं है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते डेफिनेटली उनके मदद करेंगे डेफिनेटली। मेरा अकाउंटेंट इस दुनिया का सबसे बेहतरीन अकाउंटेंट मैं समझता हूँ उसको, ठीक है। मेरा अकाउंटेंट मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन अकाउंटेंट है। जी बिल्कुल, इसमें हम जो जेवी बनाने जा रहे हैं वो भी रियल इस्टेट की है, और अभी
अभी मैंने SIC कोड ऐड नहीं किया इसका, जल्दी कर दूंगा ऐड SIC कोड। लेकिन जो इनिशियली जो AFR कैपिटल लिमिटेड सेटअप की गई थी वो की गई थी प्रॉपर्टी जॉइंट वेंचर के लिए, और उसी सिलसिले में अभी जो हम ये मीट अप करने जा रहे हैं ये सारे अंडर AFR कैपिटल के होंगे, और ये जॉइंट वेंचर सारे अंडर AFR कैपिटल होंगे। हो सकता है मैं जो ट्रेनिंग का बिज़नेस है इसको मैं कम्प्लीटली सेपरेट एक नई कंपनी बना दूं, जो सेपरेट हो जाए ये सारा मामला। अभी देखते हैं, अभी ज़रा मेरी अकाउंटेंट के साथ मीटिंग भी है बहुत जल्दी, तो बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस होने वाली हैं। ARK स्टेट के मामला थे कुछ, मेरी जो दूसरी कंपनी है जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, और इसके अलावा सर्विस कंपनी मेरी R2K होम्स लिमिटेड जिसके अंडर हम जो सर्विस एकोमोडेशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की अलग से है। सो SIC कोड इंशाल्लाह हाँ जी, कोड ऐड मैं भी कंफ्यूज था कि आया कि इसके अंडर कोड ऐड करें। अभी ज़ाहिर है इसका रेवेन्यू तो है, ये इसी में ही जा रहा है। सो यासीन भाई अच्छा, तो वो जो है ना, नहीं अभी मैंने जो ये नई ग्लासेस ली हैं, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया कि मैंने ग्लासेस नई ली हैं, ठीक है। ये आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी इसके आगे, ठीक है। और ये बहुत इफ़ेक्ट इसने किया है मेरी जो है ना वो बहुत मेरी मदद की है इसने। इसको बोलते हैं कलर मैटिक बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं यार, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन ये बेसिकली जो लाइट्स होती हैं, जो मसनूई लाइट है, इसको डिफ्लेक्ट करती है ये, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसके उन्होंने मुझे 50 पाउंड एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं सिर्फ इसको ऐड करने के, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। इतनी देर में अगर कंप्यूटर के सामने बैठूँ ना या मोबाइल के सामने, तो मेरा सर जो है ना वो मतलब घूम जाए। लेकिन ये जिस दिन से मैंने तकरीबन 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं, और बहुत इफ़ेक्ट है इसका, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। हाँ जी, जो बंदा कोर्स की फुल पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता वो मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर ले या टेलीग्राम पे रब्ता कर ले, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर भी सीधा वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना अगर आप, तो व्हाट्सएप का लिंक उधर दिया हुआ है, ठीक है जी। व्हाट्सएप का भी है और उधर ही दिया हुआ है इसका, टेलीग्राम का भी लिंक उधर ही है, ठीक है। तो वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब टाइम हो गया है 1:30, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है फजर, सर्दियों का महीना है, फजर तो लेट होती है, ठीक है। तो अभी 4-5 घंटे नींद करके तो फिर उठेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा सारे लोग, और उम्मीद है कि सब लोगों की कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मदद ज़रूर हुई होगी उनकी डायरेक्शन चेंज करने में, उनको उनके सोचने के तरीके को चेंज करने में। आपकी जो नॉर्मल जॉब है उसको बदलने में शायद आप को थोड़ी सी डायरेक्शन मिली हो कि कुछ और हो सकता है, और बहुत कुछ और हो सकता है इस दुनिया में, बहुत कुछ और हो सकता है। सिर्फ मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखाऊं ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि घर बैठे अपने लैपटॉप से लिंक पेस्ट करके आप कितने पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि करने को बहुत कुछ है। जब मैं इन लोगों को देखता हूँ ना 12-12 घंटे मेहनत करते हुए, तो मुझे तरस आता है इनके ऊपर। और फिर उनके हाथ में iPhone 13 होता है। iPhone 13 बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हॉलीडे करना बहुत ज़रूरी है, 6-7 हज़ार पाउंड हॉलीडे पे लगाएंगे, ठीक है। फजूल गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। पेट्रोल डालेंगे, पैसे हूँ ना हूँ अकाउंट में, गाड़ी जो है ना 15-20 हज़ार पाउंड की होनी चाहिए। गाड़ी ऐसी जो फाइनेंस पे के ऊपर हो, ठीक है। और पेट्रोल डालने की मर्जी लगे, किसी को फ़ोन करेंगे पेट्रोल ख़त्म हो गया प्लीज़ पैसे डालें, ठीक है। ये फजूल चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चना बंद करें, एसेट्स बनाएं। बाकी अब दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे ज़रूर याद रखिएगा दुआओं में, और अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अब बंद करने लगा हूँ। थैंक यू जी।